Hi students, so welcome to our CLAT marathon today, the last one before your final exams. So first of all, best of luck, and I hope this will be giving you new insight for your preparation, and because you will be getting your feedback also immediately that why a particular question option is right or wrong. So this will help you develop that insight that you need. So we'll do this, and though a bit difficult because you will have to solve continuously for 6 hours, but then not beyond your capability. So I request you, I suggest you strongly to stay here till the end. Chaliye, so let us begin. So we'll begin with critical reasoning and passage-based critical reasoning, obviously, as it is CLAT-based. So here goes your first passage. Have a quick look, and then I'll move on to the questions. Once you read it, tell me. I will move on to the questions. Hi, Anshika. Good afternoon. Yes, Swarnavo. Done. Short one. So, yes, should not take much time. Here comes your first question. First, you will solve the questions, you'll answer it, and then I'll discuss all the questions together. Shivani, Nikita, Mona, Laksha, Dev, others, very good afternoon. Ishank, legal ka, please discuss it with the legal faculty. Right now, let us discuss this और कुछ general questions होंगे तो towards the end, if we have time, we'll discuss them as well. Hi, Priyanshi and Adi. अर्चना, इन्फ्रेंस जो कि हमारे पास पैसेज से ही आ रही हो और जो कि डायरेक्टली मेंशन्ड ना हो. खुशी, दिस इज फॉर क्लैट 2022 जो अभी संडे को एग्जाम हो रहा है. चलिए, फर्स्ट डन. सो मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. डू मेंशन द क्वेश्चन नंबर व्हेन आंसरिंग. ओके, मूव ऑन टू थर्ड. Mono, this you need to discuss with the GK faculty, beta.
I'm discussing critical reasoning. Okay, fourth question. Hi, Mira. ईशांक, इतना मतलब कितना? सवर्णो डेफिनेटली, जिसमें कि कुछ भी शक नहीं हो। प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा चांस कि शायद ऐसा ना हो। निशा, ग्लट मतलब एक्सेस, टू मच। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। ईशांक, this is what I am doing. Okay, if you score well, then yes, Ishank, you will be scoring well in CLAT as well. Tanishq, आपको new information will be coming in strengthen or weaken, and you have to consider it to be true. Yes, गीत, टेंशन तो होता ही है लास्ट एग्जाम्स में एकदम एट द लास्ट मोमेंट। नथिंग अनयूजुअल। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन। फॉर नाउ वो यू कैन attend the marathon जब तक क्लास नहीं हो, एंड एट द टाइम ऑफ क्लास यू कैन शिफ्ट टू क्लास एंड आफ्टरवर्ड्स चेक द रिकॉर्डिंग। चलिए, just before I explain you the passage, how many of you have understood it thoroughly? और कितनों को बिल्कुल समझ में नहीं आया? Somewhere in the middle, I know majority वही रहती है, but किसको अच्छे से समझ में आ गया और किसको बिल्कुल नहीं आया? एक्सट्रीम पे कितना है? Do let me know, and then we'll discuss the passage. So I'll explain the passage quickly and then we'll move on to the questions. So यहाँ पे बात हो रहा है शुगर केन एक्रेज, मतलब कितने जगह पे आप शुगर केन लगा रहे हो। वो करंट ईयर में वो कम हो चुका है बाय 15%, जितना था उससे कम एरिया में कल्टीवेशन किया गया है। क्यों? क्योंकि दूसरी कैश क्रॉप्स की तरफ लोग चले गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ शुगर केन ग्लट इन वर्ल्ड मार्केट्स पोस्ट कोविड। ग्लट मतलब एक्सेस, टू मच ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड मार्केट, उसकी वजह से यहाँ पे हुआ है। और प्लस यहाँ पे स्लो डाउन भी हो गया था इकोनॉमी का इस वजह से। लेकिन इसकी वजह से एक और बेनिफिट दूसरी जगह मिला है। शुगर केन फार्मर्स के साथ तो ये हुआ है, लेकिन शुगर मैन्युफैक्चरर्स के साथ देखें तो उनके लिए अच्छा रहा है, क्योंकि उनको प्राइसेस अच्छी मिल गई हैं। कुछ के पास पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ था, तो इसलिए उनका यहाँ पे ओवरऑल मार्जिन बढ़ गया है। सो मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके,
Now, first question is asking which of the following is an inference which can be made from the facts stated in the above paragraph. D बोल रहा है sugarcane production will surely grow in upcoming years. We cannot say what will happen in the upcoming years because we are talking only about the current year, so no information about the previous year or the next year. Only this year we know what is going on. So D is out. C बोल रहा है India was the largest sugarcane producer earlier. Again, no information about that. What was happening earlier? B is saying the sugar manufacturers have marginally benefited in the post-COVID period. Yes, that is given here. Sugar manufacturers, they have got higher prices. So that means they have benefited. So B could be the answer. ए बोल रहा है द शुगरकेन इंडस्ट्री ग्रू ट्रिमेंडसली पोस्ट कोविड नहीं शुगरकेन इंडस्ट्री तो नीचे हो गई थी इट हैज फॉलन बाय 15% सो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब करेक्ट आंसर विल बी बी do keep a record of your scores and then in the end we'll check who got how many marks अनु एक आध लाइन में आप अटक गए ओके सेकंड would you like to change your answer for the second one which of the following conclusions can be drawn from the facts stated in the above paragraph conclusion जो कि overall ये किस तरफ आपको लेके जा रहा है that we have to check ए बोल रहा है नाउ शुगर केन acreage will never face extreme options तो हमारे पास generally not always generally they are wrong यहाँ पे भी never is an extreme word कि अब कभी नहीं आएगा इनफैक्ट आ सकता है शायद 5 साल 10 साल बाद so out there has been a huge drop in the supply of sugarcane during the current year. Yes, इस साल की supply में कमी आई है because it has fallen by 15%. So B हो सकता है. USA not discussed here, so out. Sugarcane growers are no more interested in production of sugarcane. नहीं, अभी भी कर रहे हैं. 100 से ये 15% कम हुआ है मतलब 85% are still growing sugarcane, so they are no more interested. Will be wrong, and correct answer will be B again. यादित्य डी विल बी रॉन्ग कि दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड तो हैं अभी भी 85% आ रहा है जीरो नहीं हुआ है जीरो हो जाता तब हम बोलते इसीलिए बी विल बी करेक्ट एंड डी विल बी रॉन्ग चलिए व्हाट अबाउट थर्ड क्या होना चाहिए आंसर व्हाट कैन वी से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट there has been a shortage of sugarcane in the world market last year. Raghav, premise is the information that leads you to the conclusion. Why that information is given, that is the premise. तो लास्ट ईयर तो हमारे पास डिस्कस ही नहीं किया गया है वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द करंट ईयर तो वी कैन नॉट से कि लास्ट ईयर की क्या सिचुएशन थी दैट इज व्हाई नथिंग कैन बी सेड ना हम बोल सकते हैं कि ए ना ही हम बोल सकते प्रोबेबली ट्रू ना ही हम बोल सकते हैं फॉल्स सो करेक्ट आंसर विल बी डी यस मोहित ह्यूज इज एन एक्सट्रीम वर्ड चलिए व्हाट अबाउट फोर्थ फोर्थ में यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्ट्रेंथन द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द फार्मर्स विल again grow sugarcane next year due to increased prices of sugarcane sugar due to the increased price of sugar we can say so new information that can add on to this that will be strengthening the argument खुशी लास्ट ईयर का नहीं दिया हुआ है सिर्फ ये दिया है दिस इज द रिजल्ट ऑफ शुगर केन ग्लट इन द वर्ल्ड मार्केट्स पोस्ट कोविड सिर्फ इतना दिया है लास्ट और यहाँ पे दिया हुआ है सम शुगर मैन्युफैक्चरर्स टू हैड स्टक अप ऑन लो प्राइस शुगर केन लास्ट ईयर तो लो प्राइस था लास्ट ईयर में शुगर केन ये दिया हुआ है कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास वो है लेकिन लास्ट ईयर में यहाँ पे थर्ड के अंदर बात हो रही है कि देयर हैज बीन शॉर्टेज ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड मार्केट जबकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की यहाँ पे इन इंडिया तो वर्ल्ड मार्केट में क्या था राइट नाउ देयर इज अ ग्लट अभी ग्लट है तो लास्ट ईयर शुगर के क्या यहाँ पे वर्ल्ड में क्या पोजीशन थी दैट वी डू नॉट नो तो ये ग्लट अभी आया है या लास्ट ईयर से ही आया था दैट वी कैन नॉट से इसलिए ट्रू फॉल्स कुछ नहीं बेटा सो फोर्थ में क्यों हमारे पास शुगर केन प्राइस बढ़ जाएगी ए तो हमारे पास आ ही सकता है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी बढ़ा देगी इंक्लूडिंग शुगर केन तो शुगर केन के ही बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है तो ए तो हमारे पास हो ही रहा है कि
A is supporting this part case. If they will be getting increased subsidy, they will grow it. Hi Anish. High alert in entire Europe due to terrorist threat. Now, Europe में terrorist threat की वजह से high alert है, तो how it is going to impact agriculture? Leave apart sugarcane, even on the impact on agriculture, nothing can be said. So B is not strengthening, and that is why D is also out, which says all of these. C says alternative cash crops are evergreen and unaffected by an economic slowdown. So this is talking in a general way about this अल्टरनेटिव कैश क्रॉप्स नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली शुगर केन जो ए में बात हो रही थी मतलब ए इज राइट एंड सी इज रॉन्ग श्रुति इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं तो कुछ जगहों पे आप गलती कर दोगे बिना समझे अगर आपने मार्क किया तो सो फोर्थ ए लेट अस मूव टू फिफ्थ अब क्या है आंसर हाय सानवी मोहित दूसरा आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है थैंक्स साइको हाय स्वराज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन मोहित बेटा जहां क्वेश्चन हो वहीं पूछ लिया करो उसका डाउट अभी मैं फिफ्थ पे हूं इफ एट द एंड वी हैव टाइम देन आई विल अगेन डिस्कस क्वेश्चन थ्री अभिमन्यु शीट इज अपलोडेड इन द टेलीग्राम बट वो है पैसेज टू और पैसेज थ्री के लिए पैसेज वन तो इतना छोटा सा था जस्ट अ पैराग्राफ तो दिस वन इज नॉट अपलोडेड जो सेकंड वाला है वो अपलोडेड है So Indian economy has been unaffected by any global slowdown. ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि it has been unaffected. So A is out. B बोल रहा है India was affected most. वो भी नहीं दिया गया है global economic slowdown यहाँ से related नहीं है. So B is out. C बोल रहा है government should discourage the production of sugarcane and encourage shifting to other cash crops. वो suggestion भी यहाँ नहीं आया है. तो C is also out. मतलब D is the correct answer here. Hi Pratiksha. Yes, Raghav. Most is an extreme word. चलिए, the last question here. Hi, Raju and Sachin. अब ये दो बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं दैट इज द क्वेश्चन हियर द फर्स्ट इज द premise second is the primary conclusion second is not the primary conclusion that overall what the passage is telling you overall it is not telling you that sugarcane glut in the world market post covid and the consequent slowdown in the world market this is certainly your not your primary conclusion प्राइमरी कंक्लूजन तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शुगर केन प्रोडक्शन हैज गॉन डाउन बट शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैव अर्न अ प्रॉफिट तो इसलिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट वैसे ही रॉन्ग हो गया सेकंड में भी बी में भी बोल रहा है कि सेकंड इज द प्राइमरी कंक्लूजन सेकंड पार्ट वैसे ही रॉन्ग हो चुका है तो A and B out between C and D. C will write the first is the claim that the argument rejects. Argument is not rejecting the claim that sugarcane growers have moved on to cultivation of other cash crops. उसको उसने reject नहीं किया है. इसलिए C is out. D बोल रहा है first is the course of action. Second is the reason behind that course of action. Yes. यहाँ पे क्यों उन्होंने यहाँ पे they have shifted to cultivation of other cash crops because of the glut ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड मार्केट तो वर्ल्ड मार्केट में एक्सेस प्रोडक्शन हुआ एक्सेस सप्लाई हो गई शुगर केन की उसकी वजह से यहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूसर्स दे हैव शिफ्टेड टू अदर कैश क्रॉप्स तो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर हाय आरएन सो 4 and 4 टू इनकरेक्ट सो फार चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज Here comes your next passage, also available on Telegram channel. You can read from there. Shaurya got all correct. Good, Shaurya. Savarno, B was talking about saying the second part was saying that it is the primary conclusion. That is not the primary conclusion. जो अभी मैंने आपको बताया primary conclusion is separate. Overall passage is not telling you कि यहाँ पे glut हो गया था. There was an excess of sugarcane production.
इसलिए बी आउट. Anu, one incorrect. Okay. Hirsch also all correct. Clear, Savarno? Paulomi also all correct. Gurang, all correct. Good. Hi, HS. अनु, टेलीग्राम चैनल पे देखो, जो मेन टेलीग्राम चैनल है, इट इज देयर. HS main telegram channel of Legal Edge. You will find it there. Here comes your first question of the passage. Okay, eighth.
Harsh, you can say equivalent. HS, first you will solve all the questions, then I will explain the passage and then the questions. So now, ideally in CR, you should be first reading the passage and then come to the questions. Pratiksha and others, do mention the question number when you are answering it. Chali, let us move to the 10th question. Cool, Anu. Glad you enjoyed it. Chaliye, the last question here. Just a little more time, Ayush. I will discuss. Let others answer.
चलिए तो लेट अस फर्स्ट अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज वेरी वेल एंड दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड एट ऑल डू लेट मी नो। सो बात यहाँ पे हो रही है कि नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, चाइना जो एक्सपैंड हो रहा है उसके बारे में, तो राइटर इज रिमेम्बरिंग इंदिरा गांधी ने क्या बोला था एक से ज्यादा बार उनसे इन द व्हेन शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि आई कैन थिंक ऑफ अ टाइम डाउन इन द रोड व्हेन वी माइट हैव नॉर्मल पीसफुल रिलेशंस विद पाकिस्तान, हो सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ कभी भी नहीं, बिकॉज चाइना इज फंडामेंटली लुकिंग फॉर एक्सपेंडिंग। चाइना के साथ, चाइना को शी डिस्ट्रस्टेड जैसा कि वो दूसरी कंट्रीज को करती थी इंक्लूडिंग यूएसएसआर। एट दैट टाइम इंडो रशिया रिलेशंस वर वेरी गुड, बट यहाँ पे शी डिस्ट्रस्टेड इवन यूएसएसआर, द अर्स्टवाइल रशिया। यूएस प्रेसिडेंट रीगन जो थे वो बात करते थे ट्रस्ट बट वेरीफाई, वेरीफाई करो फिर भरोसा करो। मिसेस गांधी की अप्रोच वाज रादर डिफरेंट, इनकी डिफरेंट थी, मतलब इट वाज नॉट टू ट्रस्ट, जो कि उन्होंने कहा भी था कि शी distrusted China as she did other countries। सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं फिर नेहरू की के बारे में। नेहरू के जो थे वो ही वॉज कन्विंस्ड, उनको पूरा यकीन था यहाँ पे कि चाइना विल नॉट अटैक इंडिया, और अफसोस की बात यह है कि उनके जो कोई एडवाइजर्स थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में सजेशन उनको नहीं दिया कि ये जो वो मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन लोगों को कुछ फॉरेन रिलेशंस का एक्सपीरियंस भी नहीं था। नेहरू का कोई आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस नहीं थे, कुछ आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन नेहरू जो थे उन्होंने कोई हिमालयन ब्लेंडर कमिट नहीं किया है कश्मीर के अंदर। जब सीज फायर हुई थी जनवरी 1949 में, तो इसलिए नहीं कि ही वॉज पैसिफिस्ट, कि ही वॉज लुकिंग फॉर पीस, इसकी वजह से नहीं, या फिर यह कि उनको यूनाइटेड नेशंस पे बहुत ज्यादा भरोसा था, या किसी और कंट्री के ऊपर कि वो पाकिस्तान को जो है बोल के अग्रेसर, और उसको वो परसुएट करेंगे, उसको वो पीछे हटने पे मजबूर कर देंगे। उस टाइम तक तो उन्होंने ब्रिटिश ड्यूप्लिसिटी, डिसऑनेस्टी उन्होंने देख ली थी, और ये भी देख लिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने कश्मीर का इशू ब्रिटिश के हाथ में छोड़ दिया, तो वो सब वो देख चुके थे। नेहरू जो थे कुछ आइडियोलॉजिकल बायस भी उनका नहीं था, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं तो वो ही के, आई डू नॉट नो दैट ही वॉज अ लेफ्टिस्ट, तो वो भी नहीं था उनके पास। हाँ, ही बिलीव्ड स्ट्रांगली कि फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट वाज द ओनली गाइडिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री वो करना चाहिए। और यहाँ पे उनका क्लियर था कि वेस्ट के साथ हमारा रहना, इंडिया का वेस्ट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी और दूसरा असिस्टेंस चाहिए था यूनाइटेड स्टेट से। सोवियत का ऊपर उनको इतना ज्यादा हेल्प की उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब अमेरिकन पाकिस्तान की तरफ चले गए, इस वजह से फिर वो शिफ्ट हो गए थे सोवियत, अदरवाइज सोवियत इट वाज नॉट हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। मिसेस गांधी के ऊपर भी यहाँ पे इल्जाम दिया जाता है कि शी वॉज बीइंग नाइव, बहुत ज्यादा वो आसानी से वो नाइव, जस्ट इजी टू इन्फ्लुएंस, सीधा साधा भोला भाला, कि जो बोला वो मान लिया, एंड बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने वाली थी, कि जब उन्होंने 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे पाकिस्तान के उनको वापस कर दिया और कुछ भी बदले में नहीं लिया। अब कोई इस बात के लिए नहीं बोलता है कि क्या वो ले सकती थी एज क्विड प्रो क्यो, बदले में, क्विड प्रो क्यो उसके बदले में। तो अगर उन्होंने बिना कुछ लिए उन्हें वापस कर दिया, तो वापस क्या ले सकती थी, क्या ऑप्शन थे उनके पास? क्या वो पाकिस्तान से ये बोलती कि पूरा का पूरा JNK खाली करो, और अगर वो कब तक POWs को रखते हैं अपने पास, जब तक कि वो टेरिटरी वापस नहीं करता। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चनिंग के जो आप बोल रहे हो, इंदिरा गांधी के ऊपर ये ब्लेम कर रहा हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि क्या था उनके पास इसके अगेंस्ट में करने के लिए। लास्ट पैराग्राफ के अंदर बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्यों वो ये सब बातें कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि एक्सोनरेट, इसलिए नहीं कि फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि यहाँ पे इनकी किसी की गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस थे उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, और जो उनको लगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही रहेगा वो काम उन्होंने किया। अब एक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर डील कर सकती है यूएस से, ये देखते हुए कि ये इंडिया के लिए अच्छा है। दूसरी गवर्नमेंट जब किसी दूसरी पार्टी की आ जाए, या सेम पार्टी की किसी दूसरे टाइम पे आ जाए, तो वो हो सकता है कि कहे कि नहीं, ऐसा सही नहीं है कि वी शुड हैव अ न्यूक्लियर डील विद यूएस। तो ओवरऑल इट इज टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग विद इंडिया चाइना रिलेशनशिप, सेइंग दैट कंट्रीज दे वर्क एज पर द नेशनल इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट को सही लगता है उस टाइम की उस सिचुएशन में, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। All of the following about Mrs. Gandhi can be inferred from the passage except, अब this is an except question, मतलब जो आप infer कर सकते हो तो वो हमारे पास आंसर नहीं होगा, जो infer नहीं कर सकते हो that is going to be your answer।
तो शी डिस्ट्रस्टेड चाइना, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ चुकी है बात कि शी डिस्ट्रस्टेड चाइना, तो फर्स्ट तो हमारे पास इन्फर कर सकते हैं, इसीलिए आउट। शी ट्रस्टेड पाकिस्तान, नहीं, ऐसा नहीं दिया है कि शी ट्रस्टेड पाकिस्तान, बल्कि एज शी डिड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसएसआर, मतलब शी डिस्ट्रस्टेड चाइना एज शी डिड अदर कंट्रीज, मतलब न चाइना ना ही किसी और कंट्रीज पे ट्रस्ट था, तो इसलिए बी हो सकता है यहां पे। Her basic approach in foreign policy was that in international relations there is no such thing as trust. Yes, because she distrusted everybody. So C can be inferred. She believed that China was a more dangerous enemy than Pakistan. Yes, तभी उन्होंने बोला कि हो सकता है, might be, कि पाकिस्तान के साथ एक बार अच्छे रिलेशंस हो जाएं, लेकिन चाइना के साथ कभी नहीं होंगे। तो मतलब चाइना इज मोर डेंजरस, वो भी है हमारे पास, मतलब बी remains the correct answer here. सिद्धि, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग बेटा। चलिए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर एट? Which of the following could be Mrs. Gandhi's approach regarding international relations? Verify and then trust, ये तो हमारे पास थी रीगन की पॉलिसी, बट यहां पे दिया हुआ है कि हर पॉलिसी वॉज डिफरेंट। ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये किसकी पॉलिसी थी? प्रेसिडेंट रीगन की। हर पॉलिसी वॉज रादर डिफरेंट, प्लस दिया हुआ है कि शी डिसट्रस्टेड, तो बी हो सकता है वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट, कि ट्रस्ट तो फिर भी मत करना। ट्रस्ट विदाउट वेरीफाइंग तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, कि वेरीफाई भी मत करो ट्रस्ट कर लो, क्योंकि शी डिसट्रस्टेड, तो सी इज कॉन्ट्राडिक्टरी। नेवर ट्रस्ट विदाउट वेरीफाइंग, उनका तो था ही नहीं, वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट था रीगन का, एंड शी बिलीव्ड अदरवाइज, तो यहां पे बिना वेरिफिकेशन के ट्रस्ट नहीं करना, दैट कुड बी फॉर रीगन बट नॉट फॉर मिसेस गांधी, बिकॉज शी ट्रस्टेड डिसट्रस्टेड, इसीलिए बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। आदित्य, वो बोल रहा है इंदिरा गांधी की अप्रोच क्या थी इंटरनेशनल रिलेशंस में? दिया हुआ है कि रीगन की थी कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, ना वेरीफाई कर लो फिर ट्रस्ट करो। इनकी अप्रोच ये नहीं थी, इसलिए ए और डी आउट हो गए हमारे पास, और ट्रस्ट करने को तो था ही नहीं, बिकॉज शी डिस्ट्रस्टेड ऑल द कंट्रीज, तो सी इज ऑल्सो आउट, मतलब बी इज करेक्ट कि वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट। सुवर्णो, एक ही वजह से वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट नहीं है, उनका अप्रोच वॉज डिफरेंट, तो नेवर ट्रस्ट विदाउट वेरीफाइंग, तो नेवर ट्रस्ट मतलब यहां से ये बात आ गई है, वही बात कि वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट, ए को ही दूसरे वर्ड्स में हमने बोला हुआ है डी, इसीलिए ए एंड डी बेसिकली अनु दे आर सेइंग द सेम थिंग। यहां पे वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट मतलब नेवर ट्रस्ट विदाउट वेरीफाइंग, पहले वेरिफिकेशन करो फिर ट्रस्ट करो। कूल सचिन। अभिमन्यु, फर्स्ट पैराग्राफ चेक करो, अभी मैंने दिखाया आपको, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में। यस सचिन, सेकंड पैसेज चल रहा है। Which of the following, if true, will strengthen the argument that Nehru did not commit any blunder in the Kashmir Valley? दिया हुआ है कि he did not commit a Himalayan blunder there। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कि रियलिटी क्या थी ग्राउंड पे, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज ट्रू, तब हमें डिसाइड करना है। ग्राउंड रियलिटी क्या थी कि आर्मी इस पोजीशन में थी ही नहीं कि वो इट कैन रन ओवर द एंटायर जे एंड के, और ये यहाँ पे कंक्लूसिवली कई सारे स्कॉलर्स, ऑफिशियल हिस्ट्री भी यही बात बोल रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी यही बात कही है, यहाँ पे जो रेलेवेंट प्लेयर्स थे, सीनियर मोस्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी सबने यही बात किया कि इंडियन आर्मी वाज इन नो पोजीशन टू रन ओवर द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम, तो यहाँ पे मतलब ही डिड नॉट कमिट द ब्लंडर, तो ए इज स्ट्रेंथनिंग दिस टाइम कि इट वाज नॉट हिज मिस्टेक। सी यहाँ पे आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, बिकॉज सी इज सेइंग अबाउट टॉकिंग अबाउट 1959, जबकि पैसेज में यहाँ पे जो बात हो रही है कि ही डिड नॉट कमिट एनी हिमालयन ब्लंडर, सो वो हमारे पास बात हो रही है 1949 की, जनवरी 1949 में ही इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ही डिड नॉट कमिट अ हिमालयन ब्लंडर इन कश्मीर, जबकि सी हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है अबाउट 1959, तो सी वैसे ही आउट हो गया, मतलब डी भी आउट हो गया। Between A and B, B बोल रहा है कि Chinese side had proposed phased settlement beginning with the eastern boundary. Nehru, however, wanted the whole thing settled at once. वो एक बार में चाह रहे थे, जबकि चाइना चाह रहा था कि फेजेस में हम सेटलमेंट करें, तो यहाँ पे तो फिर उनकी मिस्टेक दिख रही है कि इट वाज हिज मिस्टेक, लेकिन ए में दिख रहा है कि इट वाज नॉट हिज मिस्टेक,
इसलिए बिटवीन ए एंड बी, ए इज द बेस्ट चॉइस। चलिए, टेंथ, व्हाट शुड बी द आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी inferred फ्रॉम द पैसेज? फर्स्ट बोल रहा है द मिस्टेक्स ओवर चाइना दैट नेहरू कमिटेड वर कॉज्ड बाय रॉन्ग असेसमेंट्स एंड नॉट ड्यू टू एनी आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। यस, ये तो सही है क्योंकि दिया हुआ है कि ही वॉज नॉट हैविंग एनी आइडियोलॉजिकल बायसेस, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी आइडियोलॉजिकल बायसेस। प्लस यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि इनको किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया, फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट कोई भी नहीं था, तो किसी ने इन्हें नहीं बताया इनके मिसकैलकुलेशन के बारे में। तो बस यही गलती हुई उनसे, ना कि आइडियोलॉजिकल बायस। तो first is correct here. Second, Nehru believed that in foreign policy a nation essentially needs to be selfish. Yes, that is also correct. क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे कि national interest was the only guiding principle. This is what Nehru said. कि national interest मतलब अपनी कंट्री को पहले देख लो rather than दूसरी कंट्रीज, so that means selfish, what is good for the nation वो आप देखो। So B is also correct, so A and B both correct, that means correct answer is going to be C. Both 1 and 2 are correct here. चलिए, let us move on to the 11th question। क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? The author will agree with which of the following? The previous generation of leadership must be held accountable for the mistakes or blunders they might have committed। इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी उसने लास्ट पैराग्राफ में कहा है कि अपने टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट डिसाइड्स एज पर द सिचुएशन एट दैट टाइम। जो लास्ट में उसने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक गवर्नमेंट सोच सकता है, डिसाइड करे कि न्यूक्लियर डील इज गुड विद यूएस, बाद में दूसरी गवर्नमेंट कहे रॉन्ग, या सेम पार्टी की गवर्नमेंट एट अ लेटर टाइम में से दिस। तो इसलिए ए विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड हेंस आउट। बी बोल रहा है नेशनल इंटरेस्ट इज दैट विच द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स इट इज। यस, लास्ट पैराग्राफ में प्लस इंदिरा गांधी, नेहरू दोनों के एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है। सो बी विल बी करेक्ट, सो सी एंड डी आर आउट एंड बी रिमेन्स द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए, चेक आउट द नेक्स्ट पैसेज एंड यस, बिफोर दिस, कितने सही रहे इसके अंदर आप? साइको गॉट ऑल करेक्ट, गुड। चलिए, तो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पैसेज। Follow me again, all correct, good। अभिमन्यु, प्रीवियस जनरेशन यहाँ पे मतलब कि ऑफ दैट टाइम पीरियड, तो इट इज इनफर्ड अभिमन्यु, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। गोलू, अगर हम बात कर लें एलओडी यहाँ पे, तो इट इज ऑफ मीडियम लेवल डिफिकल्टी। अंशिका, गुड। कुंवर, गुड, गॉट ऑल करेक्ट। निधि, टू लेट। गुड कृष्णा। गुड मोनिका।
Good, Sachin. Done. Okay. So here's your second part. Sachin, there are other students who are not as fast as you are. Done. Should I move to the questions? Nidhi has done others. Okay, so here's your first question of the passage. Main contest between B and C, it seems so far. Okay, next 13th question. Thanks, Akash.
Siddhi, I will discuss all these together at the end after discussing, after I show you all the questions you have to solve. After that, I'll discuss them together. चलिए 14th question. Yes, Suvarna, वो blocked. Okay, next question. Yes, Twinkle, this is passage based. Passages are there on the Telegram channel. Megha, we are doing the third passage, which is there on the Telegram channel. PDF is there uploaded. You can read the passage from there. मोना, ये तो आप लीगल फैकल्टी से पूछना बेटा. चलिए, the last question here of this passage. After this, there is one bonus question, and then I will be taking the general questions. You people have some general questions also, so I'll be discussing them at the end. I have kept that time separate so that we can discuss all those things. Otherwise, we have to typically discuss just what is there on the slide. Yes, Savarnavo Malik, between two sessions, there is a break.
अनु बोनस में यहीं पे दूंगा आपको ऑन द स्क्रीन, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए पैसेज देख लेते हैं, द सेम क्वेश्चन अगेन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और कितनों को बिल्कुल समझ में नहीं आया है। चलिए, तो बात यहाँ पे हो रही है, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस पैसेज इज Pocahontas, and she was the daughter of Powhatan. She is the who was the formidable, but that means a very strong ruler of these tribes. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं obviously about the United States of America. वहाँ पे तो जो English settlers they went there ना, तो वहाँ के जो नेटिव्स थे, वहाँ की जो ट्राइब्स थी, उनमें से एक थे काफी स्ट्रांग लीडर थे। उनमें से उनकी डॉटर शी वॉज देयर, पोकोहंटास, उसके बारे में बात हो रहा है। अब उनके बारे में जॉन स्मिथ ने यहाँ पे बोला हुआ है, जॉन स्मिथ हु वाज एन इंग्लिश एडवेंचरर। जॉन स्मिथ ने बोला है कि शी सेव्ड, पोकाहोंटास सेव्ड जॉन स्मिथ फ्रॉम बीइंग किल्ड, शी रेस्क्यूड हिम एंड फ्रॉम बीइंग एग्जीक्यूटेड और किल्ड बाय हर फादर। अंडरस्टूड, ओके गुड। सेकंड में बता रहे हैं कि ये जो नरेटिव है, जो कहानी है पोकोहंटास की, कि उसने अपने लोगों को ही टर्न हर बैक, उसने उन लोगों का साथ नहीं दिया, उनको धोखा दे दिया और इंग्लिश का साथ दिया जो बाहर से लोग आए थे। सो यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड मिलता है हमें दोनों कल्चर्स के बीच में, और ये कई सेंचुरी से ये बात चली आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है कि पोकोहंटास की लाइफ तो काफी अलग है, जो कि स्मिथ ने या जो मेन स्ट्रीम कल्चर हमें बताता है उससे एकदम हटके। यहाँ पे तो ये भी बात एक डिस्प्यूट है कि उसकी क्या एज थी, 11 या 12, या ये कि क्या उसने इस सोल्जर जॉन स्मिथ को बचाया भी था या नहीं। और जैसा कि स्मिथ ने मिस इंटरप्रेट कर लिया था कोई रिचुअल सेरेमनी को, या फिर कहीं से एक पॉपुलर स्कॉटिश बैलेट से उसने वो स्टोरी ले ली थी। तो सेकंड में हमें बताया जा रहा है कि ये जो बात कही जाती है पोकोहंटास के लिए, इट इज नॉट करेक्ट। थर्ड में बोला जा रहा है कि अब 400 इयर्स लेटर ये जो स्टोरी है पोकोहंटास की, अब फाइनली इसे एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक नई डॉक्यूमेंट्री पोकोहंटास बियॉन्ड द मिथ, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है पोकोहंटास बियॉन्ड द मिथ, उसमें इसकी सही स्टोरी सामने आ रही है, जिसमें ऑथर्स, हिस्टोरियंस, क्यूरेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे पैमंकी ट्राइब ऑफ वर्जीनिया, जो कि डिसेंडेंट से पोकोहंटास के, और उन्होंने एक्सपर्ट टेस्टिमनी दी है ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ स्पंकी, स्पंकी इज full of energy, attractive, cartwheeling Pocahontas. Cartwheeling, जो on the two hands you raise and then you move on those two hands, तो वो हो जाती है cartwheeling। तो she was like this and she grew up to be a clever and brave young woman जिसने काम किया था as a translator, ambassador and a leader in the face of European power. General questions towards the end, बेटा। लास्ट में हमें बताया जा रहा है कैमिला टाउनसेंड, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पोकोहंटास एंड द पावर्टन डायलेमा, ये लिखा है इन्होंने, हिस्ट्री प्रोफेसर है, एंड शी इज आल्सो इन दिस डॉक्यूमेंट्री ऑफ बियॉन्ड द मिथ। जो अभी ऊपर पैराग्राफ में हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी सही स्टोरी पोकोहंटास की आई है, तो शी हैज आल्सो फीचर्ड देयर। और इसने बताया है कैमिला टाउनसेंड, इनका कहना है कि पोकोहंटा की स्टोरी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट, बहुत ज्यादा चेंज कर दी गई है, और जो उसकी सही लेगेसी है उसको हमें समझना चाहिए। अब ये प्रोफेसर है नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री की फॉर मेनी इयर्स, एंड शी वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट जिसमें वो कंपेयर कर रही थी रिलेशंस बिटवीन कॉलोनाइजर्स एंड इंडियंस इन स्पेनिश अमेरिका एंड इंग्लिश अमेरिका, वो वाला पार्ट यूएस का, अब का यूएस, जो कि तब वाज अंडर स्पेन एंड अंडर इंग्लिश, जहां पे वो पहुंचे। अब मुझे लगा कि आई वुड बी एबल टू टर्न टू अदर पीपल्स वर्क ऑन पोकोहंटास एंड जॉन स्मिथ एंड जॉन रॉल्फ, लेकिन हुआ क्या, मिली तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स थी वहां पे जो उनके बारे में लिखी गई हैं, लेकिन ज्यादातर थी हॉगवॉश, दैट इज नॉनसेंस। कई सारे तो ऐसे लोगों ने लिखी है जो कि हिस्टोरियंस नहीं थे, और जो हिस्टोरियंस भी थे तो वो दूसरे मैटर्स के स्पेशलिस्ट थे, और उनको लगता था कि अगर किसी बात को बार बार बोला गया है मतलब वो बात सही है। अब जब कैमिला टाउनसेंड इन्होंने जब देखा दूसरा टाइम वहां का, तो जो सर्वाइविंग रिकॉर्ड्स हैं तो उनको पता चला कि यहाँ पे इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। जो पोकोहंटास की स्टोरी है, ये बात जो कही जाती है कि शी वॉज इन डीप लव विद जॉन स्मिथ, ये बहुत लंबे टाइम से चलती है, एंड उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ही मेंशन्ड इट हिमसेल्फ इन द कॉलोनियल पीरियड एज यू से, तो वो तो उसी ने ये बात कही हुई है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद ये कहानी दोबारा से उभर के सामने आई, उस वक्त तो भुला दी गई थी, बाद में दोबारा से उभर के सामने आई है फॉर नेशनलिस्ट, उनके लिए जो कि लुकिंग फॉर नेशनलिस्ट स्टोरीज। और अब यहाँ पे व्यू दिया जा रहा है कि इतने लंबे टाइम तक ये क्यों चल रही है,
ये नेटिव अमेरिकन में तो ये स्टोरी पॉपुलर नहीं है। ये पोकोहंटास इज अ नेटिव अमेरिकन गर्ल, लेकिन उनके अंदर ये स्टोरी पॉपुलर नहीं है। बट अमंग द डोमिनेंट कल्चर, दैट मीन्स दीज इंग्लिश मैन, is that it is very flattering to us. This is the reason that it is continued to be told and it is so popular, क्योंकि यहाँ पे it is flattering to us. Flattering, that means something that gives you happiness and satisfaction. तो सुन के अच्छा लगता है, that is why. So according to the passage, all of the following are true about Pocahontas except question है क्या होना चाहिए यहाँ पे? Again the answer. Hi Prakrit. So Pocahontas belong to the Pamunkey lineage of Virginia. Yes, ये तो दिया हुआ है हमारे पास, क्योंकि जब ये जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है Pocahontas, उसमें दिया हुआ है Pamunkey tribe of Virginia, the descendants of Pocahontas. तो ये Pocahontas की descendants है, मतलब she belongs to this. तो ये तो हमारे पास सही हो गया, इसीलिए wrong. थैंक यू विवेक. जॉन स्मिथ्स स्टोरी ऑफ पोकाहंटास इज मोस्टली फिक्शनल. यस, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि पैसेज में पूरा यही बताया गया है कि इट इज रॉन्ग, और वो उन्होंने लिख दी है. सी बोल रहा है पोकाहंटास वाज अ ब्रेव यंग गर्ल. यहां तक तो सही है. हु रेजिस्टेड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. रेजिस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जॉन स्मिथ ने भी यही बात कही है कि शी टर्न हर बैक, और बाद वाले ने भी जिसने बात करी है तो उसमें ये कहीं पे भी नहीं आया है कि शी रेजिस्टेड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स. तो इसीलिए सी कुड बी द आंसर. डी बोल रहा है मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स ऑफ पोकाहंटास आर अनट्रू. यस, लास्ट में दिया हुआ है. कैमिला टाउनसेंड ने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, लेकिन वो सबका सब गलत है. या तो नॉन हिस्टोरियंस ने लिखा है या हिस्टोरियंस ने भी लिखा है, तो ये मानते हुए कि कई बार बोला गया है, इसलिए सही है. तो डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो आउट, मतलब सी रिमेन्स द करेक्ट आंसर हियर. अनिमेश, टू लेट बेटा. चलिए, 13th में व्हाट शुड बी द आंसर? What is the purpose of the documentary Pocahontas Beyond the Myth? पोकोहंटास के लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ पे बात आ रही है, पोकोहंटास बियॉन्ड द मिथ. यहाँ पे ऑथर्स, क्यूरेटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब दे ऑफर एक्सपर्ट टेस्टिमनी टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ spunky cartwheeling Pocahontas who grew up to be a clever and brave young woman. यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि ये उनकी कोशिश है कि दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ पोकोहंटास. Just let me ban this spammer. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल talking about this. So, purpose of the documentary Beyond the Myth, what is that purpose? Hi Arpan. To explore the truth of why Pocahontas turned her back. ये purpose नहीं था कि क्यों उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया है. Why she allied with the English, ये तो claim किया गया है by John Smith. To dispel the myths that surround the narrative of Pocahontas, which have endured for centuries. Yes, that is correct here. तो बी हो सकता है हमारे पास. सी यहाँ पे बोल रहा है टू हाईलाइट द कॉमन ग्राउंड बिटवीन नेटिव इंडियन एंड यूरोपियन कल्चर्स. यहाँ पे ये पर्पस डॉक्यूमेंट्री का नहीं है. वैसे ये बात जॉन स्मिथ या दूसरे लोगों ने तो कही हुई है, लेकिन पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज नॉट दिस. दैट इज वाई सी इज गोइंग टू बी रॉन्ग. डी बोल रहा है टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ द एल्गोनकियन स्पीकिंग ट्राइब्स इन व्हाट द ब्रिटिश नेम्ड एज जेम्स टाउन. ये तो इजी टू एलिमिनेट है कि दिस वाज नॉट द रीजन फॉर द डॉक्यूमेंट्री. दैट इज वाई बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. चलिए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर 14th? 12th में सवर्णोवो, क्या डाउट है 12th का? रुको, अब सारे इसके पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो इस पैसेज के जो भी डाउट्स हैं. आई विल टेक देम टुगेदर.
इसके 16th क्वेश्चन के बाद आई विल डिस्कस ऑल द डाउट्स टुगेदर ऑफ दिस पैसेज। अब 14th में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू वीकन्स द क्लेम ऑफ कैमिला टाउनसेंड। कैमिला टाउनसेंड का यहाँ पे क्लेम दिया हुआ है लास्ट में। कैमिला टाउनसेंड का कहना यहाँ पे है कि ये जो पूरी की पूरी बात कही गई है ये गलत कही गई है, ये तो सब नॉनसेंस है। एंड इट इज सेइंग दैट इट I learned that much of what had been repeated about her was not true at all। जो ज्यादातर कुछ बातें उसके बारे में कही गई हैं वो सब गलत हैं। ये कहना है कैमिला टाउनसेंड। इसको अब हमें वीकन करना है यहाँ पे। तो वो वीकन कौन से ऑप्शन से हो रहा है दैट वी हैव टू चेक। ए बोल रहा है दोज हु रोट अबाउट पोकाहंटास वर स्टोरी टेलर्स लीस्ट कंसर्न्ड विद फैक्ट चेकिंग। दे वर स्टोरी टेलर्स, दे वर लीस्ट कंसर्न्ड। तो ये तो सपोर्ट कर रहा है कैमिला को कि ये दैट इज अनट्रू। सो ए इज आउट। B बोल रहा है many historians did not do adequate research and accepted facts written by others as true। यही कैमिला ने भी बात कही है कि यहाँ पे हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा है, हिस्टोरियंस ने भी दूसरों की बातों को ही रिपीट कर दिया है। तो दिस इज स्ट्रेंथनिंग, हमें वीकन करना है। सी बोल रहा है फ्रॉम द मैनी बुक्स दैट हैव बीन रिटन ऑन हर वन कांट सेट अपार्ट दोज दैट आर ऑथेंटिक। तो यस अगेन दे आर नॉट ऑथेंटिक बुक्स, तो नहीं वीकन कर रहा। डी इज वीकनिंग कि सम ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्वाइविंग फ्रॉम पोकाहंटास टाइम corroborate John Smith's version। They corroborate, that means they support। So D is correct if this is true कि they are surviving documents they support what is the version of John Smith। तो फिर तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, D is certainly weakening the claim। So D is the correct answer here। चलिए 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। According to Camilla Townsend, the enduring interest in the story of Pocahontas is mainly because। क्यों यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा है इनकी स्टोरी के अंदर, वो लास्ट में दिया गया है, बिल्कुल लास्ट लाइन के अंदर। व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एक बार आपको पैसेज से चेक कर लेना चाहिए कि कहां से आ रहा है आंसर, सो दैट यू गेट इट राइट। So it is saying, I think the reason it has been so famous, not among Native Americans, but among people of the dominant culture। Dominant culture अब यहाँ पे कौन सा है? It is not the of the Native Americans, dominant culture है of the English, yeah, colonizers। Is that it is very flattering to us। It gives us happiness। That is the reason here। सारे doubts I'll be taking together after this question, after 16th question। तो इट इज मार्केटेड, मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है कि इट इज मार्केटिंग इसकी की जा रही है, प्लस एन एंड्योरिंग लव स्टोरी दैट सर्वाइव अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। नहीं, कॉलोनाइजर्स को लेके यहाँ पे बात हो रही है या इंग्लिश कल्चर को अच्छा लगता है वो बात हो रही है, ना कि ये कि स्टोरी जो है इट सर्वाइव्ड अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये लव स्टोरी थी ही नहीं एज पर कैमिला टाउनसेंड। It is a true story of Pocahontas' powerful life from the colonial story। It is not a true story, इसलिए B is also out। The story portrayed the colonizers and their actions in a favorable light। Yes, it is flattering। तभी हमारे पास नेटिव अमेरिकन को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन colonizers को या इंग्लिश पीपल दे लाइक इट बिकॉज दे पुट इट इन अ फेवरेबल लाइट एंड दैट इज व्हाई इट इज फ्लैटरिंग। तो सी हो सकता है। डी बोल रहा है, अब हमेशा याद रखिएगा सीआर में यू शुड बी लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस बिफोर फाइनलाइजिंग योर आंसर। डी बोल रहा है इट इज अ ट्रू टेल। ट्रू टेल तो वो है ही नहीं, एज पर कैमिला टाउनसेंड दिस इज अ फॉल्स स्टोरी। तो ट्रू टेल तो है नहीं, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। डी इज सर्टेनली आउट एंड सी रिमेन्स द करेक्ट आंसर हेयर। तो क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे उसकी स्टोरी में, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनाइजर्स को बड़ा अच्छे से दिखाया जा रहा है ना, फेवरेबल लाइट, कि यहाँ पे इतने अच्छे थे कॉलोनाइजर्स के दिस पोकाहंटास शी टर्न ऑन हर ओन पीपल टू हेल्प द कॉलोनाइजर। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फाइनली व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज हियर। सबसे पहले तो हम इजी टू एलिमिनेट हटा देते हैं, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया इज व्हेन यू आर फीलिंग सैड रिमेम्बरिंग पास्ट हैप्पी टाइम्स। तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया एज सच इज नॉट डिस्कस्ड। नॉस्टैल्जिया इज समथिंग लाइक you are remembering your time when you were in primary school or middle school।
तो वो हो जाता है नॉस्टैल्जिया के वो टाइम गुजर गया, तो यहाँ पे वो तो है ही नहीं, सो डी इज आउट। स्पेक्युलेटिव इज ऑल्सो आउट बिकॉज स्पेक्युलेटिव इज विच इज बेस्ड ऑन मोर ऑन नॉट ऑन फैक्ट्स, बल्कि सब्जेक्टिव या विदाउट एनी फैक्ट्स एक्सेट्रा, तो वो हो जाता है स्पेक्युलेटिव गैस वर्क। तो बेस्ड ऑन गैस वर्क वो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है बाय एक्सपर्ट्स इंक्लूडेड, इसलिए इट इज नॉट एन नॉट स्पेक्युलेटिव। ए एंड बी बोथ आर क्लोज। हिस्टोरिकल, अब हिस्टोरिकल की थोड़ी सी टिंज आ रही है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट पोकाहोंटास, अर्ली अमेरिकन सेटलमेंट्स, लेकिन डिस्क्रिप्टिव विल बी अ बेटर चॉइस देन हिस्टोरिकल बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं है। मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, टू डिस्क्राइब हु वॉज एक्चुअली पोकाहोंटास, की जो माना जा रहा है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे बी विल बी अ बेटर चॉइस हियर। पास्ट हैप्पी टाइम्स तो बेटा पार्शियली भी ट्रू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे इस पैसेज में किसको क्या डाउट था, प्लीज लेट मी नो बिफोर आई मूव फर्दर बिकॉज आई वाज एक्सप्लेनिंग, सो आई टोल्ड यू कि आई विल टेक देम टुगेदर। तो किसी किसी का कुछ डाउट्स आ रहे थे किसी क्वेश्चन के, तो डू लेट मी नो द क्वेश्चन नंबर एंड द ऑप्शन जिसमें आपको डाउट आ रहा है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इज योर डाउट, लेट मी नो। टोन में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रहेगी रादर देन हिस्टोरिकल। फॉलो मी बेटा, हिस्टोरिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऐसे नहीं दिए हैं कि ओवरऑल इट इज हिस्टोरिकल। मेनली पोकोहंटास की जो स्टोरी है वो गलत है, वो उसने डिस्क्राइब की है, इसलिए इट इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव। ममता स्पेक्युलेटिव तो बेस्ड ऑन गैस वर्क, गैस वर्क तो यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए। अनु 14th का सी यू वांट टू नो। If true weakens the claims of Camilla Townsend, C बोल रहा है from the many books that have been written on her, one can't set apart those that are authentic. कई सारी बुक्स आपके पास लिखी हुई हैं, तो कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी अनऑथेंटिक है वो आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। वो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो तो आप ये भी नहीं देख सकते हो कि कौन सा उसका ऑथेंटिक अकाउंट है। ऑथेंटिक अकाउंट अगर आप नहीं देख पा रहे हो अनु, तो फिर आप यहाँ पे इसकी जो कैमिला टाउनसेंड है कुछ हद तक उसी की बात सपोर्ट हो रही है कि लिखा तो गया है कि शी वॉज इन लव विद दिस जॉन स्मिथ, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते हो कि ये सही बात है कि नहीं, क्या उसने उसको सेव किया था कि नहीं किया था। ऑथेंटिक तो आप सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी सही स्टोरी है उसके अंदर, तो इसलिए सी विल बी अपोजिट, सी इज नॉट गोइंग टू वीकन, सी तो काफी हद तक सपोर्ट करेगा अनु। क्लियर बेटा। नहीं निधि, स्पेकुलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो गैस वर्क नहीं है, उसने पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे उसने एक तो नॉन हिस्टोरियंस ने लिखा है और जो हिस्टोरियंस ने भी लिखा है, तो उसने यहाँ पे देखा कि सिर्फ दूसरों की बातों को रिपीट कर दिया गया है, इसलिए स्पेकुलेटिव या गैस वर्क नहीं है। आई वेंट बैक एंड लुक्ड एट द एक्चुअल सर्वाइविंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दैट पीरियड, तो उन्होंने एक्चुअल सर्वाइविंग डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बेटा। आई लर्न दैट मच ऑफ वॉट हैड बीन रिपीटेड अबाउट हर वॉज नॉट ट्रू एट ऑल, यहां से कि सर्वाइविंग डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं, इसीलिए निधि इट इज नॉट गोइंग टू बी स्पेकुलेशन। अभिमन्यु 15th क्वेश्चन डी ऑप्शन, इफ नॉट ट्रू फुल्ली ट्रू बट इट इज पार्शियली ट्रू। नहीं अभिमन्यु, पार्शियली भी ट्रू कैसे हो गया, 15th का डी आपका क्या है, इट इज अ ट्रू टेल, ट्रू टेल तो है ही नहीं ना बेटा, तो डी तो वैसे ही आपके पास गलत हो गया, ट्रू टेल इट इज नॉट अ ट्रू टेल, इनका यही तो उसने बताया कैमिला ने कि इट इज अ फॉल्स टेल, इसीलिए। एरन 14th सी में हाफ की जगह आई हो जाता तो सो इट विल बी द आंसर, एरन 14th का सी की जगह आई हो जाता, तो 14th हाफ की जगह आई, फ्रॉम द मेनी बुक्स दैट आई हैव रिटन ऑन हर वन कांट सेट अपार्ट दोज दैट आर ऑथेंटिक, तो इलॉजिकल हो जाएगा कि कैमिला टाउनसेंड ही बोल रहे हैं कि मैंने जो बुक लिखी है वो ऑथेंटिक नहीं है, तो वो तो दैट विल बी इलॉजिकल। किसी और के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि उसने जो बुक लिखी है वो सही नहीं लिखी, लेकिन मैं अपने लिए ही बोलूं कि मैंने जो बुक लिखी है वो मेरी ऑथेंटिक बुक नहीं है, तो विल नॉट मेक सेंस एरन, इसीलिए। ठीक है, और कुछ कहीं पे सुवर्णो 12th में बी एलिमिनेट कैसे हुआ।
ट्वेल्थ का बी बोल रहा है जॉन स्मिथ स्टोरी ऑफ पोकोहंटास इज मोस्टली फिक्शनल। यस, मोस्टली फिक्शनल है, मतलब कि इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो ये तो ट्रू बात है ना, यही तो उसने बोला हुआ है पैसेज के अंदर। जो पूरे का पूरा उसने सेकंड पैराग्राफ से ही बता दिया था कि ऐसा सही नहीं है, कि जॉन स्मिथ ने ऐसे बात कही है, लेकिन सेकंड में भी यही बात आ रही है कि इट इज नॉट ट्रू। थर्ड में तो फिर यहाँ पे आपके पास पोकोहंटास बियॉन्ड द मिथ, यहाँ पे ही अब आपके पास फाइनली जब एक्सप्लोर किया जा रहा है जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, ऑफर एक्सपर्ट टेस्टिमनी। तो यहाँ पे सिर्फ सबने यही बात कही है। कैमिला टाउनसेंड जिन्होंने ये पूरी बुक लिखी हुई है पोकोहंटास एंड द पावर्टन डायलेमा, उसके अंदर भी यही बात आई है कि यह बात सही नहीं है। इसलिए सुवर्णो यहाँ पे हमारे पास ये बात तो सही हो जाएगी, हमें एक्सेप्ट लेना है बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पोकोहंटास एक्सेप्ट, इसीलिए। प्रतीक्षा, जनरल क्वेश्चंस में एंड में लेता हूं, जस्ट लेट मी सॉल्व द डाउट्स ऑफ दिस पैसेज। अनु, टेंथ का बी आप बोल रहे हो, टेंथ का बी इसमें नहीं है, पिछला वाला था वो तो। टेंथ का बी तो काफी पीछे है अनु बेटा, इतना पीछा अब ले रहे हो आप। नेहरू बिलीव दैट इन फॉरेन पॉलिसी अ नेशन एसेंशियली नीड्स टू बी सेल्फिश, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो करो जो नेशन के लिए अच्छा हो। तो सेल्फिश होना क्या होता है कि यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरों को आप बाद में देखते हो, तो दैट मीन्स सेल्फिश। इसलिए बी विल बी करेक्ट हेयर बेटा। चलिए, लेट अस मूव टू वन फाइनल बोनस क्वेश्चन एंड देन योर जनरल क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग। You have to identify the main idea here. Vishaka, 12th clear now, and Suvarno, 12th clear. Vijeta, all correct. Good. Utsav, this will be available in a recorded form afterwards. Right now, this is a live class. Nahi Vishesh, from CR part, it is over. After this, some general questions, and then I will be passing it on to the next section. That is probably legal. So I'm getting A आ चुका है, C भी आ चुका है, and D भी आ चुका है, B भी आ चुका है। तो all of the options I'm getting. चलिए, तो लेट अस चेक। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर आप कहीं फंस जाओगे तो क्या आपका डॉग कैन इट हेल्प यू। तो अगर वो ट्रेन्ड डॉग है तो एक अलग बात है, लेकिन एवरेज डॉग का क्या। और फिर इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, और उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इफ द ओनर इज अंडर सम प्रॉब्लम तो यहाँ पे कुछ वो करेंगे डॉग्स। दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड एमलेसली, मतलब दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, या ऐसा भी नहीं है जो हम बोलते हैं कि दे विल ट्राई टू गेट हेल्प, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर तो हमारे पास वो जो मेन हमारा पार्ट है एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, दैट एक्सपेरिमेंट इज मिसिंग इन फर्स्ट।
तो इज रॉन्ग। सेकंड में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो सेकंड हो सकता है। थर्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, सो थर्ड भी हो सकता है हमारे पास। फोर्थ अगेन इज नॉट मेंशनिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जो कि मेन फोकस हमारा पूरा यही है जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस वो हमारे पास नहीं है, इसलिए फोर्थ इज ऑल्सो आउट। बिटवीन 2 and 3, सी इज अ बेटर चॉइस। Why is C a better choice? Because it is simply telling us about this experiment, जो कि पूरा फोकस है हमारा कि इन जनरल वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जितना हम मानते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बताया गया। जबकि टू के अंदर हाउएवर दे कैन बी ट्रेन्ड टू गेट हेल्प। अब उन्होंने ये बोला था कि लीव अपार्ट दोस हु आर ट्रेन्ड, तो बट फोकस इज नॉट अबाउट ट्रेन्ड डॉग्स। जो सेकंड के अंदर फोकस दे रहे हैं वो कि दे कैन बी ट्रेन्ड टू गेट हेल्प। फोकस इज अबाउट द एवरेज डॉग्स एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। इसलिए हमारे पास सी विल स्कोर ओवर बी एंड सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट इज इट। यहाँ पे कुछ डाउट हो, नाउ यू कैन हैव सम जनरल क्वेश्चंस दैट यू हैव, एंड others, thank you very much. Next section will start around 12:35. So if you want to take a break, a longer break you can take. Otherwise, I'm here for your doubts. So I'm here for another 5 minutes. So even if you are asking for doubts, so you will be getting still 5 minutes break. बोलो, बी कैन नॉट बी द कंक्लूजन, क्योंकि बी के अंदर यहाँ पे उसने बात करी है कि हाउएवर दे कैन बी ट्रेन्ड टू गेट हेल्प। ट्रेनिंग यहाँ पे जो बात हो रही है कि दे कैन बी ट्रेन टू गेट हेल्प, उसकी वजह से यहाँ पे इट इज गेटिंग रॉन्ग। प्रतीक्षा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए? मोर देन 25 शुड बी अटेम्प्टेड बेटा, क्योंकि यू हैव टू क्रॉस दैट 100, दैट इज द बेंचमार्क दैट यू शुड बी गेटिंग। बट हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरीली टफ आ गया तो फिर थोड़े कम भी हो सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कि हाँ, जो पिछले 2-3 साल से जैसा पैटर्न आ रहा है, स्पेशली आफ्टर द रिवाइज्ड पैटर्न, वैसा ही रहा, वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो आइडियली इट शुड बी मोर देन 25। आयुष, 17 से 19 आगे नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज स्पेशली फोकस ऑन योर सिली मिस्टेक्स, कि उनको कैसे किया जाए। अंशिका जस्ट आंसर्ड दिस कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अगर मीडियम लेवल मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर है तो फिर तो यू शुड बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट मोर देन 25। ये नहीं, यहाँ पे वो इस एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ब्रीड्स के लिए, सिंगल वेराइटी नहीं है, इट वॉज अ वेराइटी ऑफ ब्रीड्स, तो ओवरऑल डॉग्स को लेके ही यहाँ से कंक्लूजन निकाला है, इसीलिए इट विल बी करेक्ट। फॉलो मी, इस केस के अंदर आपको उस सेंटेंस को मेनली यू हैव टू फोकस, बट इन कंटेक्स्ट टू द पैसेज। अगर स्पेशली बोल दिया ओनली फ्रॉम दिस सेंटेंस तो फिर आप पैसेज नहीं देखोगे, नहीं तो यू शुड बी लुकिंग एट द पैसेज एज वेल। अनु, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है मेन आइडिया और कंक्लूजन में, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जनरली दे आर सेम। बट अगर इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकली या ऐसा कि क्या ये हमेशा सेम होते हैं, तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। विशेष, two options you are stuck, तो बेटा always remember that you have always a reason why an option is correct and why it is wrong। तो जो दो options में आप अटक रहे हो तो एक बार passage से जरूर मिला लिया करो। जैसे अभी मैंने सारे के सारे आपको एलिमिनेट करते हुए बताए, आई वॉज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द आंसर कि बस इसका यहां से बी आ रहा है इसलिए बी इज द आंसर। ए सी डी क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी मैंने बता दिया था। तो ऐसा ही आपको भी चेक करना है, एंड दैट टू corroborating it from the passage। Anshu, I like I comprehend the passage, but still I make wrong questions। तो अंशु, यहाँ पे आपने फिर सही से comprehension नहीं किया है। Read it once, but एक बार वहां पे you should be comparing it with the passage। बाद में जब क्वेश्चन आप देख रहे हो तो do check it out from the passage। वेलकम प्रतीक्षा। गोलू, आइडियल स्कोर ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे आपकी परसेंटाइल जो है दैट शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग। ओके अंशिका।
Once if you feel sleepy, तो बेटा take a light breakfast or lunch, not heavy, ताकि इस तरह भी आप एक कर सकते हो, टेक अ फुल नाइट स्लीप, ताकि वो नहीं हो कि अब उसकी वजह से वहां जाके नींद आने लगे। अरुणधति, मेन आइडिया विल बी ओवरऑल जो पैसेज ने बोला है, ना कि किसी, अब वो मेन आइडिया हो सकता है किसी एक पैराग्राफ के अंदर लास्ट पैराग्राफ में दे दिया उसने या फर्स्ट में दे दिया, लेकिन ओवरऑल इट शुड रिफ्लेक्ट द एंटायर पैसेज। गोलू सोर्सेस तो आरएसएम से, लीगल एज की आरएसएम से, लीगल एज क्लैटलिस्ट है, लीगल एज जीएमबी है बेटा। आयुष, डिवाइड पैसेज इन पार्ट्स, जैसे ये वाला पैसेज जो हमारे पास था, इसको अगर आपको करना हो तो दिस विल बी द लास्ट पार्ट, और इसको आप बोल सकते हो ये फर्स्ट सेकंड, इसको एक पार्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, या फर्स्ट इंट्रोडक्शन ले लो, इसको सेकंड पार्ट ले लो, ऐसे कर सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिए कि यही पूरा का पूरा आपके पास सिर्फ है, तो ये फर्स्ट से लेके यहाँ कहीं तक जो एक आइडिया आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट, फिर यहाँ कहीं तक जो सेकंड आइडिया आ गया वो सेकंड पार्ट, ऐसे कर सकते हो गोलू। ओ अनु, ओके। Aksha, can you please stop that bell sound to subscribe? It's very irritating. I'm not having that, Aksha. How to stop that? I'm not sure about it. नहीं अर्जुन, डिजिटल वॉचेस नहीं, not allowed, but still get it verified. साकेत, जीके के लिए बेटा अभी जीके सेक्शन विल बी देयर, तो आप वहां पे उनसे बात कर लेना, दे विल बी टेलिंग यू। प्रतीक्षा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है ट्रेन्ड एंड अनट्रेन्ड डॉग्स का, वो तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इन जनरल अगर आपके पास एक ऑर्डिनरी डॉग है, जो कि जनरली लोगों के पास तो ऑर्डिनरी डॉग्स रहते हैं, दे वेरी मतलब लेस देन 1%, या रादर लेस देन 0.1% गो फॉर ट्रेन्ड डॉग्स, अदरवाइज वी हैव ऑर्डिनरी डॉग्स, अनट्रेन्ड डॉग्स, भले ही वो हाई ब्रीड का भी होगा तो भी अनट्रेन्ड डॉग्स ही रहते हैं। यू डू नॉट ट्रेन देम कि कहीं मुश्किल में फंस जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं, नॉट अ कॉन्ट्रास्ट। क्लियर प्रतीक्षा? अरुणदत्ती, जीएमबी क्वेश्चंस मिक्स लेवल के हैं बेटा। मानसी, नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, तो बेटा क्यों नहीं करा, इतना लंबा टाइम था आपके पास। Aaron, I'm getting exhausted while doing mocks. My accuracy decreases with time. I score good in one, two sections in mock, then my accuracy decreases. Aaron, I think you are from Indore, right? Aaron, यहाँ पे आपको अपना स्टेमिना बनाना चाहिए। डू वन सेशन जिसमें कि यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, ताकि आपका यहाँ पे वो बन पाए स्टेमिना, ताकि ऐसा ना हो, वरना फिर यही होगा कि थोड़ी सी आपने सॉल्विंग करी, यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड और इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। निधि, कैन नॉट से कि पजल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, मे कम, तो यस दे मे कम, ऐसा नहीं बोल सकते कि दे विल डेफिनेटली नॉट कम, यस दे मे कम। एक्सपेक्टेड कट ऑफ द वंश बेटा, विल इट इज टू अर्ली टू से। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज एक्सपेक्टेड, आई विल से मीडियम मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। Pranay, even if you are Telugu student, should not be tricky. You have it in English. Actually, I would have discussed more with you, but right now it is time. So now I am going out. The next faculty will be coming in next 5 minutes. So to take a break, those who are here. So finally, goodbye and best of luck for your CLAT. अच्छे से करना. This is the final marathon. That is, I'm meeting you here on YouTube. So finally, goodbye and best of luck.
Constitution, Constitution, contract. Good afternoon. How are you doing? Hello everyone. Good afternoon. How you all doing? My name is Zenab and I welcome you all to our today's session. आज के सेशन में हम बात करेंगे on to the marathon session of legal reasoning. ठीक है? अब अच्छा, आज का ये जो सेशन है, हमने कैसे बनाया है, what all we'll be covering, I'll be telling you in detail. ठीक है. Now before I start with my blabbering as to क्या क्या हम आज के सेशन में कवर करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and all of that, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? आपको जितनी भी चीजें बताई गई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये रिवाइज कर लेना, ये रिवाइज कर लेना, ये रिवाइज कर लेना, आपने वो सब अच्छे से करके रखा होगा, ठीक है? अच्छा, अब आज के सेशन से प्लीज एट एनी पॉइंट इन टाइम ये मत सोचना कि मैं इस सेशन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को असेस करूंगा, नहीं. I have immense amount of trust on each one of you कि आप सब लोग एकदम करेक्ट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है? नाउ अब अच्छा, अगर जैसे तुम्हें याद होगा जब भी हम लीगल का अपना फर्स्ट क्लास लेते हैं, जब भी मैंने आपकी लीगल की फर्स्ट क्लास ली है, मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए हैं कि यार ये मेजर सब्जेक्ट्स, ये माइनर सब्जेक्ट्स. उन मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या था? लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, है ना? एंड ऑब्वियसली फैमिली लॉ, ठीक है? ये हमारी मेन मेन चीजें रहती हैं विच आर द मेजर सब्जेक्ट्स. और अगर देखा जाए तो यूजुअली पेपर इधर से आना चाहिए. However, हमारे जो हम आपको मॉक्स देते रहते हैं वहां पे वी गिव यू अ फ्लेवर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी हम कुछ इन्वायरमेंटल लॉ पे आपको कुछ पूछ लेंगे, कभी हम आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर कुछ पूछ लेंगे, राइट? और अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्लैट का पेपर इस मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स को नहीं कवर करता है. क्लैट का पेपर इनको बिल्कुल से कवर करता है. अगर तुमने क्लैट 2020 देखा होगा तो वहां पे उन्होंने इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, है ना? पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एंड बहुत सारे उन्होंने प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ ये सब पूछे थे. सो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दैट ऑल्सो, तो हम अपने मॉक्स भी इसी तरीके से डिजाइन करते हैं वेर इन वी गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट विच इज देयर, है ना? तो आई बिलीव आप लोग के अब स्कोर्स भी हल्के हल्के इंप्रूव होते जा रहे होंगे. अगर एंजाइटी ट्रिक कर रही है तो डोंट वरी यार, सब चिल अच्छे से हो जाएगा. जस्ट रिलैक्स, काम डाउन. इफ आई मे रिपीट माई सेल्फ एज हैव बीन टेलिंग एवरीबडी, मैंने आपको एक चीज बहुत बार बताई है. वो बात क्या बताई है? एग्जाम में क्या चीजें वो आपकी टेस्ट करते हैं? फर्स्ट इज योर रीडिंग स्पीड, सेकंड इज योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, एंड थर्ड इज हाउ काम एंड कंपोज्ड यू आर इन दैट पेपर. तो कभी भी पेपर में बिल्कुल भी घबराना नहीं. जो होगा वो हो जाएगा. अच्छा, a lot of people also tend to analyze the paper while they are in the session कि मेरे कितने सही कितने गलत, कितने सही कितने गलत जा रहे हैं. Don't do that. You never know, हो सकता है उस बार का पेपर ही डिफिकल्ट आया हो और तुम बिना मतलब के ऐसे ही एंजाइटी ले रही हो. जस्ट काम डाउन, गिव योर बेस्ट टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. चलो भाई, ज्ञान हुआ खत्म, अब सेशन की ओर चलते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में आई हैव अ क्वेश्चन ऑन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई हैव अ क्वेश्चन ऑन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. कूल, परफेक्ट, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. अच्छा, द पैसेजेस जो कि यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये सारे लीगल एज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हैं. आप चाहें तो पैसेजेस वहां पे पढ़ सकते हैं. अगर आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है मे बी, तो आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द सेशन विदाउट एनी फर्दर अडू. बहुत बातें करती हूँ यार मैं. चलो, या ओके, सो हेre's the first passage. I won't be addressing any doubts. आराम से पहले पैसेज को पढ़ो और अपन आगे बढ़ते हैं. All those people who are preparing for 2022, 2023, they both can certainly attempt this question. Please बातें नहीं, start solving.
Let me know when you want me to scroll down. Once you are done reading, give me a thumbs up. I'll scroll down. Start writing your answers onto the chat window. I'm going through all the chats. Everybody done? Chalo, scrolling down to the next question. Second question done. Shall I scroll it down? Third question, please. Mark answers to the third question quickly. Perfect. Scrolling down to the fourth. Go ahead, mark the fourth answer. अच्छा आंसर लिख रहे हो तो 4A 4B 4C 4D लिखना ताकि आई नो कि हु इज राइटिंग व्हाट आंसर.
Fourth question done. Shall I scroll it down? ठीक है. Move to the fifth question. फिफ्थ के आंसर्स लिखो जल्दी से. Done, everyone? Perfect. Chalo, chalo, chalo. Let's discuss. How did you guys find the passage? कैसा लगा passage? Easy, not easy? Easy था, नहीं था? कि रोना आ गया? Easy था ना? I think it was an easy passage, right? To my mind, it was an easy passage. What about you guys? Okay, चलो ठीक है. हम पहले पैसेज को समझना शुरू करते हैं. नाउ आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. जिस भी इंसान ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया होगा, करेक्ट तो बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, बट सबसे पहले करेक्ट इंसान जिसने भी आंसर दिया होगा, उसका नाम आई विल बी अनाउंसिंग आउट लाउड. ठीक है, तो लेट्स सी. तो कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग, कुछ लोगों को इजी. लेट्स सी कि आपके आंसर्स क्या बताते हैं. ठीक है, चलो. ओके देन, लेट्स बिगिन. पेन कहाँ है भाई? चलो. The rule has it that any law enforced before the commencement and execution of the Constitution of India shall be void if found inconsistent with the constitutional provision. Rule क्या है? Rule ये है कि अगर कोई भी law before the commencement of the Constitution अगर वो void है, ठीक है, वो void कब है? जब वो inconsistent है with the constitutional provisions, यानी कि Constitution shall prevail. और कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर में नहीं है वो वॉइड हो जाएगा. सिंपल. ठीक है. द सेड कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड. द सेड मतलब कि किसके बारे में बात हो रही है? बात यहाँ पे लॉ के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है. अभी कह रहे हैं द सेड मतलब किसके बारे में अगेन बात कर रहे हैं? लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं. द सेड कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड ओनली एक्सटेंडिंग अप टू द इनकंसिस्टेंसी. मतलब कि एक लॉ है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें से certain part of it is not in parameter with the constitutional provisions. तो जो part constitutional provisions के parameter में नहीं है, उसके consonants में नहीं है, वो part inconsistent हो जाएगा. Simple. आगे बढ़े. Thus, any law in force at the time of coming into the force of the constitution or enacted after which is in conflict with the chapter on fundamental rights will be void to that extent. यानी कि अगर आप fundamental rights के कॉन्सिनेंस में नहीं है, ठीक है, या उसके कॉन्फ्लिक्ट में है आप, तो वो वहां तक उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा. सिंपल. स्पेसिफिकली, अब यहां से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एवरीबॉडी पे utmost attention. स्पेसिफिकली इफ पर्सनल लॉज आर कवर्ड अंडर दिस. अब इफ पर्सनल लॉ का मतलब क्या हुआ? क्या पर्सनल लॉज के एम्बिट के अंदर माने जा रहे हैं? नहीं. If personal laws are considered to be a part of this, of the constitution, they will be void to the extent they are in contravention of article 14, 15 and 21 of the constitution. अगर पर्सनल लॉज जो हैं वो 13 या 372 के अंदर आते हैं, इफ एट ऑल वो आते हैं, तो उन्हें हम वॉइड मानेंगे अगर वो आर्टिकल 14, 15 या 21 के कॉन्सोनेंस में नहीं है. सिंपल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. Any personal law when challenged, अगर कभी भी कोई पर्सनल लॉ को आप चैलेंज करते हैं, if found contravening the provisions of the aforesaid articles or in contravention with part 3 of the constitution should have been struck down by the constitution. वो बोल रहे हैं अगर कभी कोई पर्सनल लॉ चैलेंज होता है और अगर ये देखा जाता है वहां पे that the provisions of the aforesaid articles or in contravention with part 3 of the constitution should have been struck down in the constitution. इसको आपको strike down कर देना चाहिए. However, this is not the case. Ideally आपको strike down कर देना चाहिए,
पर क्या ऐसा केस हो रहा है? नहीं। अब वो बता रहे हैं जुडिशरी हैज बीन कॉन्फर्ड पावर नॉट जस्ट टू मेक एंड एग्जीक्यूट लॉज बट also mold the existing laws in close proximity to the changing times. अब भाई जब लॉ बना होगा तब कुछ और सीन होगा, अब आज की कुछ नीड्स और हैं, तो उनको उसके हिसाब से लॉ को मोल्ड करना रहेगा. However, one might question if the judiciary has failed to give any opinion on the aforesaid provisions of personal laws contravening the provisions of the constitution. अब वो बोल रहे हैं कि यार कोई इंसान इसके ऊपर क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों है, ठीक है? तो बोल रहे हैं there is no uniform analysis of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई यूनिफॉर्म एनालिसिस नहीं है, कोई ऐसा टेलर मेड उन्होंने चीज नहीं बनाई कि ये चीज होगी तो इसके ऊपर यही अप्लाई होगा, ठीक है? Differing views have been taken by Supreme Court while dealing cases with personal laws. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस दिए हुए हैं जब भी वो पर्सनल लॉज के साथ डील करते हैं. In several cases, the court is of the view that personal laws are not susceptible to Part 3 or to Part 3 and therefore cannot be challenged in the court for infringement of fundamental rights under Article 14, 15 and 21. इस लाइन को वापस से पढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? Therefore, यहां पे लिखा है personal laws are not susceptible to Part 3 and therefore cannot be challenged in the court for infringement of fundamental rights under 14, 15 and 21. ठीक है? Contradicting their own decision, Supreme Court in several other cases opined that personal laws form a basis of fundamental rights. Personal laws को अब पहले ऊपर क्या बोल रहे थे, ध्यान से पढ़ना. ऊपर बोल रहे थे वो लोग कि भाई बोल रहे थे कि इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस है, कोई भी टेलर मेड चीज नहीं बताई है. एक में उन्होंने बोला है पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल टू पार्ट 3, एक में ये बोला है. दूसरे में देखो क्या बोला है, पर्सनल लॉज फॉर्म द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आर इंटरप्रेटेड टू मेक देम कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो तुम देख रहे हो एक ही जगह पे वो दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं. एक तरफ कह रहे हैं कि भाई दे आर नॉट ससेप्टेबल टू फंडामेंटल राइट, और दूसरी जगह पे बोल रहे हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें हमें कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा विद दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? एनीथिंग इन द पैसेज दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड? अच्छा, ससेप्टेबल का मतलब होता है लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर है यहां तक? पैसेज में किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी. इन केस क्लियर हो तो यू नो द स्लैंग वी यूज, इट्स चमका चमका चमक गया बीड़ू. सो या यू कैन टेल मी, क्या सब कुछ क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, अरे भाई जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे वरना हम नहीं करेंगे. ठीक है, इट माइट ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं 3 पैसेजेस लाई हूं और मैं पूरे के पूरे नहीं कर पाऊं. ठीक है, बट माई पॉइंट इज हम जो करें वो अच्छे से करने, वरना हम ना करें. राइट? भले ही हम 2 पैसेजेस करें, भले ही हम 1 पैसेज करें, पर इतने अच्छे से करें दैट ऑल योर डाउट्स इफ एट ऑल एनी विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम वो पूरे क्लियर हो जाए. ठीक है, चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इज choose a statement that, in your opinion, best describes the meaning of the above phrase. In several cases, the court is of the view that personal laws are not susceptible to Part 3. अब ध्यान देना, क्वेश्चन कितने पे आया है? आया है पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल टू पार्ट 3. सिर्फ ये इसी का मीनिंग जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब होगा. ठीक है, ससेप्टेबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? लाइकली और लाइबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड, अगर कोई भी चीज इन्फ्लुएंस उससे हो जाए. ठीक है, या आप किसी एक चीज को हार्म कर दो या कुछ ऐसा वैसा, तो हम उसका मीनिंग क्या कहते हैं? ससेप्टेबल कहते हैं. अब यहां पे बोल रहा है इन सेवरल केसेस द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल, यानी कि नॉट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 अपनी जगह एंड पर्सनल लॉज अपनी जगह. राइट? अच्छा, अब मैं यहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बताती हूं. फर्स्ट ऑप्शन बोलता है that the court may strike down several provisions of personal law to protect the fundamental rights of the citizens. However, some provisions till date are prevailing as discussed further. अब ये बोल रहे हैं the court may have strike down several provisions of personal laws to protect the fundamental rights. यानी कि ये personal laws को एक overriding effect दे रहे हैं over the fundamental rights. लेकिन हमारी ये लाइन क्या कहती है? बोलती है पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल टू पार्ट 3, यानी कि पर्सनल लॉज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे और फंडामेंटल राइट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. क्या ओवरराइडिंग की कोई भी बात हो रही है? हाँ या नहीं? नहीं. फॉर दिस वेरी रीजन मैंने ए को चेंज हटा दिया. ठीक है, नेक्स्ट बी बोलता है
that in number of judgments that the court has held that personal laws are not subject to to part 3, यहां तक की तो बात सही है, and cannot be challenged in the court for infringing the basic rights under 14, 15 and 21, and I have seen बहुत से बच्चों ने इसको आंसर मार्क किया है. ध्यान देना, क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहती हूं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो. What is the question on to? वो बोल रहे हैं पर्सनल लॉज आर नॉट सस्टेनेबल टू पार्ट 3, सिर्फ वो इसका मीनिंग जानना चाहते हैं. अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? दे कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, बेसिक राइट्स अंडर 14, 15 एंड 21. दे आर नॉट इवन आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन टू दिस. वो पूछ रहे हैं कि भाई इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि पर्सनल लॉज आर नॉट सस्टेनेबल टू फंडामेंटल राइट्स. तुम उनको बोल के आ रहे हो ये चैलेंज नहीं हो सकते, ये ऐसा नहीं हो सकते, वो वैसा नहीं हो सकते. क्या ये एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन बनाता है? क्या एक मीनिंगफुल बात बनाता है? हाँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन द इनकरेक्ट आंसर. देन अब उसके बाद सी क्या बोलता है? इन नंबर ऑफ जजमेंट्स द कोर्ट हैज हेल्ड दैट पर्सनल लॉज आर सब्जेक्ट टू पार्ट 3 एंड सो कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ बेसिक राइट्स. अब ये बोल रहे हैं दे आर सब्जेक्ट टू. पैसेज क्या बोलता है? पर्सनल लॉज आर नॉट सस्टेनेबल टू, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट, और ये क्या बोल रहे हैं? दे आर सब्जेक्ट टू. एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात. Hence, what will be my answer? My answer will be D. In number of judgments, the court has held that personal laws are not subject to part 3 of the Constitution. Right? यही बात मेरे passage में हो रही थी, यही बात मेरी यहाँ हो रही है. Hence, D is the correct answer. And the first person to give me the correct answer was Akash Patel. ठीक है? Well done, Akash. We move to the next question. चलो. Now, Satya, request you to please be within your limits. Yeah? Please do not क्या बोलते हैं, मेरे को बोलो ऐसा कुछ मत बोलो कि देन आई स्टार्ट बिरेटिंग यू, है ना. चलो ठीक है, आपको नहीं अटेंड करना बिल्कुल मत अटेंड करें, दैट इज सर्टेनली योर चॉइस. चलो आगे बढ़ते हैं. विद द चेंजिंग टाइम्स लॉज हैव टू बी रिव्यूड, इंटरप्रेटेड एंड अमेंडेड अकॉर्डिंगली. क्या ये बात हमारी ट्रू है कि अनट्रू है? लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस, आई थिंक हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि ये लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, इनके ऊपर हमने बहुत डिटेल्ड सेशंस भी लिए हैं कि कैसे हमें करना है, कैसे हमें नहीं करना. असर्शन विद द चेंजिंग टाइम्स लॉज हैव टू बी रिव्यूड, इंटरप्रेटेड एंड अमेंडेड अकॉर्डिंगली. क्या ये बात ट्रू है कि अनट्रू है? ये बात हमारी ट्रू है, क्योंकि हमारे पैसेज में भी एक जगह पे ये बात लिखी हुई थी कि भाई क्या बोलते हैं कि जो जुडिशरी है वो जुडिशरी जो है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ को विद द चेंजिंग टाइम्स इवॉल्व करते रहे, है ना. तो ये बात तो हमारी ट्रू है बिकॉज इट्स इन कॉन्सोनेंस विद द पैसेज. Let's see the reason part of it. Judiciary has been conferred power not just to make and execute laws, but also to mold the existing laws in close proximity with the changing times. Exactly same बात मेरे पैसेज में भी हुई थी, yes or no? Yes, ये बात हमारे पैसेज में हुई थी कि भाई जुडिशरी को अपने लॉ को इवॉल्व करना चाहिए विद द चेंजिंग टाइम्स. ये बात भी ट्रू है. अब मैंने आप लोगों को क्लास में क्या सिखाया था? द मोमेंट यू सी अ ट्रू वाली सिचुएशन, असर्शन के बाद बिकॉज लगाइए और देखिए क्या असर्शन जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाता भी है टू द असर्शन, यस और नो. देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ. विद द चेंजिंग टाइम्स लॉ को हमें रिव्यू करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए और अमेंड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो जुडिशरी है उसके पास इतनी पावर है कि वो मेक कर सके, एग्जीक्यूट कर सके लॉ को या मोल्ड कर सके एग्जिस्टिंग लॉ को इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द चेंजिंग टाइम्स. दोनों बातें बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं लॉ को इवॉल्व करने की, और ये बात किसके ऊपर कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जुडिशरी की पावर के ऊपर. दोनों बहुत ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, यस और नो? यस. नाउ हेंस अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं तो हमने सी और डी को तो एलिमिनेट कर दिया. अब क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कि एक बात कर रहा है कि भाई विद द चेंजिंग टाइम्स लॉ को हमें रिव्यू करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए और अमेंड करना चाहिए, और बोलता है क्योंकि जुडिशरी के पास इतनी पावर है, राइट? तो हियर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए. समझ में आया? क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द हिंदू पर्सनल लॉ a natural guardian of a Hindu minor boy or unmarried Hindu girl shall be the father, and only after the demise of father the status of natural guardian shall be given to the mother. यानी कि नेचुरल गार्डियन कौन होता है? कि जो गार्डियन कौन होता है? जो कि हमारी देखरेख करते हैं. तो नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में फादर को हमारा गार्डियन माना जाएगा, बट कभी अगर फादर की डिमाइस हो गई, डेथ हो गई, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस मदर को हमारा नेचुरल गार्डियन माना जाएगा. द एक्ट इन नोवेयर प्रोवाइड्स दैट मदर कैन बी द नेचुरल गार्डियन ऑफ हर ओन किड्स. लेकिन एक्ट कहीं पे भी ये बात नहीं करता कि मदर कहीं पे भी बच्चों की नेचुरल गार्डियन बन जाए.
The said provision was challenged in the Supreme Court on the grounds of the constitutional validity as well as that it is against gender equality as guaranteed under Part 3 of the Constitution. ये बोल रहे हैं कि क्योंकि Part 3 of the Constitution के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है। अब now tell me your answers. आप लोगों ने आंसर्स क्या लिखे हैं? सोच समझ के आंसर्स दो। अब देखो, आई टेल यू द easiest part of it. What was my passage talking about in detail? It was talking about a law being declared void, है ना? और एक जगह पे उन्होंने एक माइनर पार्ट पे आई थिंक स्ट्राइकिंग डाउन की बात की थी, ठीक है। वो पार्ट में आपको स्ट्राइकिंग डाउन वाला भी बताती हूँ। ये लिखा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं any personal law when challenged if found contravening with the provision of aforesaid articles or in contravention to any part of the of part 3 of the constitution should have been struck down by the constitution. If at all आप कहीं पे ये माने कि यहाँ पे इसके कॉन्ट्रवीनिंग प्रोविजंस हैं, लेकिन नीचे वो जाके क्या कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर भी बहुत ज्यादा चेंजिंग ओपिनियंस दिए हुए हैं, है ना? तो क्या हम स्ट्राइकिंग डाउन वाले ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं, यस और नो? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखो फिर यहाँ पे बोलते हैं ना हाउएवर दिस इज नॉट द केस, यानी कि स्ट्राइकिंग डाउन करना चाहिए पर हाउएवर दिस इज नॉट द केस। जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो लॉ को विद इवॉल्विंग टाइम्स चेंज करे, वो करे, तो यानी कि स्ट्राइकिंग डाउन वाले सारे ऑप्शंस मैं हटा सकती हूँ कि नहीं हटा सकती हूँ? बिल्कुल से मैं हटा सकती हूँ। अगर तुम देखो ये भी स्ट्राइकिंग डाउन की बात कर रहा है, ये भी स्ट्राइकिंग डाउन की बात कर रहे हैं, ये भी स्ट्राइकिंग डाउन की बात कर रहे हैं। Hence, what will be my correct answer? My correct answer is going to be A. The said provision will be held void to the extent it is in contravention to the provision of equality. ठीक है। अब हो सकता है तुम में से कोई मुझसे ये बोले कि मैम पर एंड में तो बात की गई है ना कि डिफरिंग व्यूज हैं, ये हैं, वो हैं, तो फिर आपने इसको कैसे आंसर मार्क कर दिया? Always remember, I tell you one thing in your whenever you solve your passages. जो भी ऑप्शन तुम्हें बेस्ट लगेगा उस सिचुएशन में उसको एज अ करेक्ट आंसर देखो। अब हमारे पैसेज में ये बात क्लियरली लिखी गई है कि स्ट्राइकिंग डाउन की जहां पे बात हो रही है तो उन्होंने लिखा है कि हाउएवर दिस इज नॉट द केस, जुडिशरी चेंजिंग टाइम्स के साथ लॉ को चेंज कर सकती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इसके ऊपर बहुत डिफरिंग ओपिनियंस भी मिले हैं, तो स्ट्राइक डाउन वाले ऑप्शंस को तो हम हटा सकते हैं। हेंस मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए, और मैंने इसलिए ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है somebody is asking me मैम why not C, ठीक है। C में क्या लिखा है? The said provision will be struck only when they are covered under 13 and 372 of the Constitution. अंशिका यहाँ पे उन्होंने बोला ना डिफरिंग व्यूज आएंगे, डिफरिंग व्यूज हैं इसके ऊपर, और साथ ही साथ जब उन्होंने स्ट्राइकिंग डाउन की बात की है, वापस से मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे any personal law when challenged if found contravening in the provisions of the aforesaid articles or in contravention with any part of part 3 of the constitution should have been struck down by the court. Ideally हमें strike down करना चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं है, है ना? अब वो फिर बोल रहे हैं कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो एग्जिस्टिंग लॉस को मोल्ड करे, ये करे, वो करे। तो आप जो बोल रही हैं, आप क्या कह रही है? नहीं, स्ट्राइक डाउन कर दो अगर ये 13 और 72 के अंदर नहीं आए, तो वो इसी बात को तो कह रहे हैं कि ऐसा केस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? किसी को भी कोई डाउट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पर्सन टू गिव मी द करेक्ट आंसर वाज यश गोयल, ठीक है। ओके, ठीक है। बाइगमी इज रिकॉग्नाइज्ड लीगल अंडर द मुस्लिम लॉ. According to the Islamic practices, a Muslim male is allowed to marry up to 4 times. The Shariat Act allows the application of polygamy to Muslims. However, Muslim women do not fall within the ambit of this provision and they are not permitted to marry multiple times, which is discriminatory. Can this be said to be, can it be said that such a provision of Shariat Act violates the fundamental rights of Muslim women under 14, 15 and 21? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ा सबने, ठीक है। अब यहाँ पे पैसेज के अंदर क्या बात क्लियरली की गई थी कि देयर आर डिफरिंग व्यूज ऑन इट। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पर्सनल लॉज आर क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉज आर ससेप्टेबल टू फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ऐसे लॉज हैं या कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल टू फंडामेंटल राइट्स। यानी कि एक वर्डिक्ट हमारे पूरे पैसेज ने हमको नहीं दिया था, हाँ कि नहीं, नहीं दिया था। फॉर दिस वेरी रीजन क्या मैं यस
या नो या यस के ऊपर बिल्कुल भी जा सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई मेरा पैसेज क्लियरली लास्ट लाइन के अंदर कहता है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, होल्ड कीजिएगा। अम, मेरा पैसेज क्लियरली यहाँ पे बोलता है कि इसके ऊपर डिफरिंग व्यूज आए हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग देयर ओन डिसीजन, द सुप्रीम कोर्ट इन सेवरल केसेस ऑफ फाइंड दैट फॉर पर्सनल लॉज फॉर्म द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक बार जगह बोलते हैं कि दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी जगह बोलते हैं कि पर्सनल लॉज आर नॉट ससेप्टेबल टू फंडामेंटल राइट्स। कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस, यस और नो? यस। तो क्या हम विद सर्टेनिटी एक आंसर दे सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल भी नहीं। फॉर दिस वेरी रीजन मैं यस नो वाले सारे ऑप्शन हटा देती हूँ। What is my correct answer? My correct answer is D here. Again, the first person to answer this question was Yash Goyal. ठीक है? So well done, Yash. I think you've got two correct answers at the first. मतलब सबसे जल्दी आपने correct answer दिया. ठीक है? चलो, let's move आगे. Okay, चलो. Fifth question. ठीक है? Fifth के answers आप लोग mark करो. आपने क्या लिखा है? What, according to your understanding of the passage, be considered as a reason for the Supreme Court to refuse that personal laws on the touchstone of पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो बोल रहे हैं आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या रीजन होगा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि टू रिफ्यूज द टेस्ट दैट पर्सनल लॉज ऑन द टचस्टोन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा कि भाई पर्सनल लॉज और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी ये रिजल्ट है वो क्या है क्या नहीं, उसका रीजन क्या होगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस टेस्ट को क्यों नहीं मानती, क्या नहीं मानते, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एम होता है इन अ डेमोक्रेसी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज एंड ऑर्डर शुड बी ब्रॉट अबाउट। अच्छा, क्या इसके बारे में पैसेज कुछ भी बात कर रहे हैं? नहीं। डज एनीबडी नोज व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर इसका आंसर बताना। ठीक है, मैं जो भी लोग करेक्ट देंगे उनके उनके कमेंट को जाके लाइक कर दूंगी। चलो ठीक है। द मिस्चिफ और डिफेक्ट which is most acute can be remedied by the process of law at stages। अब वो बोल रहे हैं जो भी लॉ मिस्चिफ करता है कि वो हम उससे लेटर स्टेजेस पे रेमेडी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। क्या इसके बारे में पैसेज में कोई बात थी? नहीं। ओके, डी देखते हैं। द कोर्ट थिंक्स दैट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन पर्सनल लॉज एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मर विल प्रिवेल। क्या हमारे पास पूरे पैसेज में कोई भी एक कंफर्म्ड आंसर था कि नहीं फॉर्मर प्रिवेल करेगा, लैटर प्रिवेल करेगा, कुछ भी ऐसा था क्या? नहीं। इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ क्या? यस। Hence, what will be my answer? My answer will be C. The court thinks that personal law are not subject to Part 3 of the Constitution and hence cannot be challenged in the court. Simple. आ गई बात समझ में? Any doubt, anybody, any problem, anyone? With this, we are done with the first passage. हम आगे बढ़े, ठीक है? Okay. Anybody who's got 5 on 5? अच्छा, last question में the first person to answer was Dipali. Very good, Dipali. ठीक है? चलो, shall we move forward, beta? Okay. Now this is the second question. Move ahead and इस पैसेज को सॉल्व करो। बताया तो अंशिका डिफरिंग व्यूज हैं, कोई भी कंक्लूजन पे वो पहुंचे नहीं। वो बता रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम याद है जब मैरिटल रेप की मैं आपको बात बताई थी कि दो जजेस हैं, दो जजेस अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन वहां पे रीच नहीं हुआ। उन्होंने ये बात की कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात रखेंगे, राइट? तो इस पैसेज का कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि शैल पर्सनल लॉज बी अमीनिएबल टू फंडामेंटल राइट्स और नॉट, कोई कंक्लूजन नहीं था। वो खुद ही बोल रहे हैं वहां पे कि देयर आर डिफरिंग व्यूज ऑन टू इट। ठीक है, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, जल्दी से इसको रीड करो। Once you are done, just inform me, I'll scroll it.
You want me to scroll? Okay, scrolling. Go ahead. Done. Shall I scroll down? Okay, करो करो. 'Are you guys done with the sixth question? Yes or no? Done, everyone. Six में बहुत time ले लिया है. Please नीचे चलो अब. Seventh करो. Seventh done. Perfect. Keep going. Go to the eighth question.
कम ऑन गाइस, बक अप। 8th क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। डन। शैल वी प्रोसीड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Start writing your answers to the 9th question. Done? चलो, move to the next question. This is the easy question. इस पे ज्यादा टाइम मत लेना। Done? टेंथ में बहुत टाइम ले रहे हो। ओके, चलो, we are done with the second passage. ठीक है, पढ़ा सेकंड पैसेज? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाउ डिड यू गाइस फाइंड दिस पैसेज? इजी था, नहीं इजी था? डिफिकल्ट था कि नहीं था? नाउ दिस पैसेज, why had I brought it to your very session? जो भी तुम्हारे ये ज्ञानी बाबा जो घूम रहे हैं ना मार्केट में, जो कि तुम्हें ये कहते हैं कि लीगल में थ्योरी की जरूरत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर तुमने वाइकेरियस लाइबिलिटी किया है, एंड दैट टू वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट किया है, जो कि मैंने आपको क्लास में कराया था, और अगर तुमने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आई थिंक इट वाज द 9th क्वेश्चन और द 8th क्वेश्चन, मैंने एग्जैक्ट सिचुएशन आपको क्लास के अंदर भी एक बार सिखाई थी। वहां पे भी आपने नहीं किया होगा तो आपकी जो आरएसएम है, रैंकर स्टडी मटेरियल है, आपने वहां पे किया होगा। तो प्लीज 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 ज्ञानी बाबाओं की बात मत सुनो, और
अपनी थ्योरी अगर अभी तक रिवाइज नहीं की है तो प्लीज रिवाइज कर लो, ठीक है। सो समबडी वाज आस्किंग मी फॉर टिप्स कि मैम लीगल कितने कम दिन बचे हैं, क्या करें। फर्स्ट टिप इज गो रिवाइज योर थ्योरी, ठीक है। चलो भाई लेट्स बिगिन। कुछ लोग कहेंगे वी आर टेकिंग द थिंग्स अ लिटिल फास्ट, ऐसा नहीं है ना। आई कैन सी मैं सारे सबके आंसर्स जब आने लगते हैं तब जाके वी बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। चलो लेट अस बिगिन। चलो जी। Okay, in ancient India, there was an undisputed principle that no one is exempted from the operation of law. कब की बात हो रही है ये? एंशियंट इंडिया की, मतलब पुराने जमाने की बात हो रही है कि भैया कोई भी इंसान एग्जेम्प्ट नहीं है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ लॉ. दिस लाइबिलिटी टू इक्वल पनिशमेंट एक्सटेंडेड इवन टू द किंग. और ये जो लाइबिलिटी थी ऑफ इक्वल पनिशमेंट, यहाँ पे किंग के पास भी जाती थी, रिलेटिव ऑफ किंग के पास भी जाती थी, जज के पास भी जाती थी और ऑर्डिनरी सिटीजन के पास भी जाती थी, ठीक है। अब द रूल ऑफ लॉ वॉज कंसिडर्ड सुप्रीम एंड बाइंडिंग ऑन एवरीवन अलाइक. अब वो बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ ऐसा था कि भाई ये बाइंडिंग है सबके ऊपर, चाहे आप किंग हो, नॉट अ किंग हो, जो कुछ भी हो, आप सबके ऊपर इक्वली बाइंडिंग है. नाउ द important function of the king were concerned with the protection of people, protection of crimes, मेंटेनेंस ऑफ धर्मा एंड सोशल ऑर्डर. अब वो बता रहे हैं कि किंग की क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. अब बात कर रहे हैं इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. ऊपर किसके बारे में बात होती है? एंशिएंट. अब किसके बारे में बात हो रही है? मेडिवल. द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स फॉर देयर रॉन्ग्स वाज मोर वोग्स विथ एविडेंसेस. अब मोर वोग्स का मतलब क्या होता है? वाज मोर इन फैशन फॉर समथिंग, राइट. अब वो बोल रहे हैं जो पर्सनल लाइबिलिटी होती थी किसकी? ऑफिसर्स की, वो बहुत ज्यादा इन फैशन थी, बहुत ज्यादा इन ट्रेंड में आ गई थी इफ इट वाज कपल्ड विद एविडेंसेस शोइंग इक्वालिटी बिटवीन द रूलर एंड द रूल सब्जेक्ट. जो रूलर था, जो किंग था, उसके बीच में और जो उनके रूल सब्जेक्ट्स थे उनके बीच में कोई इक्वालिटी दिखाने के लिए यहाँ एक चीज करते थे. Only when the king considered it proper to undertake the burden of public order, it was then the state treasury used to pay the compensation. अब वो बोल रहे हैं only when the king considered it proper, ठीक है, जब किंग को लगता था कि ये चीज प्रॉपर है, to undertake the burden of public officer, जब वो उसे पब्लिक ऑफिसर की पब्लिक ऑफिसर ने जो भी किया उसके लिए वो किंग मानता है, it was then the state treasury that used to pay the compensation. यानी कि स्टेट यहाँ पे compensation पे करता था. सिमिलर, ठीक है. अब sovereign function is those action of the state for which it is not answerable in any court of law. वो बोल रहे हैं sovereign functions वो functions हैं जहां पे आप कभी भी answerable नहीं हो, अपना jurisdiction नहीं exercise कर सकते हैं. State is immune from being sued. स्टेट के ऊपर आप कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं ला सकते कि आप उसे सू नहीं कर सकते, क्योंकि जो jurisdiction of court है in such matters is impliedly barred. यानी कि अगर सोवरेन फंक्शंस की बात करें तो आप कोर्ट के ऊपर, वो कोर्ट ऐसे मैटर्स को ले ही नहीं सकता है. A consideration of the pre-constitution cases. अब ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखना, अभी वापस से देखो. एक जगह पे बात की एंशिएंट इंडिया की, दूसरी जगह पे बात की मेडिवल इंडिया की, और अब बात कर रहे हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन केसेस की. द गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी इन टॉर्ट begins with the judgment of Supreme Court of Canada in the case of P.O. Steams Navigation versus Secretary of State. अब वो बता रहे हुए केस के अंदर यहाँ से बात शुरू हुई थी. The principle of this case holds if any act was done in the exercise of sovereign functions. वापस से इस लाइन को पढ़ो, होल्ड करिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे पढ़िए. बोल रहे हैं इफ एनी एक्ट, वो एक्ट सही हो, गलत हो, कुछ बताया है क्या? नहीं. इफ एनी एक्ट वाज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन फंक्शंस, अगर आपने सोवरेन फंक्शंस को एक्सरसाइज करते में कोई भी एक्ट किया है, द ईस्ट इंडिया कंपनी और द स्टेट वुड नॉट बी लायबल. यानी कि अगर आप एक सोवरेन फंक्शन करते हैं और आपने वहां पे कोई भी एक्ट किया है और वो एक्ट चाहे सही हो, गलत हो, द स्टेट विल नॉट बी लायबल. क्या सबको ये लाइन समझ में आई? सबको समझ में आई? ठीक है. इट ड्रू अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट. सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शंस में ऑफ द स्टेट के बीच में उन्होंने डिस्टिंक्शन लाया. The state's liability for act or omission of the state authorities arises only in case where the statutory authority acts outside his legal authority. अब वो बोल रहे हैं स्टेट की लाइबिलिटी कब आएगी? उन एक्ट्स या उन ओमिशंस के लिए आएगी जहां पे जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है
वो एक्ट करेगी आउटसाइड हिज लीगल अथॉरिटी व्हाइल पर्पोर्टिंग टू एक्ट पर्सुएंट टू द लीगल अथॉरिटी। यानी कि आप अगर अपनी कोई लीगल अथॉरिटी कर रहे हैं, आपने अपनी ड्यूटी के बाहर कुछ काम कर दिया, ठीक है, तो फिर तो बात क्या होती है कि भाई आपकी स्टेट की लाइबिलिटी आएगी कॉन्फर्ड अपॉन हिम एंड द एक्ट्स और ओमिशन व्हिच कॉजेस और रिजल्ट्स इन द डैमेज टू पर्सन, और सामने वाले पर्सन को कोई ना कोई डैमेज हो, इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन नहीं लगता है इफ एनी कंटेन्ड इन सच एनैक्टमेंट। अगर किसी का एनैक्टमेंट में इस चीज की प्रोटेक्शन होगी तो वो वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। दिस रूल इज इवॉल्व फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट एन एक्ट डन अंडर द स्टैट्यूट, अगर कोई एक्ट हुआ है under a statute and in accordance with the statute can never amount to tort, as was said by the Supreme Court in Martin Byrne Limited versus Calcutta Corporation। बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्ट किया गया है, एक्ट इज डन अंडर अ स्टैट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट कैन नेवर अमाउंट टू अ टॉर्ट। अगर आपने एक स्टैट्यूट के हिसाब से काम किया है, वो काम सही हो गलत हो कैसा भी हो, यहाँ पे स्टेट की लाइबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर कहा है A result flowing from statutory provision is never evil। अब वो बता रहे हैं कि अगर कोई statutory provisions की वजह से कोई एक्ट किया गया है या कुछ, तो वो कभी भी evil नहीं माना जाता है। Did everybody understood this passage? This is exactly something that we discussed in the class in the case of vicarious liability of a state. Do you guys remember that? अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना, और अगर पता है तो वेरी गुड, ठीक है। याद रखने की सिर्फ एक बात है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बताऊं तो बोल रहे हैं एनी एक्ट दैट वाज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन फंक्शंस, कोई भी एक्ट अपने सोवरेन फंक्शंस के उसमें किया है, स्टेट उसके लिए लायबल नहीं होगा, बिल्कुल लायबल नहीं होगा। इट डू अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शंस। स्टेट की लायबिलिटी तब आती है फॉर एक्ट्स और ओमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ओनली इन केसेस विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जब कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट करती है आउटसाइड द लीगल अथॉरिटी, जो उसके पास अथॉरिटी नहीं भी है, उसके बियॉन्ड वो काम करती है, तो भाई आप लायबल होगे व्हाइल पर्पोर्टिंग टू एक्ट बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहां का कंक्लूजन बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कोई भी एक्ट आपने किया, बी इट वो राइट एक्ट हो गलत एक्ट हो, अगर वो एज पर द स्टैट्यूट है, क्या स्टेट लायबल है? नहीं। अगर आपके पास किसी चीज की अथॉरिटी ही नहीं थी और अगर आपने वो करा है, तो फिर एक बार तब भी स्टेट लायबल कर सकते हैं। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो 6 का आंसर आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, जल्दी से आंसर बताइए। अब इन द स्टेट ऑफ Shantanapur, population has increased with high magnitude in the past 10 years, and in such times of COVID-19, it becomes very difficult for the citizens to move from one place to the other. Railways in such time become the only reliable means of transportation. Thus, the government of Shantanapur decided to expand the routes for better utilization and to solve the situation of crisis as per the Road Safety Act. यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो रोड का क्या बोलते हैं, रोड का एक्सपेंशन या जो कुछ भी करा है, वो करा है इन्होंने as per the Road Safety Act. Further, the government then allowed the privatization of railways whilst the railways is a monopoly owned business as per the Indian Railway Act. इंडियन रेलवे एक्ट क्या कहता है कि जो हमारी रेलवेज हैं वो एक मोनोपोली रहेगी, यानी कि वो ही एक प्लेयर रहेगा। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया का क्या मतलब है, तुमने अपनी 6th स्टैंडर्ड की पॉलिटी में पढ़ा होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप जब बुलाने लगे उसके अंदर, है ना। तो जब कि हमारा इंडियन रेलवे एक्ट कहता है कि जो ये रेलवेज है ये सिर्फ और सिर्फ विल बी प्रीडोमिनेटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये एक मोनोपोली रहेगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना शुरू कर दिया है। Routes for these trains in the vicinity of residential areas and due to high speed vibrations built some cracks and started forming space in these well-maintained houses. अब इन houses के बीच में कुछ-कुछ spaces आने लगे हैं। People sued the government of Shantanapur for compensation. Now, tell me one thing. क्या यहाँ पे डैमेज किस वजह से हुआ है? डैमेज इसलिए हुआ है यहाँ पे क्योंकि इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बुला लिया है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ट्रेन्स जब रेजिडेंशियल एरियाज या यहाँ कहीं पे चल रही हैं तो इनकी आवाज से बहुत सारे हाउसेस में क्रैक्स ये सब आ गए हैं। विल द गवर्नमेंट बी सूड और विल द गवर्नमेंट बी नॉट सूड? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कैन द गवर्नमेंट बी सूड और नॉट बी सूड? सोच समझ के आंसर दो। जहां तक बात है एक्सपेंशन की, जो कि एज पर द रोड सेफ्टी एक्ट हुई है, ठीक है भाई, गवर्नमेंट का एक्शन सही है। बट जहां तक बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवेज, जिसके बाद वो लोग
यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्होंने इंडियन रेलवेज ने अब परचेज की हैं सुपर फास्ट ट्रेन या कुछ, और यहाँ पे इन्होंने ये क्या बोलते हैं, इंडियन रेलवेज ने जब ये प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया या जो कुछ भी किया, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग रेजिडेंशियल एरियाज में जब करने लगे, इसकी आवाज से घर टूटने लगे हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, विल द गवर्नमेंट बी सूड और नॉट सूड? एक्सपेंशन, आई विल अग्री कि हाँ इट इज एक्ट विच इज स्टेमिंग फ्रॉम अ स्टैट्यूट, बट आप इसे एक रेजिडेंशियल एरिया में चलाओ, क्या ये कोई स्टैट्यूट दे रहा है? यस और नो? विल द गवर्नमेंट बी सूड और नॉट सूड? सोच समझ के आंसर दो. वेरी गुड, कैन बी सूड, वेरी वेरी गुड. फॉर दैट वेरी रीजन मैं ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कर दूं. ठीक है, ओके ओके. नाउ बी एंड सी में से मुझे एक चूज करना है. नाउ बी एंड सी में से सी बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ शांतनापुर कैन बी सूड फॉर द डैमेजेस बाय द रेजिडेंट पीपल दो दे वर परफॉर्मिंग विद इन द सोवरेन फंक्शंस बट हैड कॉज डैमेज टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अब ये बात तो मेरे पैसेज की कॉन्ट्रडिक्शन में जा रही है ना. अगर तुम सोवरेन फंक्शन कर रहे हो तो भाई यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ शांतनापुर कैन बी सूड. मेरा पैसेज तो ये कहता ही नहीं है. मेरा पैसेज कहता है अगर कोई सोवरेन फंक्शन है तो भाई स्टेट की लाइबिलिटी आएगी नहीं. ये तो मेरे पैसेज के ऑल टुगेदर कॉन्ट्रडिक्शन में. एलिमिनेट. ठीक है, hence what will be my answer? My answer will be B. I see a lot of people writing about the Indian Railways Act. Indian Railway Act के बारे में क्या बात की गई है, ध्यान से पढ़ो. बोल रहे हैं इंडियन रेलवे एक्ट ये बोलता है कि रेलवेज विल बी अ मोनोपोली, मतलब कि इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन करेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया. तो फिर तो आप इंडियन रेलवेज एक्ट की भी कॉन्फॉर्मिटी में नहीं हो ना. तो हम क्या सू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सू कर सकते हैं. Right? For that very reason, B is the correct answer. Let's move to the next question. Abhi, I think all the people who are not from LegalEdge, maybe, I think question number 9 तुम्हारे लिए थोड़ा सा tricky होगा. ठीक है? Let's see. क्योंकि हमने एक exact इसी तरीके की situation classes में की है, तो I think अगर एक competitive advantage हल्का सा शायद से मिल जाए, but let's see. ठीक है? Okay then, let's move to the next question. Lokendra, a businessman, was famous for his jewelry designs all over the world. They used traditional and typical designs in jewelry and used pure quality of gold and silver metals for the same. Soon it came to the notice that the government is thinking imposing a national lockdown in the country from January 2022 in the lieu of rising COVID-19 cases, and hence his gold has to be settled in the form of stocks before it. ठीक है, अब यहाँ पे पूरे सेटल करने पड़ेंगे, स्टॉक्स देने पड़ेंगे, शेयर्स टाइप का कुछ देना पड़ेगा. He approached the RBI, Reserve Bank of India, to take the gold bars from him and issued gold bonds instead of the same. उसने बोला कि आप मेरे गोल्ड बार्स ले लो और आप मुझे इसके गोल्ड बॉन्ड्स दे दो. उसके बाद फॉर द गवर्नमेंट वाज रनिंग अ स्कीम एज पर द गोल्ड बॉन्ड एक्ट ऑफ 1983. और ये जो भी कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि एक गोल्ड बॉन्ड एक्ट ऑफ 1993 आया. When the situation gets back to normal, he will return the bond to RBI and take his gold bar. अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब अपने गोल्ड बार ले लेगा और जब से और स्टॉक्स दे देगा. Soon the situation got back to normal in February 2022 and Lokendra approached the RBI. अब लोकेंद्र RBI जाता है. RBI returned him gold bars. RBI ने उसे गोल्ड बार्स दे दिए और अपने बॉन्ड्स वापस से ले लिए. He saw that the gold bars were less in amount of rupees 150 crores and sued RBI with the government of India for his lost gold bars. Now, tell me एक बात यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी कुछ हमारे पैसेज ने क्या बोला है, हमारे पैसेज ने बोला है कि अगर कोई भी एक्ट होता है, ठीक है, and which is stemming from a statute or something, तो वहां पे state will not be liable. अब यहाँ पे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? सोच समझ के आंसर देना. आई विल शो यू द एग्जैक्ट लाइन जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहां से. होल्ड, गिव मी 1 मिनट. हाँ, ये वाली लाइन. The principle of this case holds if any act was done in the exercise of sovereign functions, state will not be held liable. क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स लिए और गोल्ड बार्स दिए, क्या was it as per the any act? Yes or no? Yes, it was as per the Gold Bars Act of 1993. तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल होगी कि नहीं होगी? सोच समझ के बताओ. गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती. फॉर दैट वेरी रीजन मैं नॉट लायबल वाले ऑप्शंस को देख सकती हूँ और लायबल वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकती हूँ. ठीक है, अब ए एंड बी के बीच में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है. अब
बी क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी लायबल बिकॉज लोकेंद्र कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर द लॉस बार फ्रॉम आरबीआई एज आरबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. I think I have told you time and again, be it in class, be it on YouTube, or various other sessions that we have, never choose an answer with an extra legal knowledge. ये जब बात हमारी पैसेज में हो ही नहीं रही है that RBI is a statutory body or whatever, can we take it as an answer? Certainly not. Hence, what will be my answer? My answer is going to be A. Government of India is not liable and Lokendra cannot claim damages for the lost goods as issuing bonds by RBI is a sovereign function within the Government of India. Clear है? समझ में आया? Any issue, anyone, any problem, anybody? Shall we move further? चलो. Now, next question. ठीक है. अरे भाई हर्ष, तुमसे उन्होंने जानना चाहा क्या? नहीं ना. My only point is कि कभी भी एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज लगाओ ही नहीं unless and until the question is such कि जो कि तुम्हें बोल रहा है कि एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज लगाओ. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई थिंक 10th क्वेश्चन में तुम्हें एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज ही लगानी पड़ेगी, राइट? तो वहां तुम लगाओगे, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना. चलो नेक्स्ट. 8th के आंसर्स आप लोग अपने लिखो. Manish, a naval officer, was commanded by his battalion leader to get the Indian slaves released, which were illegally detained by the state of शांतनापुर. ठीक है, तो उसके जो बटालियन थे उन्होंने उसको कमांड किया कि तुम इंडियन स्लेव्स को रिलीज करवाओ. ठीक है, तो उसको डायरेक्शन क्या मिला था कि आपके कमांड उसे ये मिला था बाय हिज बटालियन लीडर कि आपको इंडियन स्लेव्स को रिलीज करवाना है, which were illegally detained by the state of Shantanapur. Officers went to the state of Shantanapur where these Indian slaves were engaged forcefully in terrorist activities and other terrorist funding businesses. He helped the slaves to exit from the detained place. मतलब कि अब उसने यहाँ पे help की है to exit from the detained place. अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक पढ़ने के बाद क्या उसका जो एक्ट था was it within the sovereign functions, yes or no? Yes. अभी तक तो है, उसने जो उसे बोला गया अभी तक तो उसने वो किया है. And also in addition set fire to the nearby areas where the people were detained. अब उसने आसपास के एरियाज में आग लगा दी. He did so. क्यों करा उसने ये? इसलिए किया in order to be rescued easily from the state. और इसने यहाँ पे इसलिए किया ताकि ये जो लोग हैं ये आराम से रेस्क्यू हो जाएं from the state से. यानी कि अब जो इसने यहाँ पे जो सेकंड एक्शन किया है that is setting fire to the place, क्यों किया है? For the first reason, and the first reason was कि उसे इन इंडियन स्लेव्स को रिलीज करवाना था. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब हमने यहां तक करा कि भाई यहां पे भी वो एक सोवरेन फंक्शन ही अभी तक कर रहा है. Soon the fire extended to the nearby residential areas and caused heavy damages to other citizens, burning their houses. State of Shantanapur sued the government of India. Now tell me, क्या मनीष ने इन एक्सेस ऑफ स्टैट्यूटरी पावर काम किया है या उसने अपनी एक्सेस पावर को नहीं यूज किया है? हमारे पैसेज ने हमें क्या बोला था? हमारे पैसेज ने हमको ये बोला था कि भाई आपने ऐसा मतलब आपने अगर कोई भी एक्ट करते हैं, मैं आपको वापस उस लाइन की तरफ लेके जाती हूँ. ठीक है, any act done in the exercise of sovereign functions the state will not be liable. State बिल्कुल भी liable नहीं होगा अगर कोई एक्ट हुआ है in exercise of sovereign functions. मैंने यहाँ पे एक और बात आपको क्लियर की थी कि एक्ट वो यहाँ पे ये नहीं बताते करेक्ट एक्ट, wrongful एक्ट, किस तरीके का एक्ट. अगर आपने सोवरेन फंक्शंस को करने में कोई एक्ट किया है तो स्टेट लायबल नहीं होगा. अब दो तरीके की चीजें हुई हैं इस पैसेज के अंदर. एक, आपने कुछ स्लेव्स को एग्जिट कराया है और उनको पीसफुली एग्जिट कराने के लिए आपने वहां पे क्या बोलते हैं फायर या कुछ लगा दिए, राइट? यहां तक क्लियर है? अब बताओ क्या ये एक्सेस में है कि नहीं है? कैसे है? मतलब पहले तुम लोग आंसर दो फिर मैं ही कुछ बोलूंगी. एक्सेस पावर है कि नहीं है? मेरा पॉइंट सिर्फ वहां पे है जहां पे बोलते हैं एनी एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन फंक्शंस द स्टेट इज नॉट आंसरेबल. अब यहाँ पे उसको बोला गया था कि आपको इंडियन स्लेव्स को रिलीज करवाना है. फॉर दैट उसने उन लोगों को वहां से निकाला और ताकि वो लोग पीसफुली वहां से चले जाएं उसने आसपास के एरिया में फायर सेट कर दी. नाउ क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डिड ही एक्ट इन द डिड ही क्या इसने एक्सेस में काम किया है? यस और नो? नहीं किया. ठीक है, फॉर दैट वेरी रीजन मैंने ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, ओके. अब बी एंड सी में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है.
सी बोलता है मनीष हैज नॉट एक्टेड इन एक्सेस ऑफ स्टैट्यूटरी पावर बट caused the inevitable damage to the citizens of Sultanpur. This is not a sovereign function. Government of India is thus liable. बोलते हैं कि एक sovereign function नहीं था भाई, उसको बटालियन लीडर ने, एक नेवल ऑफिसर है, उसके बटालियन लीडर ने कहा है जाके इंडियन स्लेव्स को रेस्क्यू करो, ठीक है, सेव करो, रिलीज करो, ठीक है। अब बोलते हो तुम ये सोवरेन फंक्शन नहीं है, ये तो हमारे पैसेज की कॉन्ट्रडिक्शन में चला गया। Hence, will this be considered as an answer? No. What will be my correct answer? B. Has not acted in excess of statutory power and was commanded by the head of battalion and thus is a sovereign function. समझ में आया? Clear है? Any issue? Anyone? On to this question only. किसी को भी कोई भी doubt? Okay. We move to the next question. Okay. अब ये है हमारा एक ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक हमारा क्लास में भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ था, बहुत 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 ज्यादा डिस्कशन हुआ था रादर, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक जिन लोगों को इसका आंसर सही जाएगा उन्होंने क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, आरएसएस बहुत अच्छे से की होंगी, तुमने अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज की होगी, ठीक है। लेट्स गो अहेड विद दिस। ओके देन, in the state of Kasturilal versus state of Uttar Pradesh, the plaintiff has been arrested by the officers of UP on the suspicion of possessing some stolen property. यानी कि आपको अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर, किसी प्लेंटिफ को अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर्स ने क्योंकि वो पोजेस कर रहा था सम स्टोलन प्रॉपर्टी। क्या यहाँ पे एक सोवरेन फंक्शन है? यस और नो? यस। Upon investigation, जब investigation हुआ, a large quantity of gold was found and seized under the provisions of CRPC. अब यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड को सीज कर दिया। Ultimately he was released. Ultimately उसको रिलीज कर दिया, पर गोल्ड को रिटर्न नहीं करा क्योंकि जो हेड कांस्टेबल था यहाँ पे in charge of the malkhana where the said gold had been stored had absconded with the gold. वो इस गोल्ड के साथ जाके भाग गया, ठीक है। Now the plaintiff thereupon brought a suit against the state of Uttar Pradesh for return of gold or alternatively for damages for the loss caused to him. अब plaintiff ने यहाँ पे एक सूट लाया है कि भैया तुम मेरे गोल्ड को रिटर्न करो और मुझे डैमेजेस दो जिस भी चीज के मुझे ये लॉस हुआ है। It was contended that the concerned police officer had failed to take the requisite care of the gold seized from the plaintiff. और उसने यहाँ पे ये कंटेंट किया कि भाई जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है ना, उसने requisite care नहीं ली गोल्ड सीज करने के बाद प्लेंटिफ की वजह से, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे लायबल होगी फॉर कॉम्पनसेशन। नाउ एज आई कीप टेलिंग यू, रीड द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। कब नहीं किया? क्या कंटेंट किया है उसने? कंटेंट किया है जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसने यहाँ पे requisite केयर नहीं ली है ऑफ द गोल्ड सीज्ड और फ्रॉम द प्लेंटिफ, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लायबल होगी फॉर कॉम्पनसेशन। नाउ लेट यू फर्स्ट आंसर, देन आई विल टेल यू द आंसर्स। एवरीबडी गो मार्क योर आंसर्स फर्स्ट। लेट मी सी कि तुम लोग की थ्योरी पे अभी तुमने रिवाइज करके रखा है। कभी भी पूछो तो तुम लोग कहते हो हाँ हाँ हमने तो सब रिवाइज किया, हमने तो सब रिवाइज किया है। तो लेट मी सी, डिड यू रिवाइज इट और नॉट? क्या यहाँ पे अरेस्टिंग और डिटेनिंग द गोल्ड वाज इट अ सोवरेन फंक्शन? यस और नो? बिल्कुल हाँ यार, कहीं पे कुछ चोरी हुई है, कुछ हुई है, आपने किसी को जाके अरेस्ट किया है, जो सामान मिला उसे जब्त करके रखा है, ठीक है, फिर आप उसको लेके अब्सकॉन्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अब यहाँ पे प्लेंटिफ क्या कंटेंट कर रहे हैं? प्लेंटिफ यहाँ पे ये कंटेंट कर रहे हैं जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उसने उस गोल्ड सीज की प्रॉपर केयर नहीं रखी, इसलिए वो लोग लायबल होंगे। Will the police officers be liable here? Yes or no? What do you guys think? क्या पुलिस ऑफिसर्स लायबल होंगे, हाँ या नहीं? वो एक सोवरेन फंक्शन कर रहे थे कि नहीं? उन्होंने गोल्ड को जब्त करके रखा था या गोल्ड को अपने माल खाने में रखा था या जो कुछ भी हुआ था, were they doing a sovereign function? Yes or no? Yes, they were certainly doing a sovereign function. अब यहाँ पे क्या हम कहेंगे कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या इनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि नहीं? नहीं। अच्छा, फॉर दैट वेरी रीजन अब मैं एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको बताती हूँ। अच्छा, पहले डी देखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वर नॉट एक्टिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सोवरेन फंक्शन। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आपने किसी के पास से गोल्ड डिटेन किया तो ये तो एक सर्टेनली सोवरेन फंक्शन है, हटा दिया हमने इसको एज एन आंसर। सी बोलता है पुलिस ऑफिसर्स वर नॉट एक्टिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सोवरेन फंक्शन। वापस से हमने हटा दिया यार, गोल्ड को सीज करा है, ये एक सोवरेन फंक्शन ही है, चोरी से पकड़ाया गया है वो गोल्ड। पुलिस ऑफिसर्स वर एक्टिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सोवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट बट द स्टेट इज लायबल फॉर द ओमिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। क्या ये वाला ऑप्शन मेरे पैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता? मेरा पैसेज क्या कहता था कि भाई हम ये मानते हैं कि अगर कोई सोवरेन फंक्शन होता है तो लाइबिलिटी तो आपकी नहीं आती है ना। लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज में उन्होंने ये बात कही भी थी कि, एक सेकंड में तुम्हें दिखा भी देती हूँ,
नहीं तो तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या है, ठीक है। अगर कोई भी चीज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट होती है, इट कैन नेवर अमाउंट टू अ टॉट। उन्होंने कहा अ रिजल्ट फ्लोइंग फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज नेवर एन इविल। आपने गोल्ड को अपने पास माल खाने में संभाल के रखा था, ठीक है, यू आर एक्टिंग एज पर स्टैट्यूट। क्या यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी आएगी कि नहीं? नहीं। क्यों बोल रहे हैं कैन नेवर अमाउंट टू अ टॉट? तो बॉस हमारा बी ऑप्शन तो देखो कॉन्ट्रोडिक्टरी है टू द पैसेज, हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया। हेंस व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर इज गोइंग टू बी ए। ठीक है, जितने बच्चों का ये सही गया है, हाई फाइव। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एक्ट, हर्ष, एन एक्ट क्या बोलती थी वहां पे पैसेज में बात की गई थी? रुको मैं तुम्हें एक बार देख के बताती हूँ। हाँ, any act, the principle of this case hold, any act done in exercise of sovereign functions, the state will not be liable। कोई भी एक्ट आप ऐसा करो जहां पे आप सोवरेन फंक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हो, इट विल, द स्टेट विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तुम वो वाली लाइन नहीं पढ़े हो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। ओके देन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीगल नॉलेज। आई थिंक इसके अराउंड भी बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है टाइम एंड अगेन कि भाई क्या लीगल नॉलेज कैसे करना है। एक सेकंड होल्ड करो यार। हाँ, oh, ठीक है, हैपेंस। बहुत खुशी है कि तुम लोग के आंसर सही जा रहे हैं। या सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू? आई वाज टेलिंग यू कि बहुत ज्यादा इसके अराउंड भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है कि मैम लीगल नॉलेज आएगा कि नहीं आएगा। वी कीप टेलिंग यू, इसलिए तो हम तुम्हारी सीएलके की क्लासेस लगाते रहते हैं, राइट? सीएलके इज करंट लीगल नॉलेज, कि भाई क्वेश्चन बिल्कुल से आ सकता है। क्लैट 2021 में जो जूरिसडिक्शन का पैसेज था, अगर तक अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। उसका पैसेज नंबर 1 वाज डायरेक्टली फ्रॉम सीएलके, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो रिवाइज कर लेना। दिस क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑन टू लीगल नॉलेज। लेट्स सी कि तुम में से कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही गया है, ठीक है। As compared to the ancient time when the king was subject to punishment for his wrongs and was not above the law, in medieval times this fact has changed and evolved the distinction between sovereign and non-sovereign functions। पहले बोलते थे ये ancient times में कि king को punishment मिलती थी for his wrongs और वो above the law नहीं था। मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ? उन्होंने बोला अब सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शंस के बीच में डिस्टिंक्शन आने लगा है। हेंस द लाइबिलिटी एज टू सच रॉन्ग्स हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने कहा है कि भाई अगर सोवरेन फंक्शन होगा तो लाइबिलिटी अलग होगी, नॉन सोवरेन फंक्शन होगा तो लाइबिलिटी अलग होगी। Which among the following maxim is best suitable to the above context of vicarious liability for both the ancient and medieval times in the passage? सोच समझ के आंसर दो। The correct answer here is C, ठीक है, it is C, both 1 and 3। Respondent superior क्या मतलब क्या होता है? Anybody wants to tell me what does respondent superior mean? किसी को भी बताना है? ये हमने vicarious liability में किया था। Master is liable for the acts of a servant, ठीक है। तो ये बात तो हम कह सकते हैं, वो सॉरी, हाँ, मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अ सर्वेंट, ठीक है। केवियर टेम्पटर का क्या मतलब होता है? एनीबडी? केवियर टेम्पटर, बायर इज अलोन लाइबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे तो बायर वायर के बारे में कुछ बात नहीं है, इसलिए हमने इसका कंसिडर नहीं किया, पर मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पिकारे, इसका मतलब कौन बताएगा? रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पिकारे, इट मीन्स दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अगर वो एक सोवरेन फंक्शन होगा, ये वहां से ये बात आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। डे मिनिमस नॉन करेक्ट लैक्स, लॉ डज नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिवियल मैटर्स। हेंस ए एंड 3 आर रिलेटेड, हेंस हम यहाँ पे सी को आंसर करेक्ट बनाएंगे। क्लियर है गाइस? एनी इशू, एनीवन? किसी को भी कोई भी डाउट? यस हर्ष, यू आर करेक्ट, ठीक है। तो गाइज अभी हमारा एक और पैसेज बचा है, ठीक है, एक और पैसेज बचा है, बट आई थिंक टाइम हमारा हो गया है। अब आप लोगों की शायद से जीके की क्लास होगी, राइट? मतलब जीके नहीं, जीके का अब मैराथन शुरू होगा। तो लेट्स डू वन थिंग कि अगर कभी बाद में हुआ तो मैं आपका एक और बाद में सेशन लेती हूँ, या ठीक है। बट हियर एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक द टाइमिंग्स कि अगर जीके की फैकल्टी का टाइम हो गया होगा तो फिर आई हैव टू लीव। जस्ट गिव मी 1 minute।
ओके, वी हैव टू ऑप्शंस हियर। हम एक काम करते हैं, हम दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक, बल्कि वील एंड द सेशन, ठीक है, वील एंड द सेशन। नहीं तो आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे। एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस विथ मी, यू कैन डिस्कस इट विथ मी। एनीबडी हैज गॉट 10 on 10? Anybody has got 10 on 10? I certainly can't post the questions onto Telegram group, but I've posted the passages onto Telegram group. आप वहां से passages पढ़ सकते हैं. For the questions, you'll have to come back to this session. Anybody 10 on 10? Okay, Ali Tanwar has got 8 on 10. Samarth Varshne has got 9 on 10. ठीक है. Akash has got 7. Sagrik has got 9 on 10. जितने किए उतने सही किए, क्या बात है भाई. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Spriti has got 10 on 10. Very good, guys. Very good. Okay. Anything that you want to ask me? LOD क्या है? LODA, in my opinion, it was pretty moderate. आप लोगों को कैसा लगा सेशन? Did you guys enjoy today's session? Yes or no? Enjoyed? Not enjoyed? ठीक है, ठीक है, ठीक है. कैसर has also got 10 on 10. ठीक है. चलो, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ चीज पूछनी है, और shall I give you time for the break? How do you want me to proceed? Great session. Perfect. ठीक है. 7th क्वेश्चन क्या था? एरिका, यहाँ पे वो जो कुछ भी कर रहे थे एज पर द गोल्ड बॉन्ड एक्ट कर रहे थे, राइट? तो क्या यहाँ पे वो, इफ दे आर वर्किंग एज पर द स्टैट्यूट, क्या लाइबिलिटी आएगी? नहीं, है ना? सिंपल. ठीक है. चलो गाइस, सो विद दिस आई विल नाउ टेक योर लीव. ठीक है. 7th क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? 7th क्वेश्चन में क्या डाउट है, मेरे को ये पूछो. आई थिंक फ्यू ऑफ यू आस्किंग मी अबाउट द 7th क्वेश्चन टाइम एंड अगेन. एक और बार पूछ लो, क्या डाउट आ रहा है 7th क्वेश्चन में? वापस से समझाऊं इस क्वेश्चन को? 7th क्वेश्चन पूरा वापस से समझना है, या यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट? चलो. Lokendra, a businessman, was famous for his jewelry designs all over the world. They used traditional and typical designs in jewelry and used pure quality of gold and silver metals for the same. Soon it came into the notice that the government is thinking of imposing national lockdown in the country from January 2022 in the rise of COVID-19 cases, and hence all his gold has become settled in the form of stocks before it. ठीक है, सारे stocks के फॉर्म में आ गए. अब वो अप्रोच करता है आरबीआई को कि वो उनसे गोल्ड बार्स ले लें और उसको गोल्ड बॉन्ड इशू कर दें. ठीक है. फॉर द गवर्नमेंट वाज रनिंग अ स्कीम एज पर द गोल्ड बॉन्ड एक्ट. अब ये जो स्कीम है कि भाई आप गोल्ड बार अपने दे दो और हमसे गोल्ड स्टॉक ले लो, ये एक स्कीम के हिसाब से था. जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ही विल रिटर्न द गोल्ड बॉन्ड्स टू द आरबीआई एंड टेक हिज गोल्ड बैक. अब वो अपना गोल्ड वापस से ले लेगा. Soon the situation got back to normal in February 2022. लोकेंद्र आरबीआई जाता है. आरबीआई ने उसको उसके गोल्ड बार्स रिटर्न किए और अपने बॉन्ड्स वापस ले लिए, लेकिन उसने देखा कि गोल्ड बार्स की वैल्यू डिमिनिश हो गई. अब उसने आरबीआई को सू किया है along with the government of India. Now my entire question to you here is कि गवर्नमेंट ने ये जो कुछ भी करा है कि गोल्ड बार्स लिए हैं और गोल्ड स्टॉक्स बॉन्ड्स दिए हैं, इज इट एज पर अ स्टैट्यूट? यस और नो? हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ, है ना? इट इज एज पर द गोल्ड बॉन्ड एक्ट. अब इसीलिए अगर ये गोल्ड बॉन्ड एक्ट के हिसाब से हुआ है, ठीक है, भले क्या बोलता था हमारा पैसेज? एनी एक्ट डन in furtherance of some sovereign function or something, तो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल. तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी. फॉर दैट वेरी रीजन मैंने सी एंड डी को एलिमिनेट कर दिया. अब मुझे ए एंड बी में से एक ऑप्शन चूज करना है. बी क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट लायबल बट लोकेंद्र कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉस्ट गोल्ड फ्रॉम आरबीआई एज आरबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है, जो कुछ भी बात है, क्या हमें पैसेज ये बात बताता है? नहीं. क्या इसको एज एन आंसर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं. क्लियर है? अब समझ में आया 7th? किसी और को कहीं और पे डाउट? क्लियर है? तो गाइज विद दिस आई विल नाउ टेक योर लीव. ठीक है. I hope you all enjoyed a lot. It was wonderful interacting with you all, and
I will see you all some other day, super, 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 super soon. Wishing you immense, immense, immense amount of luck. Give your best. पेपर में प्लीज घबराना नहीं, आराम से सारी चीजें करना. एज आई कीप सेइंग यार, मुझे तुम लोगों पे जितना भरोसा है, आ, मतलब मेरे को पता है कि तुम लोग अच्छा ही करके आओगे. जस्ट रिलैक्स, गिव योर बेस्ट. वॉट एवर इज डेस्टाइंड फॉर यू शैल कम योर वे. ठीक है, चलिए जी. नाउ आई विल टेक योर लीव. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. अच्छा, सेशन खत्म नहीं हुआ है, एक और फैकल्टी भी आएंगी. आई थिंक सौरभ सर, ओ सौरभ सर मैथमेटिक्स के लिए भी आएंगे. वो आपको मैथ्स कराएंगे और मैं जाऊंगी और चिल करूंगी. बाय बाय.
Good afternoon. So am I perfectly audible, perfectly visible? फटाफट बता दो क्योंकि फिर तो अपन आगाज करेंगे आज की इस सभा का. Let me check from my side also. Everything is perfect. It seems here everything is perfect. Perfect. Okay, good. So good afternoon. Sorry. तो क्रिटिकल और लीगल तुम लोग पढ़ लिए. खुश तो बहुत हो गए है ना. आंसर बहुत आ रहे थे, देख रहा था मैं. अब देखते हैं मैथमेटिक्स का क्या पोजीशन चल रहा है, कैसा चल रहा है मैथ का प्रिपरेशन. अब पता चलेगा. वैसे तुम लोग टैलेंटेड हो, मेरे को पता है, अच्छा ही कर रहे होगे. तो टैलेंटेड लोगों को क्या दिक्कत होती है. अब दिक्कत होगी अब. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. कितने लोग आ गए? परफेक्टली ऑडिबल. ग्रेट. तो स्टार्ट करें. चलो, तो आज हो गई 15th. स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू दे देते हैं मैथमेटिक्स को लेकर क्या करना चाहिए, ठीक है. और दिन हो गया वेंसडे. संडे है आपका डी डे, द फाइनल डिजिट डे, है ना. 224 में आपके आगे आने वाले ईयर्स डिसाइड हो जाएंगे कि वो 5 साल एनएलयू में, कौन से एनएलयू में अपन बिताने वाले हैं. मैं नहीं, आप लोग, प्रभु लोग. और वही डिसाइडिंग फैक्टर 19th को ही होगा. 224. हमें लगता है सब लोग जो ना तम टंच हो गए होंगे, तनातन सब अनु मलिक जी के साथ आ गए होंगे. और जावेद साहब भी किसी किसी के अंदर चला गया होगा. सब एनएलयू में जाने वाले हो ना. प्रिपरेशन अब सिर्फ फाइनल टच देना है भैया. वैपिंग वैपिंग हो गई है, स्टेप वेप लगा दिए हो, अब बस स्टिकर लगाना है. पैकिंग कर रहे हो ना, अब उस पर लिखना है बस, जिसको ग्रीट कर रहे हो, और कुछ नहीं बचा है. तो कुछ नया स्टार्ट मत करना इन 4 दिनों में, 3 दिनों बेसिकली, 16, 17 and 18th. No need to start any new chapter, any new concepts, any new thinking, any new thoughts. कुछ भी नहीं. Just sit, relax and take a deep breath, है ना. और जितना कर लिए हो उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है. उसमें हमें एक्यूरेसी लेके आनी है. एक्यूरेसी हो ही गए होगे. प्रैक्टिस इन द सेंस ऑफ कि उसमें से कुछ भी आए, आई एम एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कुछ भी आए, किसी भी तरह का आए, जिन चैप्टर्स को हमने स्ट्रांग बना लिया है, अब कुछ भी पर अपने अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब जो आता है केवल उसी को परफेक्ट करना, परफेक्शन की ओर ले जाना है. और उससे ज्यादा कुछ भी मत करना. प्रेशर लेने की कोई नीड नहीं है. आराम से कर लोगे. तो आज इस मैराथन सेशन में हम 2 सेट्स लेके आए. मैं 2 सेट्स ऐसे लेके आया हूँ जिसमें से एक सेट क्लैट ने 2020 के एग्जाम में पूछा था, पैटर्न चेंज होने के बाद. और दूसरा सेट पूछा था 2021 में. तो 2 सेट्स हम ये लेके आए. रीजन बिहाइंड दैट इज कि एक बार तुम उसको भी गो थ्रू करो कि उनके पूछने का लेवल क्या रहा था 2020 एंड 2021 में. लेकिन इससे ये मत समझना कि इस सीजन भी इसी लेवल पे आ सकता. यही आएगा, बिकॉज कंसोर्शियम पेपर्स में सरप्राइज देते रहा है. तो सरप्राइज एलिमेंट को अपने अंदर रखते हुए अपन इस चीज को देखेंगे कि पिछले 2 इयर्स के पेपर्स में उनके एलओडीज लेवल और टाइप्स किस तरह के थे. कैसलेट पूछा था कि कैसलेट में किस तरह का था, पैसेज स्पेसिफिक किस तरह के थे, क्या कैसलेट डीआई या पैसेज स्पेसिफिक का वेन डायग्राम बना था, या फिर टेबुलर फॉर्म क्रिएट हुए थे, या ऐसी हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए थे. इनका आइडिया अपने 2 सेट्स पे लेंगे. इजी सेट से आराम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये इसके इस सेट से बात ये परसेप्शन माइंड मत आना कि यही आएगा और इसी लेवल पे आएगा. ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन एंड द टफेस्ट पार्ट, है ना. तो उससे क्या होगा, कभी तुम पेपर का लेवल ऊपर नीचे भी होता है तो हम माइंड सेटअप हमारा तगड़ा रहता है, फिर अपन फोड़ के ही आते हैं, कुछ हो ना हो. ठीक है, तो स्टार्ट करें. गोला बारूद तैयार कर ही लिए होगे, पेन पेपर. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट.
ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस देंगे अपन, 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे। Okay, let's try this. I'll be back in 1 minute, just 1 minute. Cool. ओके, वंशिका का आंसर है फर्स्ट बी। ठीक है, देखते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 1। अभिनव क्या पूछ रहे हो? प्रोबेबिलिटी का सेट प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे सेंड कर देना। अच्छा, ऑर्डर दे रहा, देख रहे हो? सेंड कर देना भैया, नहीं तो देख लो, जान लो। ओके ओके जी प्रभु। आप ऐसे आदेश देंगे तो हम तो माल ही लेंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। प्रिया 2023 के बच्चे के लिए भी यूजफुल है। अरे, क्वेश्चंस हर किस के लिए यूजफुल होता है, किसी के लिए कुछ बेकार नहीं होता। इफ यू आर रेडी में बता, प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्या कर लो। What is the area of the table which is uncovered by any of the objects? जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, कर लो जैसे टाइम लो, कर लो। वेरी अनरीजनेबल एंड वेरी वैग। हर्ष माहेश्वरी, आपको कैसे पता रीजनेबल नहीं था? And question number 2, move to the third. Oof.
Now move to question number fourth. Now fifth. तो पांच के पांच क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। इजी था, आसान। अगर आता है तो चीजें आसान होती है। अगर फॉर्मूला पता हो, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, तो इन पांच क्वेश्चंस को करने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगे होंगे। डन। चलो, अब अपन करते हैं इसे सॉल्व। A room having dimension as mentioned in the chart below as a table, bed, and a chair. There are three books kept on the table side by side, and also a lamp having radius 3.5 इंच। किस पे रखा है? ये टेबल पे रखा है। और साइड बाय साइड का मतलब क्या हो गया? साइड बाय साइड का मतलब हो गया, give me a minute, what is this is going on?
any object as mentioned above. एरिया ऑफ द रूम, तो रूम में कोई सामान रखो तो किस पे रखोगे? फ्लोर पे रखोगे। मतलब बेसिकली यहाँ क्या बोल रहा है? फ्लोर का एरिया करने कह रहा है। एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर पे रखेंगे वही एरिया कवर करेगा। अब फ्लोर पे क्या क्या चीजें रखी हुई है अगर ये बताएं तो? एक बेड रखा है, एक टेबल रखा है, और चेयर कितनी है? चेयर भी एक ही है। देयर आर 3 बुक्स केप्ट ऑन द टेबल है, बाकी सब चार्ट के हिसाब से चल रहा है। हैविंग डायमेंशन मेंशन चार्ट, बेड एंड चेयर। और टेबल के ऊपर अगर हमने बुक रखा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो एरिया जमीन पर नहीं रखा, टेबल का एरिया कवर करेगा। तो अब क्या करो, रूम क्या एरिया निकाल लो, किसका? फ्लोर का। और उसमें से माइनस कर दो किसको? बेड, टेबल और चेयर के एरिया को। रूम का एरिया मतलब रूम का एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं, वो भी बेस का। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 इंटू 12, ये क्या बना? 216। 18 इंटू 12 इज 216। बेड का एरिया 3.5 इंटू 6, दिस इज बिकम्स 21 स्क्वायर फीट। एरिया हमेशा स्क्वायर फीट में होगा, यूनिट देख के। टेबल 3 इंटू 4 दैट इज 12, एंड चेयर 2 इंटू 2.5, ये हो गया 5। माइनस कर दो, 216 से माइनस कर दें, 21 और 11, 12, 23 और 5, 33, 5, 38 माइनस करोगे 216 से तो क्या आएगा? 178 स्क्वायर फीट आया। इजी, ये आसान था ना? लेकिन हाँ, आसान कब होगा? जब तुम्हें ये पता होगी एरिया क्या होता है। यानी रूम दिया हुआ है तो रूम में केवल वॉल्यूम नहीं लेते अपन, इसमें एरिया भी हो सकता है अलग अलग सरफेस का। तो टेबल हम अपन छत पे लगा के रखते नहीं है, फेविक्विक से चिपका के, इसे लटका के, है ना, उल्टा लेके पड़ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। फर्श पे रखेंगे, फ्लोर पे, रूफ पे तो रखेंगे नहीं ऐसे फैन की तरह। समझ रहे हो ना? तो उस चीज को सिर्फ हमें माइनस करना होगा। मूव द नेक्स्ट वन। What is the area of table which is uncovered by any of the object? तो अब इसमें टेबल के एरिया से माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले वाले में फ्लोर के एरिया से माइनस करना पड़ा था उन एलिमेंट्स को जो फ्लोर पे रखे हुए थे। अब हमें माइनस करना है टेबल के एरिया से उन एलिमेंट्स के एरिया को जो टेबल पर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो टेबल का एरिया देख लो। अब देखो यहाँ पे यूनिट अगर हम देखें तो इंच में दिया हुआ है। ये हमें सबसे वाला हिंट करता है कि हमें किस में कैलकुलेशन करना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन किस में करेंगे? इंच में करेंगे हम। 1 इंच इक्वल्स टू हाउ मेनी फीट? 1 इंच में कितने फीट होते हैं? सॉरी, 1 इंच में कितने फीट होते हैं? जल्दी बताओ फटाफट, फिर मैं बताता हूं। अच्छा, टेबल में हाइट भी होता है, लेकिन एरिया हम उसके ऊपर वाले सरफेस का निकालेंगे, तो उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होगी, हाइट नहीं होगी, वॉल्यूम हो जाएगा वो। एरिया में अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर्मूला रहता होगा। एक भी आंसर अभी तक क्या ही नहीं आया। जल्दी बताओ, 1 फीट में कितने फीट होते हैं? आंसर नहीं करोगे तुम लोग, हमको पता है ना। आधी जनता तो ये सोच रही होगी कि सुना भी एक ऐसा सवाल कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, ये इंसान उल्टा पूछ दिया कि 1 इंच में कितने फीट होते हैं। हाउ मेनी फीट इन 1 इंच? ना ऐसा लग रहा होगा। ये यही तो चमत्कार है। अब बताओगे तो तब तक हम पूछेंगे तुम लोग को, आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी बताओ। नहीं बताओगे, मैं ही बता दे रहा हूँ, इतना समय लोग कैसे होगा? 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इसमें 1/12 फीट होगा, इसमें कितना सोचना था? 1 इंच इक्वल्स टू 1/12 फीट, या 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच। चलो हटाओ, तुम लोग को ना हुआ। तो 3 फीट बराबर 36 इंच, एंड 4 फीट इक्वल्स टू 48 इंच। तो टेबल का एरिया हो गया 36 इंटू 48। 3 इंटू 4 12 होता है, 12 का क्यूब बन गया, ये कितना बन गया? 1728 स्क्वायर इंच। 1728 स्क्वायर इंच टेबल का एरिया हो गया, सरफेस एरिया। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, क्या है हमारे पास? चेयर। चेयर टेबल रखोगे, बुक रखोगे, और इसमें टेबल लैंप रखोगे, चेयर भी रख दोगे टेबल पे। वाह, पंखे पे चढ़ना है। रुको, बुक का एरिया क्या होगा? बुक का एरिया होगा
12 इंच इंटू 6 इंच कितना हो गया? 72। कितनी बुक रखी है? 3 बुक्स ऑन टेबल, साइड बाय साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ये 216 स्क्वायर इंच एरिया कवर कर लेगा। कितने में से? 1728 स्क्वायर इंच में से। ये टेबल का हो गया। अब ये बुक का हो गया। अब टेबल लैंप भी है। टेबल लैंप का रेडियस क्या है? 3.5। रेडियस क्यों दिया? क्योंकि टेबल लैंप का बेस बोलना इसका मतलब है सर्कुलर होगा। तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। होता है क्या 22/7? जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी। 22/7 पाई की वैल्यू होती है क्या? प्रॉब्लम, चैट्स नहीं आ रहे हैं। ओ, यहाँ से प्रॉब्लम था, तुम लोग चैट ही नहीं पढ़ पा रहे थे। पाई आर स्क्वायर। हाँ यार, तुम लोग के आंसर्स आ रहे थे, इधर अपडेट ही नहीं हो रहा था। हमको तो थोड़ी देर बाद पता चला कि काचू गड़बड़ी हो गया चैट बॉक्स। ठीक है, अब हो गया सही। कूल कूल कूल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम लोग टैलेंटेड, इसलिए तुम लोग टैलेंटेड कहता हूँ ना। इधर क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है तुम लोगों को। बैकअप में एस्ट्रोलॉजी करना, हस्तरेखा विज्ञान, है ना, और क्या था ये, इसको क्या था, चेहरा पढ़ने वाला काम, ये सब भी कर सकते हो। खूब खूब खतरनाक टैलेंट तुम लोग। चलो थर्ड देखते हैं। हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस ऑफ द रूम कंप्लीटली? कवर द रूम सरफेस कंप्लीटली। फ्लोर के एरिया में डिवाइड कर दो चेयर के एरिया को। फ्लोर के एरिया से डिवाइड कर दो चेयर के एरिया को, सॉरी टेबल के एरिया को। तो आपको निकलने लगेगा कि कितने टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्लोर का एरिया आपके पास है 18 इंटू 12, इसमें डिवाइड कर दीजिए टेबल के एरिया यानी 3 इंटू 4 से। तो ये 6 और ये 3, यानी 18 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें पूरे एरिया कवर करने में। नेक्स्ट, पांच के पांचों सही जिसके होगी बताना। If the entire room is to be filled by books having same dimension are lying on the table, then how many books are required? कितने बुक की जरूरत पड़ेगी? पूरे रूम को फिल करना है, पूरे घर को किताबों से भरना है। इसी रूम में जाना पसंद करोगे? तुम लोग तो ना जाओगे। तो क्या करोगे? अब वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करो। किसको डिवाइड करो? रूम के वॉल्यूम को 18 इंटू 12 को डिवाइड करो किससे? बुक के वॉल्यूम से। अब बुक का वॉल्यूम देखो, डायमेंशन इंच में है और यहाँ पे डायमेंशन फीट में है, तो भैया इसको फीट में बदल लो और क्या। तो रूम का डायमेंशन है 18 इंटू 12, ये हो गया कितना? फीट। अब ये है इंच में। बुक 12 इंच यानी 1 फीट। 6 इंच मतलब आधा फीट, तो 1 इधर लेते हैं, 2 ऊपर कर देते हैं। एंड 3 इंच मतलब 1/4, तो 4 ऊपर कर दे ले लो। हो गया वॉल्यूम। डिवाइड करने से है नहीं, मल्टीप्लाई करना है, बस करते रहो। यहां से 6 ले लो तो 12 बन जाएगा। 144 इंटू 144, ये आंसर हो जाएगा 20736। स्क्वायर कर देंगे। अब कैसे किया मल्टीप्लाई वही बताता हूँ ध्यान से। आप लोग क्या करोगे? लग गए होगे रेस में, मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, 12 12 18 ऐसे कर रहे हो। 18 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2, जस्ट डू दैट, है ना। ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करने में टाइम जाता है। स्क्वायर्स क्यूब याद करने के पीछे फंडा यही था कि इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, ओरली कैलकुलेट करोगे। कैसे? देखो, एक 12 यहां से आ गया, एक 12 यहां से आ गया। मैं कलर चीज को दिखाता हूँ, देखो। ये आ गया, यहां से 12 आ गया, यहां से 12 आ गया, बन गया 12 स्क्वायर।
अच्छा, ये जो 18 है, इस 18 को मैंने लिखा 6 into 3, सोच लिया मन में। ठीक है, 6 into 3। अब जो ये 6 है, इस 6 को इस 2 के साथ ले लिए तो बन गया 12। तो दो 12 थे, तो अब एक और 12 आ गया। और ये 4 इस 3 के साथ चला गया, तो एक और 12 आ गया। तो ये क्या बना, 12 की पावर 4। 12 is to power 4। अब ये इजी है करना, अगर याद किए हो स्क्वाड्स तो 144 का स्क्वायर बन गया 20736। बिना किसी टेंशन के सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई भी नहीं करना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम बचेगा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके, खास करके। फिफ्थ देखो, हाउ मेनी चेयर्स कैन बी पुट इनसाइड द रूम सो दैट कवर द एंटायर फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। कितने चेयर लगाना है फ्लोर एरिया में, तो रूम में डिवाइड कर दो किससे, चेयर के एरिया से। चेयर क्या है, 2/2.5। ठीक है, तो कितने आएंगे कर लो, 2 into 9, अच्छा नीचे कर देता हूँ लोगों, 18 into 12, ये रूम का हो गया। और चेयर हो गया कितना, चेयर हो गया 5। 5 से डिवाइड राइट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 2.5, 5 हो गया। अब यहां पर देखो अप्रोच, ये 18 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 और 0.4। ठीक है, तो 36 और 72 मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 18 72, 2 और 7 43.2। तो 43 लगेगा। 0.2 चेयर तुरंत लगाएंगे नहीं रूम में, ऐसा करोगे क्या, एक दो चेयर को बीच से काट दिया, आधा चेयर लगा दोगे 0.2 वाला पार्ट, यानी कि दिस वाला पार्ट 43 इज ऑल इंटीजर वाला पार्ट, थोड़ा सा जगह बच जाएगा कोने में, छोड़ देना और क्या। ठीक, किसके पांचों सही हुए, 5 out of 5। फॉर्मूला रट लो, जिसका नहीं हुआ इसका करेक्ट तो, और कोई चारा नहीं है इसमें। आपको एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। क्या बात है, सबके 5/5। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे फिर मैथ में क्यों थी, में क्लैट के एग्जाम में 15/15 नंबर आया, हम बता दे रहे, देखना 15 out of 15 वाले हो सबके सब। बस इसी तरह से चलते रहो। हम्म, तो इससे पहले वाला जो सेट हमने किया था वो 2020 में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन सेट 2021 में है, टोटली ऑल अबाउट क्लैट 2022। एक रेफरेंस ले रहे हैं अपन 2020 और 2021 से, और फिर उसके बाद कुछ सेट्स और करेंगे तो द प्रैक्टिस ओरिएंटेशन क्लैट 2022 के लिए। इतनी खुशी सत्य प्रताप सिंह की। अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, पेपर अच्छा जाएगा। आपने चेंजेस किए थे क्वेश्चंस में, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। कहाँ पे नहीं आए थे, फ्लैट में ए एग्जैक्ट का वाला सन आया था, कैसी बात कर रहे हो। तुम भूल ही गए, हमको याद ही है, यही सवाल आया था।
फिक्स हो गया? Go to the seventh one. Seventh done. Chalo, eighth. नाइन्थ में ए भी आंसर हो रहा है, डी भी आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? दो दो आंसर, इतने आसान सवाल। हाई। अच्छा, कर लो कर लो। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट सेट।
6 to 10 ऐसा समझ रहा हूँ, लास्ट सवाल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने का। अ, 10th का ए भी आया है, 10th का बी भी आया है, 10th का डी भी आया है, सी बचा है बस, है ना? प्रभु लोग जरा उस पे भी तुम लोग कृपा कर दो, है ना? ए बी डी तो बोल ही दिए हो। तो आया अखिलेश कुमार जी आए हैं सी लेकर। सी एंड डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, जैसे भी हो रहा हो। आया तो देखो, ए बी सी डी सब आना चाहिए ना। तीन लोगों ने बोल दिया था ए बी डी सी, कोई बोला ही नहीं था, बुरा नहीं मानता वो, बताओ। बोलता हम ऑप्शन रहेंगे नहीं अगले बार से। तो तुम लोग जब सही है कर रहे हो तो ये सही और कर लो। गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, सही की बात कर रहा हूँ मैं, गलत की बात तुम्हें करता ही नहीं, टैलेंटेड पर्सन गलत, अरे रे। चलो ठीक है, देखते हैं अब हम यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 6 से। So a newly found formed state government wants to bring more development in the state. Therefore, the government proposed to launch various welfare programs. Before bringing up any welfare program, the state government intended to understand the population percent of the state by age group so that the government could plan the welfare programs accordingly. ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं है, सिर्फ पंचायत है ना? इन पंचायत पे आप ना पढ़े तो ये लिख देता हूँ, लो पंचायत, जीतू भैया वाला नहीं है, वो मैथ वाला है ये, तो वहां मत पहुंच जाना अमेजन प्राइम पे। आगे आओ इधर सवाल पे। द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड दैट द स्टेट 30% चाइल्ड ग्रुप ऑफ 0 to 15, हाईलाइट कर देता हूँ परसेंट को, सही याद रहेगा, है ना? 30% 0 से लेकर 15 के बीच रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा। नेक्स्ट टू चाइल्ड पॉपुलेशन 17.75% age group of 16 to 25. The early adult population of 26 to 35, 17.25. 36 to 45 is 14.50. And 46 to 55 is 14.25. Early state, elderly population state 56 to 62, 65 is 5.12, and 66 above is 1.13. Was completely less than to get a better clarity, the state government concerned is seeking the answer in the following questions. Sorry. There are 400 million people below 36 years. How many million people are in the girls group of 56 to 65? 36 below में कौन कौन से आ जाएंगे? 36 below में आ जाएगा 0 to 15, 16 to 25, 26 to 35। ठीक है, अब 0 to 15 में है 30%, 16 to 25 is 17.5
75 and 26 to 35 17.25। हाँ मीरा जी कहिए। तो ये सब मिला के कितने हो गए? 17 17 34 और 15 65%। और इसकी वैल्यू कितनी है? 400 मिलियन। सो 65% इक्वल्स टू 400 मिलियन। मैं तुम तो जा रहे थे बाय लिख के आए थे, आंसर देखो बोल से क्या 65%। चलो और क्या पूछा है? 56 टू 65, 56 टू 65 में है 5.12%। तो 5.12% की वैल्यू निकाल दो। 400 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 5.12। पांच से काट दो 13 हो जाएगा। 13 इंटू 5 और 80 इंटू 400। और 13 से ये जाएगा क्या? 13 इंटू 3। देख लो, चेक कर लो। मैं ही कर देता हूँ। 13 जाएगा। 13 इंटू 3 इज 39। 39 12 122। 13 इंटू 9 इज 117। 0.39 के आसपास है। 0.4 मान लो अपने हिसाब से। 0.4 मान लो तो 32.72 मैच कर जाएगा। 4 मान लो। 80 इंटू 4 कितना हो गया? 32। अब ऑप्शन के हिसाब से पहले भी जाना पड़ेगा 32.72 पे। लेकिन वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, 31.7 के आसपास आएगा आंसर। लेकिन नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि ऑप्शंस में भी हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। 5.12 कहाँ से लाए? 5.12 यहाँ से लाए। ये देखो ना, ये देखो, ये यहाँ दिया हुआ है। जो एज ग्रुप 56 to 65 के बीच में लाई कर रहा है वो 5.12% है। तो वही तो पूछा है, 56 65, तो 5.12% वही है। अब यहाँ पे एक स्लाइटली मिस्टेक था। कब? लास्ट ईयर में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अपन इसको ऐसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 39 इंटू 8 अगर एग्जैक्टली करें, अप्रोक्सीमेशन में भी करें तो 32 हो रहा है। एग्जैक्टली अगर करोगे तो 8 कम कर दो तो ये 31.9 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। 1.9 मिलियन के आसपास में इसकी वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे छोटा सा अब यहाँ पे छोटा सा क्या है, करेक्शन रिक्वायरमेंट था फिर लास्ट ईयर में, फिर बाद में उसे सही कर लिया गया। हमारी तरफ से नहीं, कंसोर्टियम में। क्या, मेरे को ओपन प्रश्न बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्या गलती थी। क्वेश्चन यहाँ पूछा है, हाउ मेनी पीपल, ये जो पूछा है, दे आर 400 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर्स। सो अगर मैं ये वाला कंसिडर ना करूं, ये वाला कंसिडर ना करूं, और बिलो 36 में केवल इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करूं, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। पहली बात में सुन लेना, फिर बोलना कि ऐसा दिक्कत है। अब ये दोनों वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करूं और इसको नहीं करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी? 35%। अगर मैं इस 65 की जगह सिर्फ 35 पे कैलकुलेट कर देता, समझ रहे हो, कि 35 की वैल्यू अगर मैं मान लेता, 35% की वैल्यू है 400 मिलियन, और यहां से मैं 5.12% की वैल्यू निकालूं तो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा था। निकाल दिखा देता हूं। 400 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5.12। 5 से करोगे 7 आएगा, 5 से करोगे 80 आएगा। 7 इंटू 7 आता है 59, और फिर 49, और 227 इंटू 3 0.73। इससे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करने जाए तो ये वैल्यू मैच कर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। किससे? कंसोर्टियम के साइड से लास्ट ईयर में, क्योंकि उन्होंने इस ग्रुप को ऐड नहीं किया था। बट बाद में क्लेमिंग के बाद इस चीज को करेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अपन क्लेम करते हैं ना, उसके बाद हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 46 टू 45। सो वेयर इज 46 टू 45? 46 टू 45 ये है ना? द पीपल 14.25% एंड 26.35। 26 टू 35 एज ग्रुप कितना है? अर्ली पफ 36 टू ये है 17.25। इसका डिफरेंस है 15.75। तो 17.25 minus 14.25 and the value is 15.75। तो ये वैल्यू 3% हो गई, इसकी वैल्यू 15.75 है। तो बोलता है टोटल पॉपुलेशन यानी 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। तो 15.75 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100
ये हो जाएगा 5.25, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 525 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं। Out of every 5,600 person, what is the number of persons below age 26 year? Below age 26 year, below age 26 years में कौन कौन से ग्रुप आने चाहिए? 0 to 15 और 16 to 25। अब 0 to 15 है 30%, देखोगे अगर यहाँ दिया 30% कहाँ है? 0 to 15 के बीच में है। और नेक्स्ट टू यानी कि 16 to 25 के बीच में क्या है? 17.75। इसके बीच में है 17.75%। तो आउट ऑफ 5,600 नंबर ऑफ पर्सन बिलो, इन दोनों करेंगे यार कितना बनेगा? 47.75%। किसका? 5,600 का निकाल दो। 5,600 का 47.75% निकाल के अब यहां पर तुम निकालने जाओगे, यहीं पे अब दिक्कत करता है निकालना। अब यहां पे देखो, अब जनरल अप्रोच, कौन सा अप्रोच? ब्रह्मास्त्र। अब ये करते हैं अपन, ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, यही करते ही है, एक यही हो गया जहां तक मुझे उम्मीद है। जैसे जैसे काटोगे, अब काट के रक्त रक्त कर दोगे, ऐसा नहीं करना। अगर मैं इसको 50% मान लूं, किसको मान लूं? इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि यूज अप्रोक्सीमेशन ऑलवेज इन कैलकुलेशन। 47.75 को मैं 50 मान लूं, तो 50% ऑफ 56 यानी आधा तो करना ही है इसको। ये 2800 तो होगा ही। ठीक है, अब 2800 होगा तो ये जो बी और सी है ये तो कैंसिल हो गए। बी और सी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? ए और डी। क्योंकि अब मुझे 2800 है, 50 किया है किसको? 47.25 को। यानी मैं यहाँ पे 2.75, सॉरी 2.25% डिक्रीज करने वाला हूँ। 2.25% घटने वाला हूँ। तो 2.25 की वैल्यू 1000 तो होगी नहीं, 1000 के बराबर तो होगी नहीं। इतना तो क्लैरिटी आ गया क्वेश्चन करने के बाद। देखिए अगर मैं यहां से माइनस भी हो जाऊं, कितना माइनस हो जाऊं? डिफरेंस कितने का दिख रहा है मुझे? 2.25% का दिख रहा है। 2.25% का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो अगर मैं इतना डिफरेंस डिफरेंस भी कर लूं ना, तो भी वैल्यू इतनी कम नहीं होगी। 2800 से 17 या 16 चले जाए। अब 2.25 कैसे निकाले? अब यहां भी हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले कि हम 5600 में मल्टीप्लाई करें 2.25%। ना, बिल्कुल नहीं। जीरोस मेथड हमने पढ़ा है, क्लास में कई बार डिस्कस किया है, उसका यूज करेंगे। 2% की वैल्यू हो जाएगी 112 और ये 0.2 है, तो 2 का एक जीरो कम करेंगे तो 0.2 प्लस 11 और ऐड कर दो, अपने मन से 12 ऐड कर लो, यानी 124 माइनस कर लो इसमें से 124। जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, देख लो। 124 माइनस करेंगे आएगा 6, और ये 9 क्या? 762, 2676। और ये मेरा अप्रोक्सीमेशन में 2674, काफी नियरेस्ट, काफी क्लोज दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज बी। मतलब इन हैवी कैलकुलेशंस को हमें नहीं करना बेसिकली। इनकी प्रैक्टिस अगर आप इन 4 दिनों में कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम ये चीज नहीं करेंगे, जीरो से काटा, डबल जीरो काटे, 2 से 50 कर रहे हैं, 2 से 28 कर रहे हैं, 2 से हम कर रहे हैं 25, 2 से कर रहे हैं 40, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं। ये नहीं करना, ये करने में समय बर्बाद होगा। आई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? है ना? तो हमें बेसिकली करना क्या है? ऑलवेज गो विद द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अपने आप एलिमिनेट करके दे देगा। Which age group account the maximum population in the state? A maximum population in the state is clearly visible, 30% in the age group of 0 to 15. So there is no any options to D. सिर्फ देख के ही कर सकते थे। If there are 20 million people in the age group of 56 to 65, 56 to 65 में कितने लोग हैं? 5.12%। तो इसकी वैल्यू है 5.12%। वैल्यू कितनी है इसकी? 20 मिलियन। What is the difference with the number of people age group of 16 to 25? 16 to 25 कितने थे? 17.75।
और फिर 46 to 45, 46 टू 14.25, 14.25, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 3.5 का। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, मतलब मुझे 5.12% की वैल्यू गिवन है 20 मिलियन, और मुझे 3.5 की वैल्यू चाहिए। बस कैलकुलेट को जीरो लगा लो, यहाँ यहाँ कैंसिल कर दो और कैलकुलेट कर दो क्या आ रहा है, जो भी आएगा आंसर कर देना। चलो मैं कर दूं, चाह तो यही रहे होगे, कर ही देता हूँ लो। तो 35 into 2 कितना होता है? 70, और दो जीरो और आ गए, नीचे क्या है? 512 है, लगभग 13 के आसपास जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं गिवन है। तो पहले अब यही यही बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस उन्होंने टिक करके दिया था पेपर जब ये रिलीज हुए थे, जब इसका आंसर की रिलीज हुआ था ऑन, जब भी क्या कब हुआ था, जून जुलाई पेपर हुआ था ना, तो इसको टिक करके दिया गया था, बट बाद में क्या करते उसको क्लेम डालने के बाद इसे रिवोक कर लिया गया, क्योंकि इसका आंसर 13 पॉइंट में आएगा, कितना आएगा? 13 पॉइंट समथिंग जाएगा आगे, जो ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, क्या हो गया? समर्थ। चलो अभी सीखते हैं अपन एक अच्छा सेट है, कई बार अपन उस चीज की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, यहाँ कराने का रीजन ये है, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। दिस इज 4 elements बेस्ड वेन डायग्राम। फ्लैट एलिमेंट का कलर, वो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ो ना, आ जाएगा, उसमें दिया होगा। अरे बात ने टाइम देने की नहीं है समर्थ, बात है बनने की। बन गया ना ऑप्शन, तो क्या हो गया, तुम अपने ऑप्शन के साथ छोड़ देते। अच्छा कभी कभी लगता है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हम गलत तो नहीं कर गए, लेकिन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है ना, नेक्स्ट लेवल की, तो उसके बाद ये सब व्यर्थ लगता है कि अरे हम जो बनाए सही है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तब आना चाहिए जब हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हो, तब आपको जो आंसर्स करेंगे वो सही है। हमने किया, सही किया भाई। तो मैं हिंट दे दूं, ये जो सेट है इसमें दो वेन डायग्राम बनेंगे। एक वेन डायग्राम बनेगा 3 एलिमेंट का, और एक वेन डायग्राम बनेगा 4 एलिमेंट का। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस वाले डायरेक्शन की हाई है, टफ।
2010 के लिए अलग बनाओ, 2012 के लिए अलग, 14 के लिए अलग बनाओ। लास्ट 4 डेज में कौन से टॉपिक्स पक्के रिवीजन कर ले जो आ सकते हैं? दर्शन, वो टॉपिक रिवीजन करो जो तुमको आते हैं। जो आ सकते हैं वो तो कोई नहीं बता सकता, एग्जाम का कंडक्ट करने वाली बॉडी बता सकती है बस। जो हमें आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, इतने अच्छे से कर लें कि उनके बेसिस क्वेश्चंस कुछ भी आए हमसे बन जाए। 2010 के लिए 3 एलिमेंट्स के वेन डायग्राम बनाइए। 2014 के लिए 4 एलिमेंट के वेन डायग्राम बनाइए। उसके बाद 2010 का जो वेन डायग्राम है उसमें जो डेटा गिवन है उस डेटा का यूज 24 के वेन डायग्राम में, 20 मतलब 2014 के वेन डायग्राम में भी यूज होगा। और बाकी डेटा जो नहीं है वो नहीं है, और जो है वो गिवन है। चलो बनाते हैं। In 2010, the Olympic events, there were 3 tracks, 200 meter, 400 meter, and 600 meter long. तो ट्रैक है, कहाँ बना दे? जगह तो है, दिख नहीं रही मेरे को कहीं पे, यहीं बना देता हूँ। नहीं, वैल्यू मैच करेगी कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपके पास पैसेज तो देख लिया ना, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट, नहीं जूम आउट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, चलो इसी में बनाते हैं और देखते हैं।
So 200, 400 and 600. 200, 400, 600. 200, 400 मीटर ये रेस के वो ट्रैक है और 600 मीटर का रेस ट्रैक। ठीक है। 250 एथलीट्स। आज रिजल्ट आ रहा है काय का किरण। पार्टिसिपेट द रेस्ट। रेस में कितने के पार्टिसिपेट किए 250 सब मिलाकर 250 पार्टिसिपेट्स किए सब मिलाकर 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। दे रैन ईदर 200 मीटर और 400 मीटर और 600 मीटर रेस और 2 out of 3 रेसेस और ऑल द 3 रेसेस मतलब बात वही है मैंने नाम बोल रहा है 102 ऑफ देम रैन 200 मीटर रेस। तो 200 मीटर में कितने आ गए लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट देन विल डिस्कस। तो 200 मीटर में कितने लोग आ गए 102। तो ये आ गए 102 ये 200 मीटर में। 112 them ran in 400 meters तो 400 में आ गए 102 लोग। एंड 138 of them ran in 600 मीटर तो यहाँ आ गए 138। 62 of them ran only 400 meter race only 4 is 62। 42 of them ran both 200 and race and 600 meter race but not 400 meter race। तो 200 एंड 600 में कितना है 42 तो ये वाली वैल्यू कहां जाएगी 42 क्योंकि क्या बोला नॉट 400 यानी 400 में नहीं जाना चाहिए इसीलिए ऊपर वाले में लिखा है। इन 14 अब 14 में बाद जाएंगे और कोई इंफॉर्मेशन दिया है देख लो। A new 800 meter long track was added to 40 more athletes participants that they participated 2010 some of the old athletes ठीक है। 23 athletes ran both 200 meter and 400 meter in 2010। 200 and 400 कितने हैं 23। ठीक है तो ये वैल्यू ले लो x ये वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस एक्स। और कहीं पे 2010 का डेटा दिया है ये दिया है। आउट ऑफ 27 एथलीट्स हु रैन 400 मीटर एंड 600 मीटर रेस इन 14 नहीं ये नहीं है। Out of 27 athletes who ran both 400 meter race and 600 meter race 400 and 600 कितने हैं 27 but not 200 meter race। ठीक है तो ये आ गया कितना 27 who 400 and 600 but not 200 ये तो से है। अब इससे डेटा पहले आप डेटा निकाल लेते हैं। x बचा है क्योंकि बिना x से तो काम चलेगा नहीं। तो x कैसे निकाला जाए x कैसे निकाला जाए x की वैल्यू कितनी आएगी ये भी मैं बता दूंगा। नहीं अब तुम बताओ x निकाले कैसे क्योंकि वो डेटा कुछ दिया ही नहीं है। x तो निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए कॉम्प्लिकेटेड है अरे नहीं सोचो इजी है। बता दूं अच्छा बताओ ओनली 600 में कितने लोग आएंगे ओनली 600 में कितने लोग आएंगे 138 माइनस 69 माइनस ऑफ x आएंगे कि नहीं। ओनली 200 में कितना आएगा 102 माइनस
एक्स माइनस 23 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, इन दोनों का समेशन 23 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, 102 माइनस 23। 102 माइनस 23 कितना आया, ये 679, ऐसे कुछ आया। टोटल समेशन अगर बोले तो दोस्त 250 है, टोटल 250 है, 200 में 102 है, इन सब का समेशन कितना हो गया, 62 हो गया, 27 हो गया, 138 माइनस 69 माइनस एक्स हो गया, इसकी वैल्यू है 225। यहां से एक्स अपन निकाल लेंगे। अब बताओ कुछ था, यहां से एक्स निकाल लो जितना भी आए, तो ये 69 और 138, 69 ही बचेगा। तो 102 प्लस 67 प्लस 27 प्लस 69 माइनस 225 इक्वल्स टू एक्स। तो माइनस 225 इधर कर दिया, एक्स उधर कर दिया, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 102 प्लस 67 इज 169, 169 और 27 इज 169 और 30 कर लो, 199 तीन कर लो, तो 196, 196 प्लस 69, 265। और कैलकुलेटेड वैल्यूज कुछ उल्टा पुल्टा बता दे रहा हूँ। डिपेंड्स ना। तो ये वैल्यू 250, 250 है ना। कितना है समेशन, 67, 27, 87, 94, 196, 265, एक्स की वैल्यू आ गई 15। तो दिस इज इक्वल्स टू 15, दिस इज इक्वल्स टू 8। अरे वैल्यू रखते चले, देखो टू जो जो लाल रंग से सारी जगह देखो वैल्यू जो हमने पुट करके रखा है वो वैल्यू रखते दिया, ने का डायग्राम बनाया, एक्स की वैल्यू निकाल, इस तरह से टोटल समेशन दिया है 250, या देखो कहाँ लिखा है, दे आर टोटल 250 पार्टिसिपेंट्स, दिस इज मेंशन्ड हियर। सबको जोड़ दिया, 250 के बराबर कर दिया। ये जो रेड वाला 200 मीटर है ये ऑलरेडी गिवन है 200, प्लस कर दिया ये वाली वैल्यू ओनली देन 27 प्लस 62 दैट इज इक्वल टू 250। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 15। अब क्या करोगे, अब बनाओगे चार वाला वेन डायग्राम, फोर एलिमेंट्स वेन डायग्राम। अब फोर एलिमेंट्स वेन डायग्राम कैसे बनाए अपन, तो एक नया पेज निकाल के बताता हूँ, फोर एलिमेंट वेन डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, समझो। What is this? Invisible? Yes, better to leave this type question बस for practice session, करना चाहिए।
देखो आपको एक बताता हूँ, 4 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम अपन कैसे बनाए। एक डॉम ये बनाया, अलग अलग कलर्स बना दिखाता हूँ, क्लैरिटी ज्यादा होगी। और जो कलर्स बना रहा हूँ वो उस कलर का, उस एलिमेंट्स का आपको दिखा, वो बताएगा, एलिमेंट बताएगा। दो हो गए। द नेक्स्ट कलर क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, ब्लू कलर ले लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं। थर्ड वन ये ले लिया अपने। देखो यार, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी है, दोनों कौन कंसाइड कर रहा है। अब ले लेते हैं ग्रीन एक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेन डायग्राम, 4 एलिमेंट्स वाले। 4 एलिमेंट वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये 200 मीटर का है, दिस इज फॉर द 600 मीटर रेस, दिस इज फॉर द 600 मीटर रेस, और ये हो गया 800 मीटर रेस। तो जो, बट इफ यू नो हाउ टू डू and can solve even instrument, so why not attempt? X बराबर 10 मे बी, no, x equals to 15 आया, ना 10 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 15, x equals to 15। let me show you, x equals to 15 कहाँ गया? अच्छा यहाँ है, x की वैल्यू 15 है, 15। अब देखो इस वाली वैल्यू को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो गलत आया ना, जो 10 आया था मेरा, 15 आया, तो अब 10 कैसे आएगा? 7 7 14 9 23 2 25, 25 आएगा। 20 बनाने का तो चांस ही नहीं है। इट विल बी 62 माइनस x, कहाँ पे, कहाँ पे 62 माइनस x? देखो जो किया है सही किया है, कहीं तुम गलत कर रहे हो। अगर 600 वाले में बोल रहे हो 62 माइनस x, तो नहीं होगा, ये 69 होगा, क्योंकि 42 और 27 69 होता है। और 138 से 69 माइनस करेंगे तो 69 होता है। 69 टू 2 होता है 138, ये 50 नहीं बनेगा। अच्छा, हमने केसी गलत बनाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। 67 इंस्टीड ऑफ 62। अच्छा, जरा देख लो। अच्छा यहाँ पर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। 9 7 से 18 तो 20, तब फिर तो 10 घट जाएगा, ये रुको रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, राइटिंग में ये 62 को मैंने 67 पुट कर दिया था। ओके, गुड गुड कूल, नाइस नाइस। चलो ठीक है, हो गया। अब इसका डेटा तो वहां पुट करो, ओनली वाले डेटा सब पुट कर दो फटाफट। अच्छा, इसमें पहले ये देख लो करते कैसे करते हैं। ये जो होते हैं ये सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट्स होते हैं, ओनली वन वाले। उसके बाद ये होते हैं ओनली टू वाले। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिए है वो इन्फॉर्मेशन से फुल फिल कर दीजिए। और ये होते हैं 3 एलिमेंट्स वाले, जहां तीन तीन एलिमेंट्स हो, और फिर बीच होता है ऑल 4 वाला। ये होता है इसका फंडा।
ठीक है। अब इनकी जगह पर आप डेटा पुट कर दीजिए जो जो दिया हुआ है, और फिर जो डेटा नहीं दिया हुआ उसको क्या करेंगे अपन, जीरो पुट कर देंगे। जो नहीं दिया है उसको जीरो पुट करेंगे, जो दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे ओनली टू की वैल्यू कितनी है वो हमें पता है। ओनली 200 मीटर की वैल्यू हमें पता है। ओनली टू, अरे यार इस सबसे ऊपर का भाग जाता है। देखो ओनली टू इज, कितना हो गया ओनली टू, यहाँ किए थे कैलकुलेट, 79, समथिंग लाइक दैट। और 200 642, तो वो वैल्यू वहां पुट कर दे चलो, जो वैल्यू वहां पे दी हुई है। उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। अच्छा 800 वाले में कितने लोग आएंगे, अगर ये भी आ रहा है तो देयर वर यहाँ दिया टोटल 93 एथलीट्स हु पार्टिसिपेट इन 800 मीटर रेस। तो 800 वाले में कितना आ जाएगा, 93। अब जैसे कि 102 इन 200, 102, 102 200, 112 400, 138 600 है ना। तो अगर मैं यहाँ जाऊं तो 200 इज 102, 112 है 400, ये आ जाएगा 138, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 99। बाकी ऐसे ही चलेगा। इसे 200 और 400 में कॉमन कितना है, 200 और 400 में कॉमन है 23, तो यहाँ वैल्यू 23 ले लेंगे। 400 और 600 में कॉमन वैल्यू कितनी आई थी, तो 400 और 600 की कॉमन वैल्यू कौन सा बताएगा, ये वाला कॉलम बताएगा, नहीं ये 800 आ जाएगा। ये आता है 400 600। तो 400 600 की जो कॉमन वैल्यू होगी अगर देखोगे तो जो भी आएगा आपके पास वेन तीन वाले वेन डायग्राम है वो ये वाली वैल्यू आएगी। जो चारों में दौड़े हैं वो वैल्यू जीरो है, यहाँ पर रख देंगे उसको। जो तीनों में आ गए हैं 200 400 600 तीनों में, उसकी वैल्यू कितनी है 15, 15 आया ना एक्स की वैल्यू। तो जो 200 400 600 तीनों में वो 15 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 15 रख देंगे। सिमिलर वे में हम सारे कॉलम को फिल कर देंगे। फॉर 899 और 93, 93 है क्या, 93 होगा, 93 होगा, डेटा हम पढ़ने में गलती कर दिए होंगे, मे बी इट शुड बी 93। अगर 93 होगा तो 93 करेंगे। 93 है, 93 आए। तो फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, सारे डेटा मिल जाएंगे, क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन फिल करके, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, आई हैव टू शिफ्ट दैट वन। तो सारे डेटा फिल कर, जैसे कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, ओनली 200 गिवन है, ओनली 200 की वैल्यू जितनी है 79, ओनली 200 पुट कर दो। 200 और 400 में कॉमन कहीं दिख रहा है तो 13 और 10 23 दे दो। उसके बाद अगर दिख रहा है 200 600 में 42 है, 600 एंड 400 में 27 है, ओनली 400 में 62 पुट कर देंगे, ओनली 600 में 69 और माइनस एक्स, तो 69 माइनस एक्स की वैल्यू 10 है तो 59 पुट कर देंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें पुट कर दे चलिए। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ दिया हुआ है, 9 इन 800 मीटर रेस, 42 ran ओनली 600 मीटर रेस इन 14। तो ये इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते चलो, वैल्यूज हमने बता दी कहाँ पे कौन सा पुट होगा। यस, इसमें बस चार वाला वेन डायग्राम बनाने आएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चार वाला वेन डायग्राम बनाने में फंसोगे तो दिक्कत है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होती, सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने लिख के दिखा दिया कि ओनली टू वाले, फिर से बता दे रहा हूँ, जो ये सिंगल सिंगल वाले होते हैं ये वन वन ओनली वन वाला एलिमेंट्स लेता है। ठीक वाला जो बता रहा हूँ ये ओनली टू वाला एलिमेंट लेता है, ये ओनली टू वाले एलिमेंट लेते हैं। क्रॉस वाला ओनली थ्री एलिमेंट ले लेगा, जहां जहां केवल तीन वाले होंगे। और सर्कल वाला समझ लो जो जीरो से किया है, ये चारों के चारों एलिमेंट्स होंगे। फिल कर देना। बनाने का एक और तरीका बता देता हूं, अगर डॉम बनाने में दिक्कत हो रही हो, एक रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाओ, इसको टू वर्टिकल पार्ट में और टू हॉरिजॉन्टल पार्ट में कट कर दो। सिंपल तरीका बताता हूँ। उसके बाद फर्स्ट वाले वर्टिकल को थर्ड वाले वर्टिकल से मिला दो, और सेकंड वाले वर्टिकल को फोर्थ वाले से मिला दो। और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन को फर्स्ट को थर्ड से मिला दो और सेकंड को फोर्थ से मिला दो। तो ये आपके चार वाले वेन डायग्राम बन जाएंगे। ये इसकी वैल्यू रख दो ए बी सी डी, अगर ये करना चाहते हो तो आपके पास ये वैल्यू। अब ए के लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का डोम आ जाएगा, ये पूरा ए आ जाएगा। अगर हाईलाइटर का कलर यूज होगा तो देखो ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी ए की वैल्यू हो जाएगी।
इसमें सारे ए आ जाएंगे, जो बी के साथ भी होंगे, जो सी के साथ भी होंगे, अकेला ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, ये सारे वैल्यू यहीं आएगा, ए का जितना भी आएगा। अब एक में समझिए कि ए के सारे वैल्यूज किस तरह से आ जाएंगे। ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ओनली ए। ठीक है। अब ये वाली ओनली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन होगा। उसके नीचे जो वैल्यू दिख रही है ये वाला, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी में कॉमन होगा। ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन डी, जो ए डी में कॉमन होगा। सारे वैल्यूज इसी में कंसीडर हो जाएंगे, जो ए का कॉलम दिखाया हो, ए का डॉम दिखाया हो। अब देखो यहाँ वाली वैल्यू जो होगा, इसमें ए बी सी, ये होगा ए बी और सी, ये तीनों में जो कॉमन होगा। इस वाली वैल्यू में अगर हम आए तो इसमें बी नहीं है, ये कौन सा होगा, ए सी और डी, ये तीनों में जो कॉमन हो जाएगा। और यहां पे अगर हम जाए तो इसमें ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ डी भी आएगा, ये ए के पार्ट में ये भी है। और लास्ट वाइज जाएंगे तो इसमें आएगा ए बी और डी। बताओ कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए वाला नहीं सब इसमें आया, सारे के सारे ए वाले एलिमेंट्स होंगे। तो ये ए का कॉलम हो गया, ये ए के पार्ट्स हो गए, जितने भी ए के बन पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब तीन वाला वेन डायग्राम बनाते हैं, याद रखने का तरीका बताता हूं, जब तीन वाला अपन वेन डायग्राम बनाते हैं, तीन एलिमेंट्स का, तो इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर कहीं कुछ गलती कर रहे हो तो जान लेना, 7 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्रॉस चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका। अगर 4 एलिमेंट्स का तुमने वेन डायग्राम बनाया है तो इसमें 15 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 में 7 होने चाहिए, 4 में 15 होने चाहिए। अगर 2 एलिमेंट्स का हमने वेन डायग्राम बनाया है तो इसमें कितने होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो टू वाले में अगर मैं टू वाला बनाऊं तो 3 एलिमेंट हुआ, 1 2 3। अगर मैं तीन वाले एलिमेंट्स बनाऊं तो इसमें 7 एलिमेंट्स में चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए। अगर मैं चार वाला बनाऊं तो इसमें 15 एलिमेंट्स में गिनोगे तो 15 एलिमेंट्स मिलेंगे, आराम से मिलेंगे 15 एलिमेंट्स। ये चीज क्रॉस चेक करने का सबसे बड़ा तरीका होता है। तो नंबर ऑफ, जब वेन डायग्राम बनाने के लिए बैठे, उसमें हम एलिमेंट्स कितने होंगे ये डिसाइड करता है 2 to the power n-1, 2 to the power n-1। अगर दो एलिमेंट्स बना रहे हैं तो 2 स्क्वायर -1 यानी 3 दे देगा। अगर तीन एलिमेंट का बनाने का तो 2 स्क्वायर क्यूब -1, तो ये 7 दे देगा। अगर चार गए तो 2 4 -1, ये 15 देगा। अगर 5 गए तो 2 5 -1, ये 31 देगा। ठीक है। ये बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्रॉस चेक रखने का। वेन डायग्राम बनाने में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है, कैसे में बहुत सारे वेन डायग्राम होते हैं। अगर तीन वाले चार वाले का तुम सर्कल बनाने बैठोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, करके देखो। अब इसमें तुम दिखाओ 15 एलिमेंट्स कहाँ है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कहाँ गया भैया, 12 13 14 15 कहाँ गया, बन के ही नहीं निकल गया था। तो सर्कल वाले से कभी हम बनाते नहीं है इसको। ठीक है। So will upload this sheet on Telegram channel of LegalEdge. You can download this कैसे ये पीपीटी एंड सॉल्व बाय ओन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो इस हिसाब से फिर अपने सॉल्व कर लेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ मोर प्रॉब्लम्स देयर इन दिस शीट, बट टाइम्स अप। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, गुड लक। और आप लोग कर लोगे, बस बिलीव, ट्रस्ट रखना अपने ऊपर, पैनिक मत होना ऑन द लास्ट डे। जो आपके, ये क्या है, अच्छा ठीक है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। तो जब पेपर लिखने बैठो तो उस टाइम में पैनिक मत होना, जितना आता है उस हिसाब से काम करना। और जितना अब तक पढ़ लिए हो उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहो। नया चीज सीखने की कोशिश मत करो। अब ला कई बार बता चुका हूँ, जिनके पेपर्स हैं 19 जून को, एंड यू गाइस आर विल बी रॉक, है ना। तो बस फुट गया ना, और सब बताना कैसा रहा पेपर, कैसा गया। और तुमने उसको ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आओगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। ठीक है, चलो, बाय बाय, थैंक यू।
Hello, students. I welcome you all for this marathon, probably the last marathon for today. And it's all about English. So, Bacha, before I start with this marathon, I just would like to have an interactive session with the students. I know that you must be tired attending so many marathons since morning. All right. I can see those chats. I can see that students' comments. All right. Like they are all stressed out that it's gonna be CLAT quite soon, and like we are conducting a lot of marathons. So, Bacha, this is required so that you all can have last minute preparations, last minute practice, and we faculty can share a lot of strategies with the students which can help them out in their real CLAT 2022. All right, Bacha. Apart from this, I just would like to share that today's session will definitely be all about sharing a lot of strategies and revising those strategies. Or probably some of the students can enhance their concepts of different question types. Okay, so are you all excited or tired? I just want to know about it so that I can deal with the students accordingly. So, tired or excited? Let's see how should students actually respond to this question. Hi, Bacha. Good evening. Are you all excited or exhausted? Okay. So I'm lucky enough that majority of the students seemingly are excited. Chalo. Okay, Bacha. So before I begin with the session, let's have some this information. Let me share the information with the students. Bacha, if anybody wants to take admission for 2023 as well, probably some of the students must be looking forward to get admission for 2023, attending this marathon because it is open platform. So a lot of aspirants must be attending it. So if you want to get enrollment or admission at top rankers. So, bacha, you all can write this is scholarship test, and some of the students can also get up like 100% scholarship as well. So that is one thing. Second is there is a webinar which is going to be conducted on 18th June. If anybody wants to attend that webinar for how to build a career in law, can attend this session, and it's going to be conducted by Sukriti Gagradi, ma'am. She takes amazing sessions. So if you actually wish to attend her session, please do so. And for majority of the students seemingly who are looking forward to get admission into this year itself in law colleges and probably writing their CLAT 2022. So all the very best students for that. So ready to challenge yourself? Okay. So the passage is on screen. I'll shift a little so that you all can read the passage.
Please do follow the strategies. You all can make notes. What I mean to say is you all can write down the keywords. I hope students are making notes as well. The last paragraph for this passage.
All right. So, question number one. Question number two on screen. Please do mention question number as well, bacha, because I won't be able to know whether you are answering to question number one or question number two. So even if you're typing C, B, whatever, please do mention question number as well. Question number three. Next question on screen.
Question number fifth, sorry. Question number six. Question number seventh. I'll just decrease the font so that you have visibility of the entire question. All right. Now let's have a discussion on this. Chaliye. So I'm very happy that students actually took a lot of interest because some of the students are mentioning the last line of penultimate paragraph, that is second last paragraph. So yes, it's actually a good learning. So happy that students are taking everything very seriously, focusing on the language as well. And there are some questions which are very, very specific to language or vocabulary. So students are paying attention to it. चलिए बच्चा the passage starts with human biology does nothing to structure human society. बच्चा यहाँ पे passage में बोला गया है कि हमारी जो biology है it has got nothing to do in structuring human society. All right, age may enfeeble us. Enfeeble का exactly meaning होता है it may actually weaken us. Age, with the passage of age, with the passage of time, we all will become weak.
ऑल राइट, तो जो एनर्जी मेरी लाइक अभी है, प्रोबेबली आफ्टर 20 years इट विल नॉट बी द सेम. बट कल्चर के बारे में यहाँ पे बात करिए, दैट कल्चर्स वेरी कंसिडरेबली इन प्रेस्टीज एंड पावर दे अफोर्ड टू द एल्डरली. जैसे एज के साथ हमारी पावर कम होती है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, कल्चर उतना ही ज्यादा, लाइक वी लुक अप टू आवर एल्डर्स, वी लुक अप टू द प्रीवियस कल्चर. All right, giving birth is necessary condition for being a mother, but it is not sufficient. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे मदर के बारे में बात कहा है कि अब mother can actually give birth to a baby, that is very necessary. All right, but it is not sufficient at all कि बस just by giving birth a mother can be called as mother. All right, we expect mothers to behave in maternal ways, like हमें proper nurturing होना चाहिए, care होना चाहिए, concerns होना चाहिए. All right. Similarly, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि maternal sentiments होते हैं. We all are quite closely associated with our moms. All right, emotionally attached to our moms. तो यहाँ पे यही बोला है, we prescribe a culture of norms or role that govern the role of a mother. यहाँ पे actually अगर देखा जाए तो like ये जो societal norms होते हैं, regulations होते हैं, the mother should act like a mother. All right. तो कभी कभी that comes as a compulsion. That the social role is independent. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चा कि ये तो सोसाइटी ने डिसाइड करा है. जैसे बायोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, एनी वुमेन इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी कैन बी कॉल्ड एज मदर. ऑलराइट, लेकिन सोसाइटल नॉर्म को अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो पीपल विल डेफिनेटली बी डूबियस अबाउट इट वेदर शी इज एक्चुअली अ रियल मदर और नॉट, because probably a particular woman is not taking care of a baby the way it is desired, isn't it? तो यहाँ पे यही इन्होंने बोला है that the social role is independent of biological base can be demonstrated by back 3 sentences. Giving birth certainly not sufficient to be a mother. अब आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बच्चा, so even if like somebody is not giving a birth but adopted a baby can be called as mother. So that is not a necessary condition. All right, as adoption and fostering shows that yes, anybody can be mother despite the fact who is a biological mother or father. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आज के जमाने में when we are adopting and fostering children, all right, तो it is not even necessary कि a mom, a woman should be a biological mother. Any woman who is adopting a baby, fostering a child can be called as mother. So that's not even necessary. जो पहले हमारी सोसाइटी में necessary था, it is not even necessary right now at the moment. अब आगे देखिए बच्चा, the fine detail of what is expected of a mother or a father is dutiful son. अब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लच और ऑफ नॉर्म्स के बारे में बात करी है. ऑलराइट, तो अगर हम देखें व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ मदर और अ फादर और अ ड्यूटीफुल सन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, क्योंकि सोसाइटीज अलग है, कल्चर अलग अलग है. ऑलराइट, तो एक अच्छे मम्मा पापा या बेटा या बेटी डॉटर, वो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है. जैसे इंडियन सोसाइटी में व्हाट वी एक्सपेक्ट कि a child should take care of parents throughout, and we consider it good कि बच्चे even after marriage if they live with their parents, that's considered to be really good thing. Alright, that's considered to be ideal scenario. Whereas अगर देखा जाए बच्चा, in western countries probably this is something which they will find amused, they will be bemused by this, or they will be amused by it कि how come children are living with their parents. All right, तो वो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है बच्चा, बट एवरीवेयर बिहेवियर इज कोऑर्डिनेटेड बाय रेसिप्रोकल नेचर ऑफ रोल्स. लेकिन हर जगह एक चीज है, जो लोगों का बिहेवियर होता है, एक्शन होता है, दैट इज रेसिप्रोकल. ऑलराइट, ऑफ रोल्स लाइक हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, parents and children, employers and employees, waiters and customers, teachers and pupils, warlords and followers, each makes sense only in its relation to the other. The term role is an appropriate one. बच्चा, हमारे reciprocal role होते हैं, जैसे the role of a husband or a behavior of a husband will decide upon the behavior of a wife. All right, that's quite mutually coordinated. Behavior is coordinated by the roles they are assigned. All right, तो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं बच्चा, and we all are having different roles. I have a role of a teacher, I have a role of a mother, I have a role of a daughter, I have a role of a wife.
All right, so is the case with you. You must be having multiple roles in the society, and people expect you to behave according to your role. All right, आगे देखिए बच्चा. Because the metaphor of an actor in a play neatly express the rule governed nature or scripted nature of much of social life, and since the society is a joint production, social life occurs only because people play their part. अब यहाँ पे बच्चा इन्होंने ये जो सोशल लाइफ है दैट इज कंसिडर्ड टू बी मेटाफोरिकली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्रामा और अ प्ले, और उसमें जितने भी लोग हैं दे आर ऑल एक्टिंग देयर रोल्स, दे आर ऑल प्लेइंग देयर रोल्स. ऑलराइट, द ड्रामा मेटाफर आल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ आर्टिस्टिक लाइसेंस. अब ड्रामा की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो ड्रामा और प्ले, तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज आर्ट. ऑलराइट, तो सबके पास आर्टिस्टिक लाइसेंस होता है लोगों के पास टू प्ले. ऑलराइट, जितने भी प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स कौन है बच्चा? पीपल हु हैव गॉट डिफरेंट रोल्स, सो दे शुड बी acting their roles out artistically. We can play a part straight or as the following from Jean-Paul Sartre conveys, we can ham it up. अब बच्चा, it's a beautiful phrase. Ham it up का exactly meaning क्या होता है बच्चा? To act or behave in an exaggerated or playful way. जैसे if I'm a teacher, so if I act accordingly. अगर मेरा जो behavior आप लोगों के साथ है, like if as a student, all right, अगर वो फ्रेंडली हो जाए तो प्रोबेबली यू विल बी लाइक कि मैम बहुत ज्यादा फ्रेंडली. मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर टीचर का होना इज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑफ अ टीचर. ऑलराइट, बट अगर मैं आपके साथ बिहेव करूं लाइक अ चाइल्ड, प्रोबेबली यू विल बी लाइक इज शी ऑलराइट, इज शी ऑल ओके. ऑलराइट, यू विल बी स्केप्टिकल अबाउट मी, अबाउट माय पर्सनालिटी, कि मैम एट टाइम्स बिहेव लाइक अ चाइल्ड. Isn't it? या मैं एकदम से बॉसी हो जाऊं तो प्रोबेबली यू विल नॉट एक्सपेक्ट मी टू बिहेव अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है बच्चा कि वॉट एवर द रोल्स वी आर गिवन, ऑलराइट, वी नीड टू एक्चुअली हम इट अप, मतलब वी हैव टू बिहेव इन एन एग्जेजरेटेड और प्लेफुल मैनर. अब देखिए बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट अस कंसीडर द वेटर इन अ कैफे. His movement is quick and forward, a little too precise, a little too rapid. He comes towards the patron with a step a little too quick. He bends forward a little too eagerly. His voice, his eyes express an interest and a little too solicitous for the order of a customer. Finally, there he returns, trying to imitate his walk, the inflexible stiffness of some kind of automation while carrying. अब यहाँ पे sorry, not automation, automaton. बच्चा, automaton is kind of moving machine like a human. All right, जैसे robots वगैरह होते हैं. तो जो वेटर होता है बच्चा, he plays his role in a beautiful manner. तो बच्चा यहाँ पे आप देखिए टू एक्ट और बिहेव इन एन एक्सेजरेटेड वे का अगर देखिए हम इट अप का एग्जांपल यहाँ पे वेटर के सेंस में दिया है. ही बिहेव एप्रोप्रिएटली. ऑलराइट, all his behavior seems to us a game, but what is he playing? We need not watch long before we can explain it. He's playing at being a waiter in a cafe. अब देखिए, the American sociologist Irving Goffman built an influential body of social analysis of elaboration of a metaphor of social life as drama. Perhaps his most telling point was that it is only through acting out a part that we express character. It is not enough to be evil or virtuous. We have to be seen to be evil or virtuous. ये जो एक लाइन थी बच्चा, इसके लिए काफी स्टूडेंट्स ने भी बोला है, लाइक अली मिठाई वाला एंड सम मोर स्टूडेंट्स आई थिंक पिन पॉइंटेड कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि society is a kind of drama. We all have got different characters and we need to act it out appropriately. तो बच्चा, if we are playing a role of an evil, we should express it कि we are playing a role of evil. It should be quite open. And similarly, virtuous का मतलब होता है goodness. So if somebody is very nice, all right, like mother, father, so they should act accordingly. अब अगर father है and if he is acting like a careless man, not taking care of a child, so probably society will not accept that father. All right, so you have to be seen like evil or virtuous according to the role. तो अगर एक अच्छे पापा है तो उनको अच्छाई दिखाना पड़ती है. All right, it is very necessary to actually be a good father, like visibly good father, I should say. Okay,
there is distinction between roles we play and some underlying self. Here we might note that some roles are more absorbing than others. कुछ रोल ऐसे होते हैं बच्चा जो बहुत ज्यादा absorbing होते हैं. We actually observe them or we are or very important one. All right. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है we would not be surprised by the waitress who plays a part in such a way to signal us that she's much more than her occupation. We would be surprised and offended by the father who is played his part tongue in cheek. Tongue in cheek का मतलब क्या होता है? अगर पापा इनसिंसियर वे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, not taking care of child, always engrossed with mobile phone, all right, and speaking foul language, तो we will not like it. या अगर वेटर अपना जो उसका ऑक्यूपेशन है उससे ज्यादा अगर आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है तो probably you will not like it. All right. Describing someone as a clergyman or faith healer would say far more about that a person describing someone as a bus driver. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि people have got their roles, so probably it'll pay focus on certain roles. जैसे इन्होंने example दिया है clergyman का rather than bus driver. All right, but bus driver has also got his role to play. All right. So this is exactly what the passage is all about. Question number 1. What is the thematic highlight? अब देखिए बच्चा, I will also be explaining the question types. यहाँ पे question number 1 was basically main idea based question. All right. I'll write down the question type as well. So thematic highlight was main idea for this question. Main idea means big picture question. Okay. Main idea is big picture question. So question number 1 ka bachcha, what is the correct answer? Correct answer for this question is D. Reciprocal roles determine normative human behavior in society. All right. अब आपका जो भी रोल है बच्चा, it actually determines your behavior in society. We expect accordingly. That is what exactly is given. मतलब as a social norm अगर हम देखें बच्चा, तो this is what is expected in the society. Normative human behavior. Normative मतलब as a norm, जिसका मैंने example आपको दिया था father. You will not like father playing his role tongue in cheek मतलब insincerely or better being very friendly. So reciprocal roles determine normative human behavior in society. Obviously D is considered to be correct answer choice. अच्छा, अब आप पैसेज में कुछ एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर दी थी बच्चा उन्होंने बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में. इफ यू रीड द स्टेटमेंट, नॉट एबल टू फाइंड इट एट द मोमेंट. जहां पे ये लिखा है बच्चा दैट बिहेवियर इज कोऑर्डिनेटेड बाय रेसिप्रोकल नेचर ऑफ रोल. यहां पे दिया है बच्चा. ओके. Behavior is coordinated by reciprocal nature of roles. All right. So accordingly, D is the correct answer choice. Some of the students marked A as correct, C as correct answer. Human behavior is independent of biological linkages. बच्चा only first statement दी थी about biological linkages. Linkages तो दिया भी नहीं था. All right, and obviously it is not correct. मतलब human behavior उनके role के ऊपर depend करता है. All right, and this is not the thematic highlight. मतलब this is not the theme of the passage. यहाँ पे overall passage में behavior and roles के बारे में बात करी गई है rather than biological linkages. So that's not the central idea of the passage or the theme of the passage. So C can't be the correct answer choice for this question. Now next question देखिए. What does the phrase the artistic license available to player mean in context of the passage? तो बच्चा इसका correct answer choice क्या होना चाहिए था? Let me see what students have marked. Very nice. Some of the students have marked this answer correctly because correct answer is A. कुछ students ने B भी mark करा था. I'll explain why B is not the correct answer. तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा the artistic license.
मतलब आपको अपना रोल एग्जेजरेटेड तरीके से प्ले करना चाहिए. द आर्टिस्टिक लाइसेंस अवेलेबल टू प्लेयर. पीपल आर समटाइम्स एट लिबर्टी टू गेट मेलोड्रामेटिक ओवर एक्टिंग और रिजॉर्ट टू ओवर एक्टिंग एग्जेजरेटेड. तो यहाँ पे पैसेज में क्लियरली लिखा है बच्चा एग्जेजरेशन. ऑलराइट, मैंने शायद एक्सप्लेन भी करा था. हार्म इट अप का मतलब ही वही होता है, एग्जेजरेशन. ऑलराइट, तो ऑब्वियसली आपका ए इज द करेक्ट आंसर. सम ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क बी एज करेक्ट आंसर. हाउ वेल पीपल प्ले देयर रोल, सोशल रोल डिपेंड्स ऑन देयर एक्टिंग टैलेंट. तो बच्चा यहाँ पे एक्टिंग टैलेंट से ज्यादा हार्म इट अप का मतलब होता है वट एवर द रोल इज गिवन टू यू, यू actually exaggerate it. Some of the students are asking to explain option D as well. Social life is a play in which people are mere actors on the stage. तो बच्चा ऑन द स्टेज तो नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे आपसे. सोशल लाइफ इज अ प्ले, ठीक है. पीपल आर मेयर एक्टर, नो, दे हैव गिवन रोल्स, दे आर रोल प्लेयर्स, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर रोल प्लेयर्स. ऑल राइट, एंड उनको अपने रोल को जस्टिफाई करना आना चाहिए बाय एक्टिंग इट आउट. All right, so mere word is actually changing the meaning because it has got a very different contextual meaning. So D can't be the correct answer even for question number 2. Now, देखिए बच्चा, question number 3. Which of the following would have been true if biological linkages structured to human society? तो बच्चा इसका correct answer will be B. There would be an upper age limit for politician. Biological linkage का मतलब ही age से बात कर रहे हैं बच्चा. All right. अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बायोलॉजिकल लिंकेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं तो अपर एज लिमिट हम लोग पॉलिटिशियंस के डिसाइड करते हैं बच्चा सबसे पहले. ऑल राइट, तो दैट कैन बी एन अजम्पशन. अच्छा, वुड बी ट्रू का मतलब ही होता है बच्चा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन. ऑल राइट, एक मिनट, यहाँ पे आपका ये जो पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन वाज बिग पिक्चर क्वेश्चन, मेन आइडिया. सेकंड क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक टू लैंग्वेज. Third question basically is about must be true matlab assumption. It is nowhere stated in the passage but that can be true matlab assumption. All right, अब देखिए बच्चा, what can be inferred from the father who plays part tongue in cheek? तो tongue in cheek का exactly meaning क्या होता है बच्चा? Who is playing his role insincerely. ऑल राइट, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या था बच्चा? करेक्ट आंसर इज अ फादर हु ओवरलुक्स हिज पैरेंटल ड्यूटीज, मतलब ही इज नॉट प्लेइंग हिज रोल सिंसियरली. टंग इन चीक, अगेन लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन था बच्चा, जिसमें आपका जैसे वोकैबुलरी, फिगर्स ऑफ स्पीच, आरसी की टोन्स, राइटिंग स्टाइल्स, basically all these question types, and the question type like this will be under the category language. अब देखिए, which of the following would be the most suitable title of the passage? Question number 5. What is the correct answer? Social life a scripted play. अब यहाँ पे a lot of students must have chosen option A. All world is a stage. तो बच्चा, this is very vague because the entire passage is talking about society and people living in society having different roles. All right, so obviously B is more appropriate and more accurate. A is too general to consider a correct answer choice. So obviously between A and B, I will choose option B. All right, because metaphorically पूरी सोसाइटी को इन्होंने यहाँ पे ड्रामा बोला था. आपने बीच में देखा होगा, there was a statement about it that society is a play, social life is a play. So obviously B is appropriate. Question number 6 देखिए, which of the statement would the author most agree with? Question number 6. So correct answer choice for this question: people are defined by social roles they play. C is correct. Students, if you don't understand any or if you're not satisfied with any answer, suppose if you have chosen option A or B, तो let me know. अब यहाँ देखिए बच्चा, social roles can vary between narrow and broad and between absorbing and boring. तो बच्चा यहाँ पे author has not mentioned about narrow and broad roles.
All right, author has talked about absorbing, but not the boring one. All right, so obviously A is not appropriate answer here. Option B देखिए, social roles and biological roles sometimes coincide. अम, तो बच्चा यहाँ पे बायोलॉजी तो पहले ही बता दिया गया था फर्स्ट लाइन में कि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, सो ऑब्वियसली बी इज आउट दैट वेज. डी देखिए, पीपल हैव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम देयर सोशल रोल. नो, बल्कि पूरे पैसेज में इन्होंने यही बताया है कि जो भी उनका सोशल रोल होता है, पीपल हैव देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली एंड वी एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली. तो ऑब्वियसली बच्चा, दैट इज जस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी. तो ऑथर वुड नॉट अग्री टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ओके, अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. It has been claimed in the passage that some roles are more absorbing than others. According to the passage, which of the following seems to be appropriate reason for such a claim? तो इसका देखिए बच्चा, सेवेंथ का, some roles carry great expectations from the society, preventing manifestation of the true self. And B देखिए, society ascribe too much importance some roles that conception of self may get aligned with the role of being performed. तो ये दोनों पैसेज के अकॉर्डिंगली मुझे सही लग रहा है बच्चा. सी देखिए, सम रोल्स रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज लीविंग लिटिल टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ. यहाँ पे स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पैसेज. तो मुझे लगता है सी इज नॉट करेक्ट. इफ सी इज नॉट करेक्ट बच्चा, तो आपका ए एंड सी, सॉरी, बी एंड सी विल बी आउट. अब देखिए, I think A and B both are correct, hence D is the correct answer choice. अब ये जो था बच्चा, ये जो क्वेश्चन टाइप था, दिस वाज डिटेल बेस्ड क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. All right. Very nice. Congratulations to those who have scored more 5 or more than 5, and those who haven't scored this much. Bacha, you can try in the next passage. I'll shift a little. Bacha, the PDF has also been uploaded on the portal.
बच्चा लोग, don't forget to make the notes. Let me know once you have read this so that I can scroll it.
Now, next paragraph on screen. Have you read this? Should I change this slide, bacha? Okay. So the last paragraph for passage two.
Now, question number 8 on screen. Question number 9 on screen. Tenth question. Hurry up, students. This is supposed to be marathon, right? So you're supposed to maintain that speed as well. All right. Now let's have a discussion for this. So, बच्चा, this passage is talking about historians like जो history के students and science के students हैं. So they must be having some difficulties in commons. So यहाँ पे इन्होंने बताया है बच्चा कि like the difficulties historian face in establishing cause and effect relation in the history of human societies are broadly similar to the difficulties facing astronomers, climatologists, ecologists, evolutionary biologists, geologists and paleontologists. अब इन्होंने बताया कि नॉर्मली देखा जाए बच्चा कि जो डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस करते हैं इट इज क्वाइट सिमिलर टू अदर स्ट्रीम्स अदर साइंसेस इन द सोसाइटी इटसेल्फ ऑलराइट एंड इट इज बेसिकली मतलब किस तरह की डिफिकल्टी कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है
उसको स्टेब्लिश करने में जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं हिस्टोरियन, दैट इज क्वाइट सिमिलर काइंड ऑफ like difficulties faced by these people, these experts, to varying degrees. Each of these fields is plagued by impossibility of performing replicated, controlled experimental intervention, the complexity arising from enormous number of variables in resulting the uniqueness of each system. A consequent impossibility of formulating universal laws and the difficulties of predicting emergent prominent properties and future behavior. अब बच्चा यहाँ पे इन्होंने वही बात बताई है कि देर आर एन नंबर ऑफ डिग्रीज, वेरिंग डिग्रीज का मतलब होता है वेरिएबल्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलराइट. बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं. हर तरह का देखा जाए बच्चा तो वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ systems, all right, and each system is unique in itself, all right. The consequent impossibility of formulating, अब इतने अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इतने अलग अलग वेरिंग सिस्टम्स हैं बच्चा, तो ऑब्वियसली उनके लिए हमारे लिए कोई मतलब वी कैन नॉट एक्चुअली फॉर्मुलेट अ सिमिलर और यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल द सिस्टम्स, isn't it? So we need to have कि जो भी डिफरेंसेस हैं हर सिस्टम की जो यूनिकनेस है उसको कंसिडर करके हमें उनके अलग अलग लॉज बनाना चाहिए, विच इज क्वाइट लाइक डिफिकल्ट टास्क टू डू. आगे इन्होंने बोला है बच्चा, एंड द डिफिकल्टीज प्रेडिक्टिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एंड फ्यूचर बिहेवियर. Prediction in history, as in other historical sciences, is most feasible on a large spatial scales and over long times. And when the unique feature of million of small scale brief events become averaged out, just as I could predict the sex ratio of the next 1,000 newborn, but could not the sexes of my own two children. The historian can recognize factors that made inevitable broad overcome the collision between American and Eurasian societies after 13,000 years of separate developments. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है बच्चा कि छोटी छोटी सी जो चीजें हैं लोगों के साथ जो अलग अलग स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, उससे वो कुछ एक ब्रॉडर रिजल्ट के पास पहुंचते हैं. एंड दैट इज ब्रॉडर मतलब वो जो लार्ज स्केल रिजल्ट होता है. जैसे बच्चा हम लोग जैसे लाइक एनीबडी कैन determine or can actually predict or forecast the sex ratio of 10,000 or 1,000 children all together, लेकिन अपने दो बच्चों का सेक्स डिटरमिन करना ऑलराइट वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हम लार्ज स्केल पे छोटे छोटे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन प्रेडिक्ट वी कैन हैव बेटर प्रेडिक्शन ऑन अ लार्जर स्केल रादर देन वेरी कंसाइज प्रेडिक्शन. अब यहाँ पे आगे इन्होंने बोला है कि हम हिस्ट्री का तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसके बहुत सारे रीजंस थे जो कि 1300 इयर्स अगो का अगर देखा जाए कितना डेवलपमेंट हुआ क्या हुआ. बट अगर देखा जाए हम कि आउटकम ऑफ 1960 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट्स वेरी मतलब दैट एक्चुअली रिक्वायर्स टू द पॉइंट स्टडी. ऑलराइट, जहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं या बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा व्हाट डू वी कॉल इट लाइक करेक्ट होते हैं. मतलब यू कैन नॉट इवन हैव प्रेडिक्शंस, उसको आपको एक्यूरेट डेटा को ही कंसिडर करना पड़ेगा. द डिटेल्स ऑफ व्हिच कैंडिडेट सेड व्हाट ड्यूरिंग अ सिंगल टेलीवाइज्ड debate in October 1960 could have given the electoral victory to Nixon instead of Kennedy, but no details of who said what could have blocked the European conquest of Native American. How can students from human history profit from the experiences of scientists in other historical sciences? अब देखा जाए बच्चा जितनी भी साइंसेस हैं उनकी जो हिस्ट्री है उससे ह्यूमन हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑलराइट जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं हाउ कैन दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. Methodology that has proved useful involves comparative method and so-called natural experiments. बच्चा इन्होंने दो चीजों को यहाँ पे कहा है कि एक यूजफुल स्ट्रैटेजी है या मेथड है ऑलराइट जिसमें कंपैरेटिव मेथड है और नेचुरल एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंबाइन करा है. While neither astronomer studying galaxy formation nor human historian can manipulate their systems in controlled laboratory experiment. इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चा आप
जो एस्ट्रोनॉमर है, जो गैलेक्सी, वो लेबोरेटरी में जो एक होता है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड आपका एक्सपेरिमेंट होता है कि एक्सपेरिमेंट आपका सही गया गलत गया, ऑलराइट, तो वो बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन आप नेचुरल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑलराइट, आप दो सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं डिफरिंग इन प्रेजेंस और एब्सेंस of some putative causative factor. For example, epidemiologists forbidden to feed large amount of salt to people experimentally have still been able to identify effects of high salt intake by comparing group of human. अब यही उन्होंने बताया बच्चा, दो चीजें जो कंबाइन करी थी उन्होंने, एक तो उनके कंपैरिजन, मतलब आपको एग्जैक्टली इसमें क्या करना था, कंपैरेटिव मेथड और नेचुरल मेथड एक्सपेरिमेंट को कंबाइन करना था। उसका उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो डिजीजेस होती है बच्चा, कभी कभी हाई लाइक सॉल्ट इनटेक से भी होती है, तो उन्होंने उसी को एक्सपेरिमेंट करा है और कंपेयर कैसे करा है कि दो अलग अलग ग्रुप्स पर, किसी को उन्होंने ज्यादा सॉल्ट की अमाउंट दी है, किसी को कम सॉल्ट की एक ग्रुप को दिया है, और उसके बाद उन्होंने उसको कंपेयर करा, इजंट इट? तो उससे बच्चा, उसका जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली दैट विल बी डिफरेंट of you who already differ greatly in their salt intake, and cultural anthropologists unable to provide human group experimentally with varying resources abundances for many centuries still study long-term effects of resources abundance on human societies by comparing recent Polynesian population living on island differing naturally in resources abundance. अब यहाँ पे ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बात की है जहाँ पे सॉल्ट के इंटेक के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से बच्चा आप अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट आइलैंड्स है, ऑलराइट, डिफरेंट आइलैंड पे बच्चा डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है, या डिफरेंट कंट्रीज हैं या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑलराइट। तो जो उनके, उसका बच्चा इम्पैक्ट भी अलग होगा, रिजल्ट भी अलग होगा, कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है कंसिडरिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। जैसे अगर हम देखा जाए, इंडिया में स्पाइसेस बहुत कंज्यूम की जाती हैं, ऑलराइट, हो सकता है स्पाइसेस किसी दूसरी कंट्री में, जैसे जापान की अगर हम बात करें, तो वहां पे कोई भी उनका फेस्टिवल होता है तो उसपे सुशी जरूर होती है, ऑलराइट। इंडिया में अलग फूड हैबिट्स है, और ऐसी तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बच्चा, ऑलराइट। कुछ कंट्रीज में किसी को गोल्ड देना इज कंसिडर्ड टू बी रिचुअल, कुछ कंट्रीज में अलग ही कल्चर मिलेगा आपको, तो दैट डिपेंड्स, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती है उससे हमारा कल्चर भी काफी हद तक चेंज होता है बच्चा, और काफी हद तक हमारा वी कैन सी अ लिटिल डिफरेंसेस इन द सोसाइटीज, सोसाइटी काफी डिफरेंट होती है। The student of human history can draw on many more natural experiments than just comparison among 5 inhabited continents. Comparing can also utilize large islands that have developed complex societies in a considerable degree of isolation. अब देखिए बच्चा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं, ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें बताया है बच्चा कि जस्ट कंपैरिजन ऑफ ऑल दोज आइलैंड्स जो कि सेक्लूडेड है, आइसोलेटेड है, जैसे जापान हुआ, मेडागास्कर हुआ, नेटिव अमेरिकन हिस्पेनियोला है, या न्यू गिनी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चा दैट इज गिनी, हवाई एंड मेनी अदर, as well as societies on hundreds of smaller island and regional societies within each of the continent. Natural experiment in any field, whether or in ecology or human history, are inherently open to potential methodical criticism. अब बच्चा, जैसे एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, सॉरी आइलैंड है सिंगापुर, इट इज वेरी रिच इन कल्चर, it has adopted culture of China, culture of India, alright, and many other countries as well. तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है बच्चा कि ये जो आपके डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट, दे कैन बी हैविंग वेरी रिच कल्चर्स, दे कैन बी हैविंग वेरी रिच सोसाइटीज एज वेल विद resources in abundance, isn't it? Or and they have a very deep impact as well. आगे देखिए इन्होंने those include confounding effects of natural variation in additional variable beside one of the interests, as well as problems in inferring chains of causation from observed correlation between variables. अब यहाँ पे cause and effect की जो उन्होंने बात करी थी बच्चा, all right, so that is being like it depends on variables, that depends on the resources available to them, all right। और उसी को उन्होंने कि जो methodological problems जो आती हैं चीजों के अंदर, all right,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल साइंसेस में, ऑल राइट, तो इन पर्टिकुलर एटिमियोलॉजी, जैसे एपिडेमियोलॉजी मतलब डिजीजेस से रिलेटेड या जो भी और है, बाय कंपेयरिंग ग्रुप ऑफ पीपल has for a long time successfully employed formalized procedure for dealing with problems similar to those facing historians of human societies. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है बच्चा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्पेशली उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है एपिडेमियोलॉजी, ऑलराइट, जो डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात करी है, इट हैज बीन फॉर्मुलाइज्ड, ऑलराइट, प्रोसीजर्स वगैरह उस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, जैसे कि हिस्टोरियंस ने अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो उन्होंने एनकाउंटर करी तो उसको उन्होंने ह्यूमन सोसाइटीज में, ऑलराइट, द हिस्टोरियंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एक्सपीरियंस्ड सर्टेन प्रॉब्लम एंड दे आल्सो हैव फॉर्मुलाइज्ड देम. अब देखिए बच्चा, इन शॉर्ट आई एक्नॉलेज दैट इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन हिस्ट्री देन टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो बच्चा इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ऑलराइट, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना, क्योंकि उसमें एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ऑलराइट, प्लेस एक फैक्टर हो सकता है, पॉपुलेशन कैन बी अनदर फैक्टर, क्लाइमेट कैन बी वन फैक्टर, रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम इज वन फैक्टर. उसको, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना इज वेरी चैलेंजिंग देन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ साइंस. तो ये इन्होंने यहाँ पे एट लास्ट एक्नॉलेज करा है कि ह्यूमन हिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू फैथम, बट इट इज नॉट as compared to the fields of sciences, all right, where history is unimportant, जहां पे history इतनी important नहीं होती, where fewer individual variable operate, जहां पे बहुत ही कम variables होते हैं, क्योंकि human history में तो बहुत सारे variables होते हैं, as we have discussed in the entire passage. Nevertheless, successful methodologies for analyzing historical problems have been worked out. हालांकि that is true कि हम लोगों ने काफी सारी सक्सेसफुल मेथोडोलॉजीज को फॉर्मुलाइज करा है, एनालाइज फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, ऑलराइट, बट स्टिल वी स्टिल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड especially in understanding those problems. As a result, the histories of dinosaurs, nebulae, and glaciers are generally acknowledged to belong to the field of science. अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि अगर हमने हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स को डिवाइस करा है, तो प्रोबेबली वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, दैट कैन बी कंसिडर्ड नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, बट अ प्रॉब्लम ऑफ साइंस, ऑलराइट, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स like thing to understand. So this is what exactly is given. Question number 8 देखिए बच्चा, why do island with considerable degrees of isolation provide valuable insight to human history? तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? Correct answer for this question is C. Isolated island differing in their endowment and size may evolve differently, definitely, and this difference can be attributed in their endowment and size. छोटे island, बड़े island, population, resources available, all right, तो वो अलग अलग होंगे बच्चा. That is what exactly is given in the passage if you see, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, if a historian compares different societies on isolated island which are similar in all aspects except for their natural endowments, resources, size, than taking natural resources and size as variable factor remaining constant. So obviously, bacha, C is the correct answer choice. All right. इसमें डाउट है तो you can ask me. Question number 9 देखिए बच्चा. According to the author, why is prediction difficult in history? Why is prediction difficult in history? Ninth का बच्चा correct answer is B. Historical outcomes depend upon a large number of factors. उसी को passage में variables बोला गया है. And hence prediction is difficult for each case. क्योंकि हर केस का prediction आप नहीं कर सकते हो. All right, each case, क्योंकि there are a number of variables available. That is what exactly is given in the passage. So B is the correct answer. Historical explanations are usually broad
so that no prediction. अब यहाँ पे explanation are not broad. Actually, it's all about variable present in human history. All right. Historical sciences by their very nature are not interested, ये तो passage में दिया ही नहीं है बच्चा. Historians are interested in evolution of human history and hence are only interested in long term predictions. Again, nowhere discussed in the passage, so B is the correct answer. Question number 10 देखिए बच्चा. According to the author, which of the following statements would be true? तो 10th का correct answer could be students of history are missing significant opportunities by not studying an adequate variety of natural experiments. Why B is correct? Because there are enough natural experiments available for study. All right. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर मिसिंग, अब यहाँ पे क्यों मिसिंग बोला है बच्चा? अगर नेचुरल एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है और अगर स्टूडेंट्स उसको करते हैं तो आपके लिए इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री. ऑलराइट. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था बच्चा 5 डिफरेंट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ऑलराइट. कंपैरिजन कैन आल्सो यूटिलाइज large island that have developed complex societies is a considerable degree of isolation, जिसमें इन्होंने न्यू गिनी और नेटिव अमेरिका, जापान जैसे एग्जाम्पल दिए थे बच्चा. ऑल राइट. तो दैट मीन्स आपका बी इज करेक्ट आंसर चॉइस. Why not D? A unique problem faced by historian is their inability to establish cause and effect. But sir, that is not a unique problem. This is the problem. मतलब establishing cause and effect relationship in human history is difficult क्योंकि ये cause and effect और उसमें उन्होंने क्या बोला था? Just like other sciences, just like other streams, other subjects. All right. तो जैसे उसमें cause and effect relationship को establish करना difficult है, वैसे human history में cause and effect का relationship establish करना difficult है. All right. तो that is already given. A unique problem नहीं बल्कि that is general problem faced by everybody. All right. And that is already stated. यहाँ पे क्या बोला है बच्चा? Something which could be true. Would be true का मतलब होता है assumption based question. Assumption का मतलब होता है the option should be such which should not be directly stated anywhere in the passage. तो history of are missing ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि students of history are missing. This is something unstated. That is just an assumption. और ये question assumption based है बच्चा, तो obviously B is better answer choice. Now passage 3 on screen. This is going to be the last passage for today. Passage 3. But this passage is very interesting. Hurry up, students.
I know first paragraph आपको थोड़ा सा challenging लग रहा होगा, probably beyond your understanding. But if you connect it or if you read the passage in detail, so you'll understand it better. This is the last passage for today. I know that you all are exhausted, so but just please bear with some time. It's just a matter of few minutes more.
Are you done with this? Should I change? Bacha, should I change the slide? Should I scroll it down? This is the penultimate paragraph. The last paragraph for today. Now, question number 11. Question number 12.
Question number 13 on screen. Question number 14. Question 15th on screen. Question number 16th.
17th, 18th on screen, 19th, 20th, 21, question number 22, all right. So, bacha, this is very interesting passage. Let's read. अब देखिए, crinoline and croquet. ये जो बच्चा, these are the different dresses, types of dresses. ये पहले आपने देखा होगा, ये dresses चलती थी, all right?
थोड़ा सा स्कर्ट जो होता था वो पेटीकोट की तरह बिल्कुल टाइट, इस तरह से आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, गाउन के ऊपर वो एकदम टाइट स्कर्ट्स या इस तरह का पेटीकोट वो पहनते थे. ऑलराइट, दे आर आउटडेटेड, दे आर आउट. As yet, no political activists have thrown themselves in front of the Royal Derby on Derby Day. Even so, some historians can spot the parallels. अब बच्चा उन्होंने यहाँ पे कहा है बच्चा, as no as yet मतलब something which is, जैसे क्रॉकवेट आपके आउट हो गए हैं बच्चा, इसी तरह से उन्होंने कहा है कि पास्ट में कभी ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे वो किंग एंड क्वींस के सामने अपने बिल्कुल नहीं आते थे. दे नेवर यूज्ड टू फेस देम. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं आपके जो पैरेलल्स देखते हैं इन दिस टाइम. इट इज द टाइम ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज. अभी जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं बच्चा, टेक्नोलॉजिकली इट इज वेरी एडवांस. इट इज अ पीरियड जब हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड का जो सुपर पावर है, ऑलराइट, जिसे इसमें यूएस के बारे में बात करी जा रही है, इट इज अंडर थ्रेट. ऑलराइट, ये थ्रेट के अंदर है. इट इज एन एपोक, एज है एक तरह की बच्चा, व्हेन प्रॉस्पेरिटी मास्क अंडरलाइन इकोनॉमिक स्ट्रेन. ये ऐसा बच्चा पीरियड चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है बच्चा, जब हमारा इकोनॉमिकल मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब हमें लग रहा है कि एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग, ऑलराइट, या लाइक वी आर डेवलपिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड. बट देखा जाए बच्चा तो अंडर वी आर एक्चुअली अंडर इकोनॉमिक स्ट्रेन. And crucially, it is a time when policymakers are confident that all is for best and in the best of all possible world. Welcome to the Edwardian summer of second age of globalization. बच्चा हम लोग आज जिस स्टेज पर हैं, that is second age of globalization, Edwardian summer of the second age of globalization. All right, तो Edwardian summer उसको कहा जाता है बच्चा where people think that everything is prosperous. Things are going in the right direction. People are progressive. हम actually ऐसा feel करते हैं that we are living in a utopian world. All right, जहाँ पे सब कुछ सही सही चल रहा है. All right, we all are satisfied. We all are happy and feeling complacent. ये कहा जाता है एडवर्डियन समर. एडवर्डियन समर क्यों कहा गया है बच्चा? क्योंकि एडवर्ड किंग के जमाने में भी लोग इसी तरह से सोचते थे, जबकि they were facing a lot of challenges, but still they couldn't see that they are under some pressure or threat or having some problems, and they all thought that everything is great in the society. So ये second age of globalization है in context to Edwardian summer. Edwardian summer उसी को कहा जाता है when you feel that everything is superb, which is actually not. All right, अब देखिए बच्चा, spare a moment and take a shock of what has been happening in the past few months. अब author is actually making us acquainted with the problems people are actually facing. Let's start with the oil price. अब इन्होंने यहाँ पे बताया बच्चा कि oil price अगर आप देखें तो it has rocketed to more than $65 a barrel, more than double its level 18 months ago. मतलब 18 months पहले और आज की जो टाइम है उसमें प्राइस बच्चा डबल तरीके से इंक्रीज हुई है. ऑलराइट, मतलब it is just increased twice of what it used to be. The accepted wisdom is that we shouldn't worry our little heads about that because the incentives are there for business to build new production of refining capacity. अब लोग यहाँ पे अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग, ऑलराइट, लेकिन अगर अपन देखा जाए बच्चा तो ऑयल तो धीरे धीरे वी आर एक्चुअली एग्जॉस्टिंग. प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसके डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. ऑलराइट, सप्लाई कम और होगा बच्चा क्योंकि ऑयल तो इट इज कमिंग टू एन एंड. ऑलराइट, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है एज टॉमी कूपर यूज्ड टू से जस्ट लाइक दैट, हमें वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन हियर. देन देयर इज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेफरेंडम ऑन यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन सीन as thick-headed Luddites railing vainly against the modern world. अब ये Luddites किसको कहा है बच्चा उन्होंने? कि जब एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, ऑलराइट, तो पीपल वर अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, पीपल वर अगेंस्ट मशीनरी मिल्स, जहां पे बड़ी बड़ी मशीन, उन्होंने उनको लगता था कि दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ थ्रेट टू देयर जॉब. ऑलराइट, लेबर्स को लगने लगा था कि अगर इस तरह से मशीनरीज आएंगी, ऑलराइट, और वो ह्यूमन को रिप्लेस करती जाएंगी तो हमारी जॉब्स का क्या होगा. उन्हें लटिटीज कहा गया है बच्चा यहाँ पे. ऑलराइट,
mainly against, अब वो बिना मतलब के modern world के against थे. They were all like, no, we don't want machineries and all. What the French needed to realize, the argument went, was that there was no alternative to reform that would make the country more flexible, more competitive, more dynamic. अब यहाँ पे बच्चा जो लेडिटीज थे, दे कुड नॉट सी कि चलो ठीक है, वी कैन नॉट स्टॉप ब्रिंगिंग मशीन्स, ऑल राइट, वो तो उनको रिप्लेस करना ही था. आप कुछ और ऑल्टरनेटिव सोच सकते थे. ऑल राइट, यू कुड बी, यू कैन कंप्लीटली गेट एक्वाइंटेड विद द मॉडर्न वर्ल्ड. ऑल राइट, आप फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आते थे. यू कुड हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड मोर डायनेमिक. जस्ट द सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म दैट अलाउड गेट गवर्नमेंट to sack 100 of its staff at Heathrow after the sort of ultimatum that used to be handed out by Victorian mill owners. An alternative way of looking at the French non is that neighbors translate flexibility as you are fired. अब बच्चा इन्होंने यहाँ पे यही चीज बताया बच्चा, जैसे विक्टोरियन मिल ओनर्स ने he has given a say to a number of employees, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे उन्होंने कि भाई हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, हम लोग थोड़ा सा कट डाउन कर रहे हैं, और दे फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, इजंट इट? So that is exactly is given here. Finally, take a squint at United States. Just like Britain a century ago, a period of unquestioned superiority is drawing to close. अब यहाँ पे इन्होंने बताया है बच्चा, जैसे ब्रिटेन एक जमाने में अपने आप को बहुत सुपीरियर कंसिडर करता था, ऑल राइट, एंड वो लोग बहुत हाई हेडेड पीपल थे, बहुत एरोगेंट थे, ऑल राइट, और उनका टेक अ स्क्विंट का मतलब होता है यू जस्ट हैव अ क्विक लुक ओवर इट. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है बच्चा कि पहले यूएस भी इतना ही प्रोग्रेसिव था, ऑल राइट, बट उसको टेक ओवर करा, सॉरी, यूके भी उतना प्रोग्रेसिव था, बट यूएस बिकम द सुपर पावर. अब चाइना के बारे में बताया जा रहा है कि नाउ यूएस की जो कंडीशन है इट इज एज गुड एज यूके जो पहले थी, और नाउ चाइना इज कंसिडर्ड टू बी अ थ्रेट फॉर अमेरिका. China is still a long way from matching America's wealth, but it is growing at an stupendous rate. उन्होंने कहा है कि भाई चाइना अभी भी ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट बिकमिंग द सुपीरियर सुपर पावर. यहाँ पे इसको बोला गया है कि there is a long way to go, but still the way it is rapidly growing, तो उससे अमेरिका को थ्रेट फील करना चाहिए कि अभी नहीं तो कल, but they need to bring certain changes, otherwise China can take over. All right. और आगे देखिए, ऑलरेडी देयर इज एविडेंस ऑफ न्यू स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इज Washington and Beijing compete for oil stock. Moreover, beneath the surface of US economy, all is not well. अब देखा जाए बच्चा, यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें सब कुछ, जैसा एडवर्ड समर का एग्जांपल दिया ना कि एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, ऑल राइट, अपेरेंटली सब अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है. अभी भी यूएस का देखा जाए तो वो सुपर पावर है, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि इट इज एक्चुअली अंडर, उसके देखा जाए उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इट इज नॉट एक्चुअली गुड. ग्रोथ लुक्स हेल्दी इनफ, हमें लग रहा है कि ग्रोथ हेल्दी है, बट द कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड एल्सवेयर हैज मेंट द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी नाउ imports far more than it exports. The US is living beyond its means, but it is in this time of studied complacency, the current account deficit worth 6% of gross domestic product is seen as a sign of strength, not weakness. मतलब हमें लगता है कि उनका अगर जीडीपी जो है वो 6% है, ऑल राइट, तो बच्चा लगता है कि इतना ही है, बट एक्चुअली देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई. The situation is actually way worse than what is actually given here. All right. आगे देखिए बच्चा, in this new Edwardian summer, comfort is taken from the fact that dearer oil has not had the savage inflationary consequence of 1973-74, where the fourfold increase is the cost of crude brought an abrupt end to post-war boom that had gone uninterrupted. अब यहाँ पे बच्चा उन्होंने बताया बच्चा कि जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों को लगता है कभी ना कभी ऑयल की प्राइस कम होगी, जिस तरह से वो बढ़ रही है बच्चा, उस तरह से वो कम नहीं हो रही है. ऑल राइट, जैसे बढ़ती, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपकी ऑयल कॉस्ट में 20 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर आपको लगेगा कि नहीं वो डिक्रीज हो जाएगा सूनर और लेटर, तो वो शायद 2 रुपीज होगा, बट नॉट 20 रुपीज, इजंट इट? तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन कि ऑयल प्राइसेस को तो बढ़ना ही है एट एनी कॉस्ट, इजंट इट?
एंड यहाँ पे देखिए okay. These are those who point out rightly that modern industrial capitalism have proved mightily resilient these past 20 to 50 years, and that a sign of enduring strength of a system has been the way. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और examples दिए हैं बच्चा. The like we have seen stock market crash, we have seen 1911. वो जो incident हुआ था बच्चा World Trade Center पे US में, oil rising in oil prices that have been thrown at it in the half decade since the millennium. Even so, there are at least three reasons for concern. First, we have to be here before in terms of political economy. The first era of globalization mirrored our own. There was a belief in unfettered capital flows, in free trade, and in the power of market. It was the time of massive income inequality and unprecedented migration. Eventually, though there was a backlash manifested in a struggle between free traders and protectionists in rising labor militancy. अब देखिए बच्चा यहाँ पे इन्होंने बोला है बच्चा कि a lot of things have taken place and it is taking place. जैसे अगर आप देखा जाए कि इनकम इनइक्वालिटी है, ऑलराइट मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, प्राइसेस राइज हुई हैं, ग्लोबली अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी डाउनफॉल्स विटनेस करे हैं बच्चा. ऑलराइट काफी सारे हमने प्रोटेस्ट को देखा है बच्चा एंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर देयर. सेकंड, द वर्ल्ड इज ट्रेडिशनली एट इट्स मोर फ्रेजाइल. मतलब हमारा जो वर्ल्ड है बेटा तो इट इज एट फ्रेजाइल टाइम्स. मतलब ग्लोबल बैलेंस हमारा देखा जाए वो इनस्टेबल है. ऑलराइट कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, कभी भी आपकी जीडीपी डाउन हो सकती है, रिसेशन को हम फेस कर सकते हैं, हो सकता है कि ऑयल पूरी तरह से खत्म हो जाए and a lot of things are there. By the end of 19th century, Britain's role in the hegemonic power मतलब क्या होता है बच्चा? Leadership power was being challenged by the rise of जैसे ब्रिटेन ने फेस करा, ब्रिटेन was leader super power, US become super power. All right, Germany and Japan, while Ottoman and Habsburg empires were clearly in rapid decline. जब Ottoman Empire destroy खत्म हुआ, has Habsburg Empire पूरी तरह से decline हुआ बच्चा. Looking ahead of from 2005, it is clear that over the next 2 or 3 decades, both China and India, which together account for half of the world population, will flex their muscles. All right, so matlab India and China can be a threat to US. That's what exactly is being stated. Finally, there is a question of what rising oil prices tell us. The emergence of China and India means global demand for crude is likely to remain high at a time when experts say production is about to top out. If supply constraints start to bite, any decline in the price are likely to be short term cyclical. अब इन्होंने बताया बच्चा कि अगर देखा जाए यहाँ पे ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में ऑयल प्राइसेस के लिए, तो अगर हम सप्लाई को लिमिट करेंगे तो हमारे पास टेम्पररी डिक्लाइन होगा बच्चा ऑयल प्राइसेस में. ऑलराइट, बट एग्जैक्टली इट विल फॉलो द अपवर्ड ट्रेंड. जैसे अभी तक हमने हिस्टोरिकली देखा है ऑयल की प्राइसेस बच्चा बड़ी ही है, वो थोड़ा सा टेम्पररी हॉल्ट आता है डिक्लाइन में या थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता है बच्चा, बट अगेन इट रीचेस, it actually goes in upward trend. All right, so that is what exactly is being stated in the passage. Question number 11 देखिए बच्चा. The primary passage purpose of the passage is to, correct answer is C, to analyze certain problems in the present period of globalization and give a wake up call. Wake up call क्यों बोला है बच्चा? क्योंकि ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि the situation is not good, so you should wake up. आप जिस तरह एडवर्डियन समर में रह रहे हैं कि एवरीथिंग इज सुपर्ब, एवरीथिंग इज गुड, इट्स नॉट एक्चुअली द केस. तो ऑथर ने यहाँ पे एक तरह से वार्निंग दी है कि वी ऑल शुड वेक अप, ऑलराइट, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम अहेड. So the entire passage was all about it. So C definitely is considered to be the correct answer choice. Question number 12 देखिए. Which of the following best represents the key argument made by author? तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या था? की आर्ग्यूमेंट पूरे पैसेज में ऑयल प्राइसेस के बारे में बात हो रही है. द फ्लक्स मतलब इनस्टेबिलिटी इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर and historical precedent should make us question our belief that global economic prosperity would continue.
तो ये बच्चा पूरे पैसेज में यही बताया कि ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, क्योंकि काफी सारी डिपेंडेंसी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर रहती है बच्चा, तो इन्होंने कहा कि ये एक्चुअली इट इज, मतलब इट इज मेकिंग दिस बिलीफ क्वेश्चनेबल कि क्या प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कंटिन्यू होगी फ्यूचर में या नहीं होगी. ऑलराइट, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग पोज्ड टू अस. सो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. ऑलराइट, अब बी देखिए, द बिलीव दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज हाईली रेजिलिएंट एंड केपेबल ऑफ ओवरकमिंग शॉक्स, ये तो अपोजिट है पैसेज के. Widespread prosperity leads to neglect of early signs of underlying economic weaknesses manifested in higher oil prices and a flux in global balance. अब यहाँ पे बच्चा widespread prosperity, तो prosperity तो कहीं दिखाई नहीं गई, बल्कि यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स बताए हैं बच्चा जो कि बता रहे थे कि we believe कि there is a prosperous world, we are leading to prosperity, but actually it is not the case. जैसे इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड का एग्जांपल दिया था, ऑलराइट 9/11 का एग्जांपल दिया था, स्टॉक मार्केट का क्रैश का एग्जांपल दिया था, ऑयल प्राइसेस. तो दिस इज नॉट प्रोस्पेरिटी, दिस इज नॉट, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ प्रोस्पेरिटी. प्रोस्पेरिटी के बारे में तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ ज्यादा बोला भी नहीं गया है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13. What can be inferred about the author view that just like that? 13th का बच्चा. It is not necessary that oil prices go down to earlier level. Just like हम कहते हैं ना, अरे प्राइस बढ़ गई तो क्या हुआ, फिर वापस से सी हो जाएगी. All right? तो ये हमें इस तरह की illusion में नहीं रहना चाहिए, because prices will never come down. It is not necessary that oil prices, अगर हम कह रहे हैं ठीक है ऑयल प्राइस बढ़ गई, कभी ना कभी तो कम हो ही जाएगी. All right? तो that is not necessary कि oil prices would go down to earlier level. All right? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट टॉमी कूपर से जस्ट लाइक दैट, उसका ये यहाँ पे एक्चुअली सिग्निफिकेंस था. ऑलराइट, अब देखिए बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. 14th में इन्होंने बताया है बच्चा, बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एडवर्डियन समर द ऑथर रिफर्स टू द पीरियड. किस तरह का पीरियड था बच्चा? A sense of complacency, जबकि world is not prosperous that time also. There was economic decline, political decline, social decline, and people were all happy कि we are living in utopian world. मतलब they started feeling कि they were living in a utopian world, which is not true. All right, so obviously B is considered to be the correct answer choice. अब देखिए बच्चा नेक्स्ट 15th में इन्होंने बताया है, what according to the author has resulted in a widespread belief in the resilience of modern capitalism. तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर था continued growth of western economies despite a rise in terrorism and increase in oil prices and other similar shocks. All right, widespread belief in the resilience of modern capitalism कि we have been facing a lot of challenges, लेकिन हमारा जीडीपी अभी भी हमें लग रहा है कि नो इट इज डिसेंट इनफ. ऑल राइट, तो ये सी बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसेज में क्या लिखा था, एक स्टेटमेंट लिखी थी ना बच्चा पैसेज के अंदर, दे आर दोज हु पॉइंटेड राइटली द मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हैज प्रूव्ड माइटिली रेजिलिएंट दीज पास्ट 250 years वाला जो पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, दैट वी आर एंड्योरिंग स्ट्रेंथ. ऑल राइट, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो दिया था कि स्टिल वी आर प्रोग्रेसिव, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दी है बच्चा. इफ यू कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स, सो दैट वे सी इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, so C is better answer choice for question number 15. Continued growth of western economies despite a rise, जैसे यूएस का उन्होंने एग्जांपल दिया था. अब क्वेश्चन नंबर 16th देखिए बच्चा. 16th में ऑथर कमेंट्स जस्ट द सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म दैट अलाउड गेट गवर्नमेंट टू सैक 100 ऑफ. क्या है बच्चा इसका आंसर? इन द नेम ऑफ रिफॉर्म. वो कह रहे हैं ना कि वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर टेकिंग ब्रिंगिंग सम चेंजेस. A labor in Europe is being deprived of employment security. क्यों? Because they were being fired. All right. So obviously आपका A is the correct answer choice for this question. क्योंकि उनको जॉब से निकाला था, तो we are flexible, we are transforming our world और modern industries बना रहे हैं, हमारा
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे लाइक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लेकिन उसमें उन्होंने क्या करा, दे एक्चुअली फायर्ड thousands of people. So obviously A is the correct answer choice. All right. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17. What are the signs of underlying economic strain that the author invites the reader to witness while welcoming him to the Edwardian summer of second age of globalization? बच्चा इसका करेक्ट आंसर था आपका डी. वेलकम कहते हैं ना, वेलकम टू द एडवर्ड सेकंड एज ऑफ एडवर्डियन समर or second age of globalization. Rising oil prices, non-acceptance of labor reforms by French, and the high current account deficit in US economy. तीनों ही पॉइंट्स मेंशन करे हैं बच्चा कि हम इस तरह के इकोनॉमिक स्ट्रेन को फेस कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर लिविंग इन एडवर्डियन समर टाइम. ऑल राइट, एज इफ एवरीथिंग इज गुड सुपरफिशियली. ऑल राइट, तो सेवेंथ डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर चॉइस. अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. In which possible way can policymaker see the high concurrent account of deficit in the US economy as a sign of strength and not the weakness? इसका करेक्ट आंसर था बच्चा ए. The author clearly highlights the adverse consequences of high concurrent account data deficit coupled with high oil prices US में बच्चा with like 25% of GDP. तो other economies are dependent on US consumption for their sustained growth. All right, मतलब US में अभी भी consumption उतना ही ज्यादा है जो दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी. ऑल राइट, तो अगर यूएस की इकोनॉमी हमें ठीक लगती है जीडीपी, तो मतलब यूएस उससे दूसरी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा कि मतलब जो उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है लोगों का, जो वो यूएस में चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है, उनकी इकोनॉमी यूएस की, मतलब अगर यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक रहेगी बच्चा, ऑल राइट, तो दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी, मतलब यूएस अभी भी सुपर पावर है, मतलब यूएस अभी भी पावरफुल है. तो जो यूएस यहाँ पे जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने जो बोला है, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी खराब होगी तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी भी डाउन होगी. तो मतलब अभी भी वो देखा जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेंथ, क्योंकि दूसरी तो और भी डाउन होगी. जो यूएस की अभी इकोनॉमी है उससे ज्यादा दूसरी कंट्री विल बी गेटिंग अफेक्टेड. ऑल राइट, तो ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस दैट वेज. 19th देखिए बच्चा, 19th में ऑथर, व्हाट इज द टोन ऑफ द लास्ट 3 पैराग्राफ्स ऑफ द पैसेज. यहाँ पे लास्ट 3 पैराग्राफ्स देखिए बच्चा आप एक बार. देखिए, दीज आर दोज एडवर्डियन समर, प्लस यहाँ पे इन्होंने आपके कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करा था. ऑल राइट, एंड देन लास्ट. तो बच्चा यहाँ पे लास्ट 3 पैराग्राफ्स को हमने जब कंसिडर करा, द टोन इज कॉशनरी. कॉशनरी क्या होता है बच्चा? ऑथर इज एक्चुअली गिवन अस वार्निंग्स कि ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, जो ब्रिटेन था वो सुपर पावर था, फिर वो उसकी कंडीशन वो डिक्लाइन हुआ, उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन हुई, यूएस बिकम. देख, अब ऑथर यूएस को एक तरह से वार्निंग दे रहा है, ऑल राइट, कि यू बी वेयर, ऑल राइट, कम आउट ऑफ एडवर्डियन समर, द प्रॉब्लम इज क्रिटिकल and you have to face, otherwise anytime China and India can become a super power. All right, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बोला गया है बच्चा? कॉशनरी. कॉशनरी क्यों बोला गया? अलार्मिस्ट. व्हाई नॉट अलार्मिस्ट बच्चा? क्योंकि बच्चा यहाँ पे उन्होंने रीजन फॉर कंसर्न्स, यहाँ पे 3 रीजंस फॉर कंसर्न्स दिए थे. मतलब रीजंस फॉर कंसर्न का मतलब होता है कि यू शुड बी कॉशियस इनफ हैंडलिंग दोस 3 प्रॉब्लम्स. तो अलार्मिंग नहीं होगा बच्चा. इन जो 3 पैराग्राफ्स थे वहां पे 3 रीजंस ऑफ कंसर्न्स बोले हैं बच्चा. तो 3 रीजंस ऑफ कंसर्न है, मतलब यू हैव टू बी कॉशियस हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई इट इज कॉशनरी. अब देखिए,
What is the overall style of the passage? 20th. Style of the passage can be argumentative. Argumentative क्यों है बच्चा? काफी स्टूडेंट्स ने एक्सपोजिटरी मार्क करा था, विच इज रॉन्ग. ऑल राइट, अब एक्सपोजिटरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स ओपन है. सबको पता है जीडीपी, सबको पता है कि चाइना इज कंसिडर्ड टू बी अ थ्रेट फॉर यूएस. एवरीबडी नोज अबाउट इट. So this is not something which is being told to you people for the first time. That is why it is not expository. Expository का मतलब होता है revealing. All right. Argumentative क्यों? क्योंकि author ने अपना एक viewpoint रखा that we are living in Edwardian summer. All right. And we are like US is actually facing crisis. All right. But still believe that everything is all right, which is not true. और उसको उसने सपोर्ट करा है अगेन एंड अगेन. ऑलराइट, तो उसने बहुत सारे ऐसे क्राइसिस को मेंशन करा है, बहुत सारे ऐसे पास्ट एग्जांपल्स को मेंशन करा है जिन्होंने जो सुपर पावर था किसी और ने टेक ओवर करा, जैसे जर्मनी ने ओटोमन एम्पायर को करा. ऑलराइट, तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच ऑथर हैज कम अप एज एन एविडेंस और just to strengthen his argument कि US is actually facing a problem crisis. All right, and these are the reasons for it. So the overall tone is argumentative. All right, informative क्यों नहीं है बच्चा? Because author अगर ये informative होती तो ये neutral tone होती और objective tone होती. But we can see that author is very much concerned about the problem. All right, author knows that author की अपनी opinion भी reflect हो रही है. It's not all about facts which is being discussed here. Author timely again and again has expressed his own viewpoints as well. That is why informative cannot be the tone. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉशियस एंड अलार्मिंग. वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चा. अलार्मिंग का मतलब होता है वार्निंग एंड कॉशियस का मतलब होता है यू नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट समथिंग. ऑलराइट, सो कॉशियस इज बेटर आंसर चॉइस. यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम. तो ऑथर इज मेकिंग यूएस अवेयर. कॉशियस का मतलब होता है अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, केयरफुल अबाउट हैंडलिंग द प्रॉब्लम. अभी भी सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है यूएस की, बट सूनर और लेटर इट कैन बी, अगर यूएस बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं होगा तो. ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पे कॉशियस बोला गया है. और अलार्मिंग क्यों नहीं बोला गया है? अलार्मिंग का मतलब होता है कि नाउ द प्रॉब्लम हैज कम. अलार्मिंग. ऑलराइट, वरिंग और डिस्टर्बिंग, मतलब इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. अभी डिस्टर्बिंग सिचुएशन नहीं है बच्चा. अलार्मिंग विल मेक यूएस डिस्टर्ब्ड. अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसके कंट्रोल में है. दे जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर कंसर्न्ड एंड केयरफुल अबाउट द सिचुएशन. ऑलराइट, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so that is all for today. I hope you enjoyed this session. All the very best बच्चा. आप देखिए, I tried to incorporate different question types. जैसे लास्ट में आपका टोन भी आ गया, देन आपका ओवरऑल स्टाइल के बारे में भी हमने डिस्कस करा है बच्चा. We talked about certain statements, certain lines given in the passage. All right, कि Edwardian summer किस context में यूज करा गया है. There had been some questions which were based on facts given in the passage. तभी मैं आपको बोला मैंने कि जस्ट रेफर टू दिस स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. फिर लास्ट में बच्चा यहाँ पे जो टोन बोली थी, तो ओवरऑल टोन नहीं बल्कि लास्ट 3 पैराग्राफ की. तो कभी कभी ऐसा होता है कि टोन आपकी ऐसी होती है एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की टोन पूछी गई है या पूरे पैराग्राफ की पूछी गई है या ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल पैसेज की टोन पूछी गई है. तो if you read questions carefully, then only will you score better in your examination. That is the takeaway. And please, every time you get confused between the 2 options, so always read the question again. Instead of reading the option again and again, instead of reading the passage, you should read the question in order, because it will actually help you out for process of elimination. So all the very best, bachcha log. Bye bye. Take care. God bless you.